just sometimes क्या होता है लोगों को questions पूछना अच्छा लगता है. मैं generally almost every podcast that I do, it ends up with question answer. I have no clue. I have like literally answered, so many questions over time and time again, and yet कभी खत्म ही नहीं होते questions. So you became a counselor because of YouTube, or you were a counselor before? And let me go to the live stream just to check कि हम live गए हैं. ठीक है. It says we're live on a custom live streaming service. That's what it says. Perfect. Okay. So first and foremost, welcome Vinamre. Thank you so much for doing this. Thank you for having me. Okay. जिनको नहीं पता, ये दोस्तकास्ट के होस्ट है और मुझे भी नहीं पता था. कुछ बच्चे जो आपको फॉलो करते हैं, they told me कि मैम have you heard of Vinamre? I said no, so I looked you up and that's how I contacted you. And thank you so much for making time. मैं पहले से ही बोल दूं कि ये क्वेश्चन आंसर्स एज सच आंसर नहीं करेंगे जैसे मैं आंसर करती हूँ, तो कीप इट लिमिटेड. एंड जिनको जूम ज्वाइन करना है, जूम लिंक दिया है, आके अगर से आपको यू वांट टू सिट व्हाइल वी आर टॉकिंग, यू फील फ्री टू डू सो. मैं एक बोर्ड बना लूं नो कमेंट का, that I can just show up. अच्छा, you're that against comments, is it? नहीं, I'm just fucking around, but yeah. Oh, sure. Okay, feel free to do so. So tell me a little bit about yourself before I tell you a little bit about myself. अच्छा, तो कुछ नहीं. I've been on producing content for about, I'd say, since 2017, infrequently थोड़ा सा. कुछ. I started off with self-help videos actually, क्योंकि मैं I would watch a lot of self-help stuff and read non-fiction books. तो मुझे भी लगा था कि it was not so much the solutions that they offered, but the fact that they could speak in a motivational manner. मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि explain a concept long form and उसके बाद जाके उस पे कुछ टिप्पणी कर दो. And I was in Boston when I first made a few videos. They're all privated now. एकदम fake American accent के अंदर ऐसे कि आप कर सकते हो and like this is how to change your beliefs, yada ये सब कर रहा था. But the impulse to create has always been in me. It just I didn't have the proper channel for that up till 2022 जब those guys sort of kicked off. तो nutshell में ये तो इंटरनेट की जिंदगी है. बाकी साधारण जिंदगी के अंदर just I like the outdoors. I like gin. मतलब मैं I can do this like a brunch magazine thingy or Okay, that's interesting. But you said 2017 से आप start किए, but your YouTube is recent, is it? So this channel is recent. There's this other channel called Vinamre which keeps getting subs because of those casts. I think वहाँ पे पुराने podcast हैं 50-60. उससे पहले I would just post random videos and थोड़ा ऐसे self-help वगैरह वाला. That's all privated, but that's been around for a while. Oh, okay. So I'm just before we started, Vinamre asked me, I'm like a serial podcaster or something you said. You do a lot of marathon live streams back to back. Marathon live streams, yeah. And it is not like maybe you don't know my story. So I was counseling long back as in like literally 5 years back. Okay. I used to do in Jakarta. I've lived in Jakarta for 25 years. And I started with counseling and clinical hypnotherapy, which was offline, right? वो ज़माना online का नहीं था. और वैसे भी hypnotherapy online बहुत difficult होता है because your call can get cut off and stuff like that. So I used to do that. And then I stopped. Kids, restaurant business in Bali. So I started traveling to Bali like literally every week, Monday to Friday for 2.5 years. Then came COVID and somebody just contacted me, are you still counseling? I said, not really. But I said, what's there to lose? Because the person didn't have money. So I said, ठीक है, help कर लेती हूँ. I didn't know that it would end up like this, where I have been free counseling for 2 years. And it started with only because COVID में पैसे नहीं थे लोगों के पास, mental health issues चल रही थी. But then I just realized in India इतने सारे बच्चे हैं जिनको या तो counselors नहीं मिलते हैं, या तो वो mental health stigma जो इंडिया में है, plus इनको awareness भी नहीं है. धीरे धीरे it started, and that's how Shwetab came into my life, because I used to do some different channel पे जज्बात और एक NGO that I work with. I think one of the videos he saw me, he just called me and he told me, start your YouTube channel. Abhi coming from I'm
माय जनरेशन, हम लोग यूट्यूब से कभी कभी गाने के लिए देखते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं करते हैं यूट्यूब. आई डेंट इवन नो व्हाट वाज यूट्यूब, कैसे करते हैं. सो आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द, एंड आई वाज लाइक व्हाई इज ही टेलिंग मी टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, मैं करूंगी क्या उसका. तो धीरे धीरे फिर उसके फॉलोअर्स तब 100-200 थे. जब जब फर्स्ट डे जब उन्होंने मुझे श्वेता आपके स्ट्रीम पे देखा, तो आ गए थे 200-300 लोग आ गए थे. एंड धीरे धीरे हमने 4 या 6 पॉडकास्ट साथ में किए. फिर मैंने ब्रेक ले लिया, और श्वेता मुझे बोलता तुम पोस्ट क्या कर रहे हो. ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि यूट्यूब चैनल के साथ कुछ तो करना है, राइट. मुझे नहीं पता था. सो ही गेव मी द आइडिया कि जो हमने जो पॉडकास्ट किए, आई डिडंट नो इवन दैट मच कि यू कैन नॉट टेक समवन एल्सेस स्ट्रीम एंड पोस्ट इट. Well, you technically can. Yeah, but If it's they don't not. flag it down, हाँ. Yeah, but like it's not एटिकेट नहीं है, राइट. कि अगर से किसी ने, आप, आई एम गेसिंग, मुझे नहीं पता, पर एनीवे, तो उसने बोला कि छोटे छोटे वीडियोस लगाना स्टार्ट करो. फिर धीरे धीरे जैसे उसके फॉलोअर्स मुझे फॉलो करते थे, डीएम्स पे डीएम्स पे डीएम्स, एंड ऐसे वाओ. क्योंकि मैं तो यहाँ काउंसलिंग कर रही थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था इंडिया में इतना डर्थ ऑफ काउंसलर्स है, इतना मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, और इतने सिमिलर क्वेश्चंस है. क्योंकि वी स्टॉप डूइंग पॉडकास्ट बिकॉज सेम क्वेश्चंस, barely maybe 4-5 topics which you keep going around in India. Studies, schedule nahi ho raha, these kind of things. Sometimes a little more than that. So we stopped the podcast, but then I got अचानक इतना क्लैरिटी कि इंडिया में क्या जरूरत है. मुझे ये रियलाइज हुआ कि इंडिया के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ना सिखाते हैं सेल्फ वर्थ कैसे, you know, how do you work on your self worth, how do you focus on your studies if you're going through a heartache, what do you do if you go through a heartbreak, what to do if you're overthinking and you have anxiety, how to do interview skills. So धीरे धीरे बच्चे लोग लिखते गए, मैम ये नहीं आता, मैम वो नहीं आता. तो that's how I became this so-called serious and serial podcaster, because I started seeing they wanted information of this profession, that profession. Then I started discussing with, getting inspirational stories, like a transgender Sony came on our thing. And now I'm even looking for someone from the LGBTQ community, because कुछ बच्चे आते हैं जो क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं, कुछ आते हैं जो गे, बाइसेक्सुअल, लेस्बियन हैं. But India में, because of all this stigma attached, they are not being able to live a life. Haven't Ayushmann Khurrana movie helped in any capacity for that? Little bit. I think it would help little bit, but वो थोड़ा सा different था topic. Like not like जो transgender हम रास्ते पे देखते हैं वो अलग देखते हैं, right? I mean all his movies. I think that's an attempt from someone in Bollywood to try and speak about that. कि at least उसे pop culture sense में कर रहे हैं, पर कर तो रहे हैं. Right. So, are you into Bollywood movies or? No, actually, I have a question for you about hypnotherapy. So, I have in fact taken several kinds of therapy all across. USA के अंदर भी ली थी, and then India, when I first came here, I discovered Practo, and वहाँ पे clinical psychologists, because I studied a fair bit, थोड़ा बहुत पढ़ा था कि I figured hierarchy के अंदर clinical psychologists is supposed to be at the top. Right. मेरी जो limited knowledge है उसके हिसाब से. So I went and I sent friends, and most of them came back with negative opinions. किसी को someone was diagnosed or like they thought they had depression, तो उसको बोला गया कि deep breathing करो. तो so I discovered कि यहाँ पे तो there's also lack of talk therapy, which is why I was curious कि hypnotherapy में ऐसा क्या होता है, because the sort of someone I consult, I do psychoanalysis. जो Jungian psychoanalysis होता है वो मेरे को काफी interesting लगता है. But I'm curious, like, what happens in hypnotherapy? Okay, so let's first go to your point where you said that this is just deep breathing करो. हाँ. वो एक तरीका हुआ, वो एक ही तरीका नहीं, ठीक है. I'm a counselor. I'm not a psychologist. There's a different degree attached to that. I'm not a psychiatrist. Psychiatrists generally dispense करते हैं medicine, पर कोई focus नहीं कर रहा talk therapy. टॉक थेरेपी के लिए तुमको लिटरली एक क्लाइंट के साथ जनरली 1 hour होता है, जनरली, क्योंकि वी गेट ऑल्सो बर्न्ड आउट, राइट. सो आई गिव ऑल माई क्लाइंट्स एट मिनिमम 1 hour. जब इनिशियली 2020 में कभी कभी 2 hours भी दे देती. अब प्रॉब्लम यह है कि इतना टाइम है ही नहीं हाथ में, बिकॉज यू आर डूइंग यूट्यूब, यू आर डूइंग काउंसलिंग, you have your own studies. So that's how it started. Now the same reason I felt why I got into clinical hypnotherapy is because I felt talk therapy is not enough. Now, whenever a client comes to you, generally they want their work to be done.
they don't want कि उनको इतनी मेहनत करने पड़े. Of course, at the end of the day, तुमको ही अपने life में change लाना है. So that's where clinical hypnotherapy kind of gives that push, that willpower push which is missing. So what we do is we embed suggestions in your so-called trance state when we get you into a trance state. वो पुराने जमाने का जो तुम pendulum देखते थे. नहीं वो नहीं है. हाँ, it's you do guided meditation plus something else, right? Exactly. So we give deepeners like when initial जो trance state होता है, फिर to deepen the trance state. And then how do you get them out? I'm sorry, what is a deepener? What do you do in a deepener? Deepener मतलब the second phase. Initial जो तुम्हारा phase. Generally, when you're embedding suggestions, ये गलत फहमी जो टीवीज और वो सब, अगर से सच में ऐसा होता जहाँ पे हम कुछ भी बोलते और आप लोग करते, तो how rich would we be, right? Like I would not, and most hypnotherapists would not have to ever work a day in their life. Right. We would get every information out of you. We would make you bark like a dog or whatever it is. Yeah. So generally you do what you want to, and your brain always protects you. So even if I want something like to embed some suggestion or some memory, it's very for a short while. That's why जब आप ट्रांस में भी डालते हो, एक टाइम से कुछ नहीं होता, आपको बार बार करना पड़ता है. Now the hypnotherapy that I have learned, that's in Singapore from the London Clinical College जो सिंगापुर में है of hypnosis. तो वहाँ पे हम लोगों को NLP भी मिक्स करते थे. तो अगर से since you're into it, I don't know if you've heard of the swish technique or I have not. I know neuro-linguistic programming होती है, that's NLP. but I don't know what the swish technique is. Please tell me. So that's one or two techniques, but we don't do it only with NLP. NLP generally while you're sitting, they'll just tell you to do that. But what we do, we first get you into the trance state, then we do the NLP while in it. So many times मेरा एक बहुत बड़ा famous technique है जो मैं many times खुद ब खुद भी तुम कर सकते हो. It's not like so difficult. And also because I'm a trauma counselor, I have learned hypnotherapy and EMDR, but I've stopped doing it. Sorry, what is it? EMDR? EMDR, eye movement desensitization response. ये होता है lateral movement करते हैं आंखों पर ऐसे when you think of a traumatic memory. Exactly. The triggers, right? So what we do is this was developed when it was done during war time पे होता था, right? Post traumatic stress disorder होता था, PTSD होता था. तो तब से then it came into the clinical setting. Okay, then it was mixed with hypnotherapy. So especially when your trauma is little deeper, like of course I could go into cases, but lately I have not practiced. मैंने 2 बार किया है, 2-3 बार किया है with like serious trauma. एक था जब एक लड़की का पति 10 साल के बाद उसको realize हुआ bisexual है. Then so that's supposed to be traumatic as well. I'm curious because like I've heard like obvious जो होते हैं, but it's like what kind of trauma is that जहाँ पे your so the reality is questioned? Got married, right, to a person who's actually gay. Okay, and you said he was bisexual. Bisexual as in she didn't know, right? He's also into guys. She thought she's straight. He's straight. Yeah. And they're married, and they're like, she's pregnant, and she finds his photographs everywhere. And the people who he was sleeping around with, they sent. And the weird thing is she kind of knew something was off, and she just could not deal with it, right? Sometimes what we do is we cannot face the obvious. तुम्हारे सामने आता है, but you spend 10 years with that person, and all of a sudden you realize कि कुछ गड़बड़ है. And so that's when EMDR, and there was another sexual trauma case which was there. So those are like the serious things. जब तुम रोना बंद नहीं कर सकते, तुम हर चीज तुमको ट्रिगर करती है, तो बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं. जनरली जितने मैंने केसेस देखे हैं, मैं तो एक तो I don't do mental illness. I'm a counselor, but India में बच्चों को they just need someone to hear them out most of the time. It's yes, today also I got something on incest, something I got somebody got pregnant. I get all this like almost everything. What is it? Was it like for you? Because I've heard of this thing called the healer's wound or the wounded healer. Matlab, you're listening to all of these stories and literally, where do you find the emotional strength to do this? And do you just say, "वो होता ही होगा ना?" I know, because one day I did like 3 podcasts और मेरे को सांस लेनी पड़ी. Because you're listening to people, it's great, right? It's what I do for a living. But एकदम ऐसा होता है कि you need a different kind of emotional compass and resilience to hear people's stories and still, have your empathy radars on. Yeah. How do you do that? So that's what I think.
एम्पैथी जो तुम्हारा रेडार तो होता ही है, नहीं तो तुम काउंसलर नहीं बन सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर से तुम में वो तुम सेंसिटिव इंसान नहीं हो, तुमको दूसरों का गम समझ में नहीं आता, मेरे हिसाब से तुम अगर से सुपरफिशियल लेवल तक किसी से बात कर रहे हो पर उनका दर्द नहीं समझ पा रहे हो, लाइक सब लोगों को पता है, मैं इनको बच्चास बुलाते हूँ, मेरे बच्चास, सो दे लाइक दैट बिकॉज दे मिस दैट द पेरेंटिंग इन इंडिया is those that kind of parenting, right? ताना मार के कंपेयर करके, तो उनको यहाँ पे कहीं कंफर्ट मिलता है कि मैम उनको बच्चे की तरह ये कर रही है, like Sabyasachi just now gave me hearts. So this is the thing, but yes, we have supervision. Like I just finished my I'm now a group counselor with an American group Psychotherapy Association, 60 weeks theory and practicals. Okay, so that's a hell of a lot of stress, and you're going through a process group so that I can basically be a group counselor. But I have realized I'm really not cut out for process group at the moment because I'm already overwhelmed. Constant DMs after DMs, constant counseling out of counseling, it drains you. मैं इनिशियली 2020 में 8 केसेस पर डे करती थी, आज मैं 4 केसेस करती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं बर्दाश्त, लाइक यू डोंट हैव दैट द एनर्जी, और सारा टाइम मैम मत जाओ, मैम मत जाओ, मैं जाती हूँ एक पॉडकास्ट, अभी तुम्हारे साथ भी पॉडकास्ट करूंगी ना, ये खत्म होने के बाद ये लोग सब मेरे साथ बैठे होंगे, like I just did my English, you must be, I don't know if you're aware, but I teach conversational English every Monday, and uske baad tha on the beam session, which a lot of children came to me, ma'am, we don't have a training ground to practice, they're shy, they're introverts, so I get some speakers, or I also just sit with them and we start talking so that they can develop the skill of communication. 5 घंटे चला, 5, मैं 7:30 जकार्ता से बैठ के 12:30 बजे रात के मैं उठी यहाँ से. So that's what you see, the marathon is not something I'm like forcing कि तुम लोग सब मेरे साथ बैठो, it's just organically happening. और वो चाहे 4 लोग ही क्यों ना मुझे देख रहे हो, as you see मेरा channel is not like that big, but for me helping even one person, so I think if your passion and your purpose are together, then it comes quite easily. For me, my energy is never, हाँ जब मैं बीमार हूँ वो अलग बात है, but generally I'm quite an upbeat person, so मेरे लिए काफी easily हो जाता है. But yeah, I do take care of my health. You have to take a break, you have to have your me time and divide your day, so that's how I handle. So it's okay, इतना बुरा हाल नहीं है. Only very very difficult cases, मुझे आजकल मेरे आंखों में आंसू आते हैं जब कोई सेक्सुअली मोलेस्ट होता है. अभी एक बच्ची है जिसको कोलोरेक्टल कैंसर है, उसका 11th को सर्जरी है, तो that shakes you up. You're like, and you feel helpless. Like she wrote to me yesterday, I think I told her that one day I'll interview her once she gets better. She wrote to me कि मैम मुझे लोग मिलने क्यों आ रहे हैं, क्या मैं मरने वाली हूँ, and मेरा खाना पीना, of course before the surgery you're supposed to stop your solids and all, it kind of hurts you so much, but those are the cases which really really affect me. Otherwise most of the time I'm quite okay. So like you can see I got emotional even now, because it's so hard. जब हमारे ग्रुप में एक्चुअली मेरे डिस्कॉर्ड का जो सर्वर है 2900 of us, right? Because I started with this whole purpose. People पेरेंट प्रेशर हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही, तो I have someone teaching study techniques. I have someone helping with with career counseling. All of us are helping for free, and there's a channel also वहाँ पे है children who have lost their parents. There was a child who lost a girlfriend, so we kind of support each other. So my journey, I'm an accidental YouTuber, I'm an amateur YouTuber, but I think my intentions of trying to help the Indian kids is there, so it comes very naturally to me. मैं इतना जल्दी थकती नहीं हूँ. Wow, one like, one salute. I'm not saying that ironically at all. That's crazy. Thank you. So, does it not affect your family life at all? Because you might bring some of these to the dinner table. Like, what is that like, if I may ask? No, I don't generally. You see, you cannot be a counselor if you can't do this and snap out of it. You can really snap out of emotions like that? I can snap out because I've been doing it enough now. Like I said, couple of cases I can't. Like जिस दिन, और मैं हर चीज का सोल्यूशन ट्राई करती हूँ ढूंढना. जैसे जिस दिन मेरे को आया था कि एक लड़की आई थी जिसको सेक्सुअली मोलेस्ट किया गया उसके कजन ने, ठीक है,
और वो रो रही थी क्योंकि उसके माँ बाप उसके लिए दे वर नॉट स्टैंडिंग, और मेरे आंखों में लिटरली उससे बात करते वक्त आंसू आ रहे थे। पर जब मैंने फोन रखा ना, मैंने सोचा क्या कर सकती हूँ, तो मैंने वीडियो बनाई इस पे ऑन incest, and because I don't want to just not do anything about it, right? You want to do Right. something, and that's what makes me switch off. That okay, I did my thing. That's the amount I can do. I don't try to control things which are like so beyond my control. So recently also I got a lawyer because of this very reason, कि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए कि अगर से आपको साइबर बुलिंग हो रही है, आप इंसिस्ट हो रहा है, या आपको किसी ने सेक्सुअली मोलेस्ट किया, करना क्या है इंडिया में, जाना कहाँ है बच्चों ने। So that's what I try to find ways out of it. I think you should do something with Amish Agarwala. The He does. lawyer? He's a lawyer. He's very active. I did a podcast with him on the previous channel. वो काफी अच्छा होगा against in all of these things. Right. I wrote to him. He said currently he's busy, but we're planning something. Hopefully. Yeah. Fantastic. I got some other lawyer who was kind of helpful. She was a YouTuber girl. तो बहुत सारे हैं. हाँ है, but यार मैं यूट्यूबर हूँ ही नहीं ना, मुझे तो पता ही नहीं है। बच्चे लोग मुझे बताते तो मुझे कुछ कुछ आता है, कुछ इंस्टाग्राम से कोई किसी को फॉलो कर रहा है, फिर मैं सोचती हूँ ओके हाउ कैन दिस पर्सन ऐड वैल्यू टू द बच्चास हु आर फॉलोइंग। मैं उस तरह से देखती हूँ। लाइक आज आपने कुछ यू डिडंट think about it, but you told me something which will impact the kids. You said that, you know, I took some therapy before. So can you don't have to tell me about your life or why you went or whatever. Because so many people follow you, right, Vinamre? Right. And these bachas are looking up to you. I want to destigmatize counseling. I want to destigmatize anything. अगर से आपको stress हो रहा है, mental health issues है, क्यों नहीं counseling जाना, क्यों नहीं therapy जाना? ठीक है, मैं फ्री करती हूँ, पर पैसे भी डाल के आप लोग जा सकते हो। So please tell us a little bit about that. बिल्कुल। So I've always been about मैं किस तरह से अपनी स्टेट को मैक्सिमम एनहांस कर सकता हूँ। हाउ कैन आई एक्सेस लाइक टॉप टियर इमोशंस, इस तरह से। Which is why I was interested in biohacking, cold showers करना, ये सब चीजें करना to alter my state, right? But I think at a certain age पे आके I figured that there was this deep sense of sadness that I was always persist in the background. That I couldn't really find something for, and I had friends, I had a good life, but for some reason I don't know क्या issues थे। मैं इतना लिखता था उसके बाद भी, like, you know, writing everything down, journaling, I did whatever I could. So and then I started seeing in and around me, मेरे पूरे शहर के अंदर people with जिनकी families broken थी, जिनके यहाँ पे dysfunction वगैरह थे। I saw a lot of it stemmed from unresolved issues जो कि बात करें communicate हो जाएगा। खासकर the sort of men that are in a generation previous to mine, in and around me, were very rough men. तो मतलब वहाँ पे थेरेपी करते हो तो आप सोच भी नहीं सकते, it's just impossible, right? So around that, कहीं ना कहीं, despite going abroad, I learned also how to like pretty strongly repress my emotions. And फिर उसके बाद when I went abroad, I realized कि, you know, I was 18, 19, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, and at the same time I discovered Freud and Carl Jung. And उस तरह की therapy was like great कि यार अच्छा मेरी dreams भी analyze करेंगे, कुछ ऐसे hidden निकल के आएगा, because it's just if you can combine creativity with Hear me? Hello, yes. Oh, okay, sorry, it was yours. हाँ, तो मतलब I discovered Freud and Jung, and कि अगर ऐसी therapy लेनी चाहिए ना, इसके अंदर थोड़ी creative चीजें भी हो कि मतलब मैं क्या कहते हैं, मेरी dreams वगैरह analyze की जाएं, etc. So I got intrigued. I tried that. And I remember the first time I went, and this is paid, of course. मतलब मेरे को अच्छी तरह याद है $80 पे करना, और मुझे नहीं पता था कि थेरेपी के लिए appropriate rate क्या होता है। ऑनलाइन क्या $200 के भी होते हैं, 100 के भी होते हैं, कॉलेज वाले भी मुफ्त में जैसे ऑफर करते हैं। अच्छा, मैं पहले कॉलेज का एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मेरे यूनिवर्सिटी के अंदर, बॉस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर था, बहुत सारे लोग जाते थे। मतलब मेरा रूममेट खुद ही, उसको क्लिनिकल डिप्रेशन था, तो वो तो मेड्स पे आ गया था। मेरे हाउसमेट को लास्ट ईयर में एक बार मैं भी गया, एंड मैंने ऐसे सोचा कि चलो यार, मेरे को फीलिंग्स ऑफ, जैसे होता है ना कि कॉलेज के अंदर मेंटल हेल्थ एज अ वर्ड had really come around and everyone was suddenly talking about it, and I was like, you know, like let me see. तो मैंने जाके बोला, बात करी। एक बंदी बैठी हुई थी, मतलब ऐसे एक लिटरली क्लिनिक के अंदर, एक जस्ट अ स्मॉल रूम, and I went inside there and she looked very overworked and super tired, and वो बस sympathetically ऐसे नॉड कर रही थी, अंडरस्टैंड कर रही थी। तो मैंने कहा यार अच्छा, like I felt like okay, maybe, you know, I had no problems with being heard. I'd already been heard. मेरे को थोड़े issues solve करने थे। I think उस लेवल के लोगों के लिए वो सही होता है। तो I was too dissatisfied. फिर मैं ये जब इसके पास गया, the Jungian psychoanalyst,
मैंने उसे अपना एक सपना बताया। मेरा सपना ये था कि सपने के अंदर मैं एक एक ट्रक्स की लोडिंग डॉक के अंदर हूँ और वहां पे एक पागल सा आदमी खड़ा है, मतलब उसकी दाढ़ी वाड़ी पूरी बड़ी है, एकदम स्क्रफी सी, उसके मुंह से थूक निकल रहा है, उसकी आंखें लाइक पूरी साइको वाली है। और मेरी फट रही है कि हो सकता है कि वो मेरे को अटैक करेगा। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग एंड स्टिल लाइक विद दैट फियर आई वॉक टुवर्ड हिम और मैं उसको ऐसे से हिलाता हूँ कि शायद मैं उसको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई फाइट डिस्पाइट बीइंग स्केयर्ड। देन इंस्टेड ऑफ फाइटिंग मी ही जस्ट लुक्स इन द डिस्टेंस, वायलेंटली पागलों की तरफ भाग जाता है उस तरफ किसी और को अटैक करने के लिए। मैं वहां बेवकूफी तरह खड़ा रहता हूँ, ये क्या सपना है। एंड हमने बात करी, यू नो टॉक थेरेपी इज नॉट जस्ट दैट, यू टॉक अबाउट जस्ट टेंजेंट चल रहा होता है, नॉन स्टॉप बोल रहे होते हो एंड देन यू नो वो कॉन्वर्सेशन को क्यूरेट करते हैं इस तरह से। सो इन द एंड ही सेड, यू नो द गाय यू सॉ इन द ड्रीम इज यू। एंड दैट्स व्हेन आई फ्रोज, क्योंकि ना आपको जब सपनों में ऐसे किरदार दिखते हैं जो आपसे अलग होते हैं, या मतलब even if it's not you in the dream, तुम्हें लगता है कोई और है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारे फादर है, that's not you, but it's mostly like there are parts of you trying to give you a message. If people believe in like, you know, psychoanalysis at all, I practice it, right? मतलब मैं I take it. तो and फिर उसके बाद I started discovering this thing called the shadow, right? Your dark side, your repressed side. तो then he had me do this experiment. I've only done it once. एक्टिव इमेजिनेशन करके, मतलब मैं लाइब्रेरी के 6th फ्लोर पे बैठा हुआ था, सो मैंने आंखें बंद करी एंड आई इमेजिन अगेन एंड सडनली इस पागल आदमी का हाथ मेरे कंधों के आसपास था, लाइक अ फ्रेंड, एंड यू कुड सी द ड्रीम फ्रॉम द बैक। एंड हम लोग एक बड़े से फील्ड में खड़े हुए हैं और आसमान एकदम ब्लू है, बहुत अच्छा है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। विद अ फ्लिकर ऑफ अ हैंड ही गोज लाइक दिस एंड द स्काई टर्न्स ब्लू, शोज इट टू मी, देख क्या बढ़िया चीज है, एंड देन टर्न्स इट बैक टू ग्रे, इस तरह से। उसके बाद यू नो व्हेन आई ओपन माय आईज, मैं मजाक नहीं कर रहा, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट साइंस ऑफ कंप्लीट फिजियोलॉजिकल रिलीफ। शरीर के अंदर बहुत ज्यादा रिलीफ हो गया था। अब हो सकता है ये सेल्फ एक्सेप्टेंस है, हो सकता है एकदम बिल्कुल ये झाड़ू फूक है, बकवास है, आई डोंट नो, बट आई गॉट रियली इंटरेस्टेड एंड आई डिडंट परस्यू इट फॉर अ व्हाइल। मैं इंडिया आया, मैंने फिर वो एक दो लोगों को, मैं नहीं किया, एक दो लोगों को प्रैक्टो पे भेज के देखा कि क्या होता है। एंड देन आई थिंक हाउ वुड आई से, maybe March of last year is when I started actively consulting with a psychoanalyst, and it's great for your creative life as well. तो ये है मेरे कुछ jumbled thoughts इस मुद्दे पे। Okay. So let's lighten the mood, but I just want to tell आप थोड़ा अपने, because so many children watch you, they follow you, Right. and can you tell them why it is important to speak about your problems? How does it help? I will try. मतलब मेरे हिसाब से तो इससे बढ़िया, इससे बेहतर तो मतलब क्या करे इंसान, नहीं तो मर जाए, लाइक एकदम रिप्रेस करके कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि जब आप कुछ रिप्रेस करते हो ना, वो फिर अलग अलग तरीकों से शो करता है आपकी जिंदगी में। लाइक आप एकदम पैसे वगैरह से हो जाओगे, किसी पे खामखा चिल्ला दोगे, राइट, मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा, देयर सो मेनी थिंग्स। तो वो जो स्टिग्मा भी होता है, इट कम्स फ्रॉम पीपल जो कोप कर रहे हैं खुद ही, जो मतलब एड्रेस नहीं कर रहे, सिर्फ कोप कर रहे हैं। तो व्हेन दे सी समवन डूइंग समथिंग वेरी अल्टरनेटिव, स्पेशली लाइक इन अ प्लेस जहाँ पे बिल्कुल भी थेरेपी वगैरह एक्सेप्टेंस नहीं है, जहाँ पे मतलब एस्ट्रोलॉजी और क्या कहते हैं, झाड़ फूक वाली, इट हैज इट्स मेरिट्स व्हाटएवर, राइट, जिसको वो करना है वो कर सकता है। उस चीज को क्लिनिकल साइंस के ऊपर तवज्जो देके किया जाता है। तो एंड देन anyone who's not religious or believes in this is basically screwed। वो क्या करे, वो डेथ मेटल सुने, वो मतलब रैप सुन के बोले हाँ मेरी भी जिंदगी ऐसी, सिगरेट पीते रूम में बैठ के, हाँ यार सब कुछ फक्ड है, कितना बुरा है। So the alternative is just to like have a conversation with whoever, you know, you do it free, some people do it paid, but ultimately it, मेरे को तो लगता है I become like better at my relationships, better at balancing my work and life because of that. Right. Yeah. That's great. Thank you so much for, ताकि सारे बच्चे सुनो, अगर से मेरे पास भी नहीं आ रहे हो, अगर से anything is bothering you, please seek help. You know, today I got this message from this child, and since I'm not a psychiatrist, I could sense schizophrenia and OCD in this child, right? And you can sense as a counselor, you know when something is, तुमने बेसिक चीजें हेल्प कर दी, तुमने बात कर दिया, तुमने सारे टिप्स टेक्निक्स हिप्नोथेरेपी फलाना सब कुछ ट्राई करने के बाद फिर भी वो इंसान अगर से, एंड यू नो ही सेड क्योंकि मैम मेरे पेरेंट्स नहीं बिलीव करेंगे, मेरे पेरेंट्स नहीं ले जाएंगे, इट्स नॉट लाइक
I'm like, oh my God. Sometimes, maybe you don't. Looks like, have you come from your family has separated your parents or something? Because you were saying from broken child, this thing, broken family or something. नहीं मेरे तो बढ़िया सीन है, ऐसा कुछ नहीं है. नहीं, but I've seen it all around me. I've seen it frequently. In fact, you'd be surprised, it happens more in tier 1 cities and metropolitan cities, क्योंकि वहाँ पे छोटे-छोटे units होते हैं. तो ये सीन है. No, my parents were separated when I was 12. So one, I'm completely against this concept of calling it a broken family. It's just different. I don't. ये जो mindset हो जाता ना कि तुम एक broken home से आए हो, broken family से, वो भी कहीं ना कहीं तुम्हारे mental health में affect करता है. क्योंकि you always feel कि बाकी लोगों की life perfect थी. They had और this मेरे यहाँ कोई perfect दिक्कत है. family, and I come from broken family equals to I am broken. So I'm trying to change that concept. So what do you call it instead? I just say you're from a different setup of family. It's just a family. It's still a family. My mother and my father separated when I was 12. I stayed with my father. My mother was not with us. And yes, I didn't have that bond, but I would say my father tried his level best. I didn't say itna, obviously for a वो जमाने में men इतना actively involved तो वैसे ही नहीं बच्चों में होते थे क्योंकि काम इतना होता था. Dad को सारा time काम करना होता था, right? So having said that, I think they tried their level best, and I'm glad that now I have understood that एक तरह से अच्छा था कि उनका separation हुआ. क्यों? क्योंकि if a child keeps watching parents fighting, that is also not good, right? Right. So and many a times India में ऐसा है कि they think of them only as parents, but they don't look at them as human beings. Right, they see them as their roles कि ये अब Exactly. father का role निभा रहा है, mother का role निभा रहा है, उनकी अपनी निजी जिंदगी में वो कौन है, that isn't allowed to blossom. That's very true. Yeah, so that's what I am trying to teach these kids कि even आप अगर से कोई family से जहाँ आपके माँ बाप साथ में नहीं है या माँ बाप नहीं है या एक parent नहीं है, second या दोनों नहीं है, I'm trying to help to make them understand that we finally become victim of the words that we speak for ourselves, right? So trying to change that. But मैं ये तुमसे ये कह रही थी कि ये जो केस आया था तो वो पेरेंट्स रेडी ही नहीं है बच्चों को दवाई देने के लिए या साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं. हाँ, इंडिया में ये भी प्रॉब्लम है कि जबरदस्ती मेडिसिन दे देते हैं. सबकी बात नहीं करो, सब साइकियाट्रिस्ट ऐसे नहीं करते, पर काफी हद तक जो भी मेरे पास आते हैं, मैम काउंसलिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं. You have to resolve your core issue also. Where did it stem from? What are you supposed to do? I think your video froze for a second. Sorry. I didn't catch that. Okay, sorry. Is it okay now? So I'm saying that this is how I started doing more psychoeducational sessions, giving them an action plan. ज्ञान तो सब देते हैं, ठीक है, पर करना क्या है लाइफ में? How do you work on your overthinking? How do you work on your self-worth? What do you do? So that's what I try to. अगर से कोई मेरे पास बच्चा आता है कि उसको study issues हो रहे हैं, I first send them to our Discord, वहाँ पे study technique सीखो, फिर मैं hypnosis audio देती हूँ to help them with their willpower. Then you do talk therapy to understand. Basically, generally जब वो procrastinate करते हैं, fear based होता है. इंडिया में इतना तुम्हारे मन में, actually उस बात से मुझे याद आया कि तुमसे ये पूछना है कि इंडिया में सारा टाइम डॉक्टर, इंजीनियर, फलाना धमका, गवर्नमेंट सर्विसेज में आपको होना होता है. You are doing something different. Many kids are afraid to do what you're doing. Is this your full-time job, by the way? It's become that now. Yes, finally. So, okay. So what do you have to say to these children who not necessarily are meant for NEET, JEE, सब वही कर रहे हैं, सब एक साथ उसी कुएं में छलांग मार रहे हैं जहाँ सब धक्का मारे जा रहे हैं, right? But you are doing something which not many people are doing. What would you tell the people? How did you do this? Acha, my parents were supportive. Number one, that's very important. But that's not the case for most people. Supportive in the sense कि किसी का अगर एक struggle होगा ना कि यार मैं इंजीनियर नहीं बन सकता इसलिए मैं आर्किटेक्ट बन जाऊंगा, तो मेरा यह था यार मैं राइटिंग की डिग्री के लिए नहीं बोल सकता इसलिए मैं कम्युनिकेशंस पढ़ लूंगा, सो आई स्टडीड एडवर्टाइजिंग इंस्टेड. सो दैट वाज ऑलवेज देयर. बिसाइड्स ऐसी बात नहीं है, मतलब it's very easy to underplay your own struggle, etc. But if I have to say it, it was not easy because when I first started doing this, सबने ये बोला कौन सुनेगा इतना लंबा, कौन क्या बोलेगा, और तू बातें भी क्या करता है, इंटेलेक्चुअल बातें किसी को समझ भी नहीं आती, ये सब चीजें. It just takes time, and for my case, I didn't have any particular career to fall back on. If you think about
मतलब even with my degree I can do like a digital marketing advertising job, ठीक है, पर मैंने वो भी try करा, पर मैं I was just too expressive for my own good and for my company's good as well, so that didn't pan out. And then I gave myself a deadline that it has to work out, and it did. Again, I've been lucky, I've been supported, दोस्त भी encourage करते हैं, तो वो सब एक मतलब मेरे पास मैं जबरदस्ती कुछ स्ट्रगल नहीं बता सकता कि मैंने बहुत ऐसा कुछ करा है या ऐसा कुछ है, बट हाँ मेरा वर्क एथिक सही है, जो मैं ये चीज कह सकता हूँ, which I think even if you have a good work ethic and you're trying to get out of like a situation where you're forced to do engineering, having a strong work ethic कि तुम्हारा काम खत्म करके फिर जो बाद में तुम करते हो, like building a second life or something like that can happen, वो चीज कर सकता है हर कोई इंसान, सेफली कर सकता है. हर किसी के पास इतना रिसोर्स या इतनी विल पावर या करेज नहीं होता कि सब कुछ एकदम पे ड्रॉप ऑफ हैट पे ड्रॉप करे और कुछ नया करने की कोशिश करे. फॉर एवरीवन एल्स दैट्स व्हाई इट्स इजी टू fade in and fade out like that. Okay. So, but I'm going to ask you something. I don't know. What have you planned? I mean, there's only that much as I have seen YouTube. मुझे ज़्यादा नहीं पता. But what goes up does one day come down, right? Right. You can't have always that kind of so many views. What is your backup plan? Do you have a backup plan or? मैं तो अपनी टीम को ये कहता हूँ, देखो ये सब मिथ्या है, आज है कल नहीं है. बहुत समय तक नहीं था, ऐसी बात भी नहीं. हम तो बहुत चैनलों पे काम कर रहे थे, हमारा तो कुछ भी नहीं हो रहा था. जेन्युइन है, बहुत अच्छा है, जिंदगी बदल रहा है, बट लाइक फ्रॉम अ प्रोडक्ट मार्केट फिट, सिंपली पुट, नथिंग वाज हैपनिंग. इट्स जस्ट अ मोमेंट इन टाइम, राइडिंग द वेव. वन डे हो सकता है कल इट्स नॉट गोना बी देयर. तो यही प्लान होता है आई थिंक कि you make a bond with the people who you think will enjoy your work future में जाके, and then to some other kind of offering. ये सीन है. बाकी I am going to do podcast till the end of my life unless something drastic happens. मैं तो कल जे भी जोक कर रहा था कि एक हाथ से एम्पुटेट हो गया तो भी ऐसे I'll still do it. I think that's my guiding star, is to release episodes Tuesday and Friday. I don't try to make it philosophical or complex or abstract कि बहुत कुछ ऐसा है, because I find that level of discipline in that part of my life has brought discipline everywhere else, and things just work out. Like it's my obligation. मेरी obligation है, मुझे ये करना है, तो it just takes care of a lot of issues. And I become better at scheduling and stuff. So it's easy to like take small bets in other directions. कि चलो थोड़ा सा ये experiment कर लेते हैं अप्रैल में, क्योंकि podcast तो हम बनाते ही रहेंगे. That has become my day job. But content creation is such a pain. I was not aware. Like I've just started few months back, so I'm like, भगवान, like हर टाइम आता है, मैम इस चीज पे वीडियो बनाओ, मैम उस चीज पे वीडियो. like एक इंसान कितना वीडियो बनाएगा, कितना फिल्टर्स तो लगाने पड़ेंगे आपको, ये तो आपको ही पता है. आप क्योंकि अभी मेरे ख्याल से आपको जितना डिग्री ऑफ इनपुट आता होगा, जैसे मेरे पास अगर 10% आता होगा, आपके पास अग्रेसिवली क्वेरीज आती होंगी ना, तो उस इनपुट के अंदर ड्राउन ना होना और अपनी एक क्या कहते हैं, like you keeping your orientation intact, that is tough. तो कुछ ना कुछ तो you might have to get an assistant who does it for you. No, I am very blessed वैसे. I can say कि क्योंकि मैं फ्री काम करती हूँ, मेरा टीम मेरे लिए फ्री में काम करता है. Crazy. मेरे वीडियो एडिटिंग, मेरे पोस्ट, मेरे थंबनेल्स, मेरे जो वो क्या टाइम स्टैम्प्स, ये भी मुझे पता नहीं था ये वर्ड, तो मैं ये सब सीख रही हूँ, and everything is done free of charge for me. So I am very blessed. Every other time कोई अगर से बच्चा बिजी हो जाता है, कोई ना कोई बच्चा आता है कि मैम आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, हमको थोड़ा, and of course if they want a reference letter I can give them, but if we would, some people think कि Indians में selfishness भरा, कूट के भरा है. I would disagree, क्योंकि मुझे बोला जाता है कि सब लोग इतने अपने बिजी लाइफ में, but जो मैंने देखा है, जो बच्चे मुझे आते हैं मदद करने के लिए, there is still hope, and I think this proves it. When I am doing it for free, they are doing it, and they are helping all of them. It's not like they're helping only me. Whatever they do for me is actually for the community. Fantastic. Yeah. So ये बताओ, मैंने तुम्हारे कुछ पॉडकास्ट देखे हैं, हमेशा तुम लोगों को कहते हैं माइक पास लेकर आओ, तुम्हारा माइक कहाँ है, वो क्यों नहीं? माइक बहुत दूर रखा है इनफैक्ट. I don't stream too much, क्योंकि सब लोग बोलते हैं अच्छा सा सेटअप बना लो. I was like यार कौन इतनी मेहनत करेगा, मैं जो काम करता हूँ मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है. Mic is here, right here. So yeah. Okay. माइक पास करने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरे को OCD हो जाता है जब वो माइक दूर रहता है, क्योंकि मुझे लगता है अच्छी इनपुट नहीं आ रही. Mics aren't like the best quality mics in the world, but they're excellent mics up close. And then I saw it's becoming a meme. तो अब मेरे को वो OCD भी हो जाता है, मैं वैसे ही हो जाता हूँ कभी-कभी.
एक्चुअली मीम पे याद है, मुझे भी नहीं पता था कि मैं भी मीम कॉन्टेक्ट, अच्छे मीम्स कॉन्टेक्ट बने मेरे पे, तो आई एम वेरी लकी कि काफी हद तक जो मीम्स आते हैं आई एम वेरी हैप्पी विद इट। बट आज जो देख रहे हो मेरे पास माइक नहीं है, क्योंकि वो शताब का सुन के मैंने माइक तो खरीद लिया था, यहाँ पे पड़ा है साइड पे, वो खराब हो गया, फिर यूएस भेजना पड़ा उसको ठीक करने के लिए। कौन सा वाला ब्रांड है भूल गए, उसने मुझे बताया था, देखना पड़ेगा। क्या ये भगवान ही जाने, बट ये कौन सा है? येटी है, सेम मेरा हाँ वाला येटी, हाँ हाँ। तो मैंने फिर जूम वाला माइक यूज करने स्टार्ट कर दिया। आई जस्ट कुड नॉट डील विद दिस माइक आस पास लेकर आओ, तो क्या whatever works for you. या so That's tell why I me, don't build a streaming setup, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है, मतलब ऐसे, मतलब I do it sometimes with friends and all, but I don't like doing live streaming too much कि chat भाई आप कब आ रहे हो, अच्छा हाँ, I just, मेरे को ना थोड़ा input थोड़ा restricted पसंद है, so I can do these more anyway. so you are saying all of that is recorded, it's not live? It's never live, no. Oh, so this is unique to you. Yeah, I would just go to that place. मेरे को मुंबई जाना पड़े पॉडकास्ट करने के लिए, मुंबई जाता हूँ, but I make sure it's a physical call. The only exception I have is अगर कोई बैंगलोर में कहीं और है जहाँ मैं अभी तक नहीं जा पा रहा, like I'm now what I'm doing now in life is कि as many people as I can get here, and then like a pool of Mumbai guests, मैं वहाँ जाऊँगा, I'll rent an Airbnb for a week, I'll just do podcasts non-stop back to back to back. सबकी रिसर्च चल रही होती है फ्लाइट में, उससे पहले भी, so I'm prepared. Then I think अब मैं I'm gonna do home studio 15 दिन, थोड़ा मुंबई थोड़ा बैंगलोर, that way I can also travel around India. I'm in Faridabad next to Delhi. नोएडा, गुड़गांव, हाँ, नोएडा गुड़गांव, और जो बच जाता है वो फरीदाबाद है. That's the three cities around Delhi, right? So वो है like मेरा ऐसा है, अगर मैं if I go to a state I've never been to, I'll just set up camp there and spend time exploring, और पूरे दिन पॉडकास्ट करें. फिर बहुत मजे आते हैं वो करने में. जैसे लोग आते हैं अब, जैसे एक तो हम जूम पे हैं, ये ऑडियंस देखिए, लोग आते हैं अपने हिसाब से, कोई गाड़ी में आएगा, कोई कैसे आएगा, थोड़ा लेट आएगा, कोई अपने साथ लोगों को लेके आएगा, हर कोई आता है अपनी कहानी सुनाता है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, हम बात करते हैं, कुछ लोग खाना खाते हैं, कुछ करते हैं, फिर पॉडकास्ट शुरू होता है, फिर उसके एंड में अच्छा रहा, ऐसा रहा, एंड देन इट जस्ट, so the real podcast happens before the podcast and after the podcast, but it's just that, imagine like कोई, like I did a podcast with someone who rescues snakes for a living. तो not even a living, मुंबई में यहाँ वहाँ जाके सांप पकड़ता है, जिनके लोग घर में आ जाते हैं, and like you know he's a second generation snake rescuer. And the same day I did a podcast with someone who explained the Mahabharata to me. तो वो, मैं उस same space के अंदर हूँ, वो आ रही है, वो अपनी कहानी बता रही है, उनसे बातचीत हो रही है, मजे आ रहे हैं, राइट, ये आ रहा है, अपनी बता रहा है. It's just a physical interaction मेरे को ज्यादा पसंद आती है. हाँ, मैंने एक्चुअली ये सोचा नहीं था कि जूम से मुझे तो पहले तो यूट्यूब लाइव जाना आता नहीं था, मुझे सिखाया गया, ठीक है. वो भी शताब सिखाने वाले थे, किसी और ने, कुणाल ने सिखाया मुझे. एंड सो वी हैड डन अ हार्ट ब्रेक सेशन टुगेदर, अ साइकोएडुकेशनल ग्रुप, राइट, एंड दैट्स वेयर आई लर्न. फिर मैंने रियलाइज किया कि ये जो आप लोग, मैं तो नहीं बोल सकती कि मैं फेमस किसी भी एंगल से हूँ, पर लेट्स से श्वेता, यू एंड ऑल दीज पीपॉय, अक्षय, all these people who are actually got such huge amount of followers. I only recently got it as well. Okay, I don't know, you said 2017, but चलो ठीक है, मेरे हिसाब से मेरे बच्चों को तुम्हारे बारे में पता है, मतलब तुम फेमस हो गए, ठीक है. So let's catch the moon, guys. So I then realized कि जो आप लोगों की पॉपुलैरिटी है इन्हीं सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स से है, तो मैंने बोला चलो इनको एक चांस देते हैं आप लोगों से बात करने का, ठीक है. बट एक बार ऐसा हुआ कि मैंने श्वेता को बुलाया, 4 घंटे मैंने आई थिंक 5 मिनट बात किया होगा उस पूरे सेशन में, सिर्फ क्वेश्चन आंसर. और अब अगर से कोई मेरे को बोलता है श्वेता को बुलाए से, मुझे तो शर्म आ रही है उसको लिखने को ही कि आओ, क्योंकि इट वाज chaos, like absolute chaos, and some similar questions. So now I understood कि लोग live क्यों जाते हैं और Zoom पे क्यों नहीं मिलाते, पर फिर भी आज हमने सबको म्यूट किया है, और you said कि आपको क्वेश्चन आंसर नहीं आंसर करने, so that's okay. Thank you so much for doing this. और एक बात बताओ, तो तुम कह रहे थे कि तुम बॉम्बे में करते हो, यहाँ वहाँ जाके करते हो, तो जकार्ता तो तुम आओगे नहीं, ठीक है. जकार्ता अगर देखो पैसा अच्छा कमा लिया तो जकार्ता भी आ जाएंगे, मतलब मेरा पॉडकास्ट तब होगा. हाँ, मतलब मैं तो सीरियसली like I want to be able to do this on the road eventually. A studio is great, comfort वगैरह होता है, but a new place brings new challenges.
और वो जब when you do a podcast in a guerrilla style environment जहाँ पे कुछ चीजें हैं कुछ चीजें नहीं है, right? That is always more fun. तो इतना वो होना चाहिए that I can carry all my equipment, हम जगह जगह जा पाए. Imagine like living in Jakarta for a month, वहाँ पे podcast कर रहे हैं and exploring. It's the sort of life and that I'm trying to actually build for myself. So then I will tell you I'm moving to Dubai by August. So either come before August. ये आपकी उसका who's the president of Jakarta? It's not Rodrigo Duterte, right? That's Philippines. ये क्या? Who's the president of Jakarta? अभी तुमने मेरे को बोल दिया, मेरे को याद नहीं आ रहा. Jakarta, Indonesia वाला. So sorry, I'm going to sound even more. Jakarta is the city or Jakarta is the country? Jakarta is the city, okay. Yes. And by the way, they are changing the Jakarta capital also because it's going underwater. And, really? Yeah. And basically, I'm here for 25 years, okay. And initially, जो इनका अभी तो president change हो गया, पर initially 30 years तक एक जिनका नाम नहीं लेते हम generally यहाँ पे, okay, president का नाम नहीं लेते पहले वाले का. ऐसा क्यों है? कुछ रूल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? This thing, yeah, you're not supposed to. तब वो टाइम पे you could not. अभी इसका नाम ले सकते हैं, अभी अचानक मुझे याद. इंडिया फ्रीडम ऑफ स्पीच से भी बुरा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच. तब की बात कर रही हूँ, 98 में जब राइट. अच्छा. देन कू हुआ था एंड उसको निकाल दिया. फिर बहुत सारे आए. अभी जोको विडोडो है, इनके नाम थोड़े डिफरेंट है. जो प्रेसिडेंट उनका नाम वो है अभी. पर यहाँ पे पीएम नहीं होता, प्रेसिडेंट होता है जैसे अपने कंट्री में होता है. बट यहाँ का कैपिटल इज drowned, submerging in water. So very soon they're still looking for a place. I think Nusantara mein hoga. But my work was in Bali and I lived in Jakarta. And have you seen Jakarta sinking actually? I'm living here 25 years. बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा पानी बिल्कुल पास आ रहा है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं. ऐसा मतलब फ्लड्स के टाइम पे ऐसा लगता है कि because the land is getting clear. ऐसा इतना obvious नजर नहीं आ रहा है. But they are saying कि maybe most probably it is going to happen in time. So might as well move the capital. But this will be the financial capital. जैसे बॉम्बे को financial capital बोला जाता है. Correct. BSc NSC political capital, right? तो यहाँ पे जो फिलहाल जो president है जोको विडोडो, वो अभी वो move करने वाले. अभी तक move नहीं हुआ है वहाँ पे पूरा. Like maybe the embassies will move, but generally people will still work here. जैसे बॉम्बे में लोग काम करते हैं ना, कितना भी पॉल्यूशन है, कितना भी कुछ है, that's the financial capital of India. So that's how Jakarta will be most probably, but we don't know. पर तुम दुबई आ जाना, 1 महीना वहां रह जाना. डन सीन है. हाँ, कभी गए हो दुबई में? हाँ गया हूँ मैं. I went as a kid. और इंडियंस की एक आदत होती है, जिस भी देश के अंदर जाते हैं तो वहाँ के लिए एक वर्किंग रूल बना लेते हैं कि इस देश के अंदर ऐसा होता है. तो वर्किंग रूल ये था, मैं बड़े से ग्रुप के अंदर गया था, जैसे जाते हैं ना थॉमस कुक के अंदर 150 परिवार, ऐसे वो वाला सिस्टम जो होता है, पैन फैमिली सिस्टम. उसके अंदर रूल ऐसा बनाया था कि दुबई के अंदर अगर आप बाहर रहे तो आप बीमार पड़ जाओगे, अंदर रहे तो बीमार पड़ जाओगे. द की इज टू कीप मूविंग इन एंड आउट बिकॉज़ इट्स सो हॉट, राइट? Right. Especially June to August, right? That's why I'm going after August. I cannot even imagine going then. What's crazy about Dubai and all of UAE is it's all man-made. कोई इसमें heritage है ही नहीं. Like imagine like constructing an entire ecosystem out in the desert जहाँ कुछ भी नहीं है. यहाँ पे tents होते हैं. Singapore, na? Singapore is also like that? Yeah. Have you been to Singapore? Also as a kid. तो इतनी सी तो जगह है, but क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्लीननेस है. और वहाँ पे तुम्हारा जू भी हो गया, सफारी हो गया, सेंटोसा आइलैंड हो गया. That's still around, right? सेंटोसा तुम गए होंगे, सेंटोसा जब बचपन में गए होंगे, राइट? हाँ. अभी यूनिवर्सल स्टूडियो भी है. ठीक है, छोटा है, इतना बड़ा नहीं है. सेम लाइक हांगकांग. तुम हांगकांग को देख लो, कंक्रीट सिटी है, राइट? उसमें कुछ खास कल्चर तो नहीं है, बट दैट्स द ब्यूटी आल्सो. आई थिंक ईच सिटी हैज इट्स प्लस एंड माइनस. तुम बॉम्बे भी देख लो. बॉम्बे हैज अ लॉट ऑफ कल्चर. तो बॉम्बे के अंदर पहले बहुत सारे, हाँ, फिर भी बिल्डिंग पे बिल्डिंग. दिल्ली की स्ट्रीट्स ज्यादा वाइड है, बैंगलोर भी थोड़ा कल्चर नजर. बॉम्बे में तो सब हश. वैसे ही हांगकांग, आई लिव्ड 4 years in Hong Kong. So you were born in Mumbai? Not really. I was born in Lonavala. Okay. And then I studied in Bombay in Ruya College. Okay. I was there for 2 or 3 years, and then I got married. What neighborhood did you live in Mumbai? Dadar. Have you Dadar been? में? हाँ, I been to Dadar. My friend lived there. But I go and stay in Bandra West always, क्योंकि मेरे को उस जगह बहुत ही बढ़िया लगती है. Bandra तो of course is Elko market का पानी पूरी.
वहाँ पे बहुत सारे ना they've got these new health cafes that have opened up जहाँ पे 4 प्रकार की तो चाय मिलती है, 5 प्रकार की कॉफी, 6 प्रकार के avocado. ऐसा लगता ही नहीं है कि आप इंडिया के अंदर हो. It's very cool. बॉम्बे में? हाँ, बैंड्रा के अंदर ना, बैंड्रा में, बैंड्रा बेसिकली मेरे को लगता है वहाँ पे जिस तरह के हेल्थ मूवमेंट्स और फैड्स आते हैं ना कैलिफोर्निया में, एज इट शिप हो जाते हैं इधर. So you'll see like stuff you won't see anywhere else in the country. I've been, I think 2 साल हो गए नहीं गए after COVID. नहीं तो every year I'm in Bombay. तो या तो मुझे मिलने बॉम्बे आ जाना या तो दुबई आ जाना. Done scene है. आप भी digital nomad ही हो ना. You also keep traveling, right? No, I don't. I'm based in Jakarta only. I work online. So what is like Dubai or ये मतलब? Dubai is basically because my husband has got a new job. He's in IT and he just got something in Jan and गल्फ के बारे में गाने सुनने शुरू कर दो आप. नहीं ऐसा नहीं है. दुबई इतना भी नहीं है. मैं पहले भी जा चुकी हूँ. इंडिया में एक कल्चर है ना जो मतलब जो हस्बैंड्स गल्फ चले जाते हैं फिर वो बहुत 2-3 साल के बाद आते हैं. मैं जा रही हूँ साथ में ना. हमारा बच्चा भी जा रहा है और एडमिशन भी हो गया है. बिकॉज माय डॉटर इज स्टडीइंग इन कनाडा. I see. So that was one of the reasons क्योंकि it adds 8 to 10 hours of travel. One, right, if you're staying here vis-a-vis staying in Dubai. Second, education is amazing in Dubai. Husband's work center will be Dubai and Chennai because it's an IT firm. So then I said, ठीक है मेरा तो वैसे ही ऑनलाइन काम है. Plus mom इंडिया में रहती है. Right. If God forbid कभी जरूरत पड़े, अभी इतना सोच समझ के जाना पड़ता है कि जा सकते हैं कब तक पहुंचेंगे. That will be like a 2.5 hour flight. So yeah. Fantastic. That's my thing. So tell me something. I see only guys, mostly guys on your podcast. तुमको लड़कियों से कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी Zoom TV पे इंटरव्यू दे रहा हूँ. इंटरव्यू का दे रहे हो? मैं हम लोग तो आराम कर रहे हैं. नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है. It's just I decide whoever to get on. I have women on. It's just weird that I'm even answering this. अभी अगले 2 of all the new podcasts that are going to come out, 2 of them are female. It's just that I don't have like a diversity factor question in my head कि यार बैलेंस करके चलना है ऐसे कुछ. जो मेरे को मिलता है उससे बात करता हूँ. कभी बंदियां होती कभी बंदे होते हैं. I'm obviously talking to more guys. That doesn't mean that I hate women. That's just So what's your channel like? तुम जो क्या सोच के लोगों को अप्रोच करते हो पॉडकास्ट करने के? Like I have to be curious in what they do and बस बाकी फिर मैं सवाल पूछता हूँ. I ask very simple questions कि यार मतलब कैसा लगता है ये करके इस तरह से. And I don't know. I don't have कोई ऐसा कोई set process नहीं है. I do say it's a little bit harder to do it with YouTubers because so much of that has to be around their content. और मेरे को I like personalities more than जो persona होता है ना कि हम ये करते हैं वो करते हैं. मेरे को मतलब content की बातें करना पसंद नहीं है ज़्यादा करके. I can do it sometimes, but I prefer people who are like this is like the snake guy. He's become a friend. And so many cool stories. He brought a snake to the studio. मुंबई में वो actually सांप लेके आया हुआ था. And हम बैंड्रा में कैफे में बैठे हुए थे. किसी को पता नहीं था उसकी बैग के अंदर सांप है. अगर वो निकाल देता सब लोग पागल हो जाते. So मतलब it's just whoever I can also I don't know try to be friends with in the end. I don't know. ना हो ये दोस्ती तो not every podcast guest becomes a friend. That's not my goal as well. But it's literally like whoever I think is cool. बस मैं ऐसा कुछ कोई ऐसा structured ऐसे type Terminator का वो नहीं पहन के सोचता हूँ. तो तुमने कैसे अपने चैनल का नाम दोस्तकास्ट कैसे रखा? वो was just so I was doing another channel called Shatir where I was teaching writing to a lot of people for free. Was content which मतलब किस तरह से आप edit कर सकते हो, किस तरह से आप essays ले सकते हो, किस तरह से आप marketing copy ले सकते हो, हर तरह की चीज सिखा रहा था मैं. And I was doing a 30-day streak of content और 27 दिन में content खत्म हो गया मेरे पास. I had said everything I could possibly say. So I had this table. तो ऐसा like यार चल ठीक है मेरा इंग्लिश एक इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट है और मैं इतनी हिंदी में बातें करता हूँ. I just kind of miss that persona, like putting that out. Why don't I record like a podcast? ऐसे low quality experiment कि बस बात करते हैं देखते हैं क्या होता है. And I'd done podcasts, like I was doing podcasts on the other channel. So I got 2 friends here, Arpit and Siddharth, वो आए. Thankfully they're funny and super engaging. हमने काफी देर बात करी. उसी दिन रात को रिलीज कर दिया मैंने वो सिंगल कैमरा एंगल से. People responded very well to that, but I still didn't double down on it. And November में I decided कि ये सीन कर सकते हैं. Okay, so that's how it began for you.
Yeah, I mean, it's been happening for a long time, but like, look, the first few that I was doing was with the college professors जो मेरे को college में मिलते थे, अपने दोस्तों को pseudo expert बना दिया यार कि तू fitness की बात करते थोड़ी बहुत. The intent was always to, really just have these conversations that I was having off camera, but it took a while for finding the right kind of thing that I could repeat. Okay. Yeah. Sorry, बीच में lag आ गया तो I was wondering कि No किसका मेरा भी unstable है, आपका भी थोड़ा unstable है, I think internet आज. Now it's okay, right? Yeah, it's okay. You said you write. What do you write? You said internet writer. क्या होता है? मतलब इंटरनेट राइटर का मतलब ये होता है कि एक तो कन्वेंशनल रास्ता है कि आप कोई किताब लिखो, उसको पब्लिश वगैरह कराओ पब्लिशर के थ्रू. The chances of success in that are like next to none for most people, because you don't know publishing houses को क्या commission करना है, किस time पे commission करना है, right? And internet writing is just a faster way of getting feedback and then doubling down on it and building an online proof of work. So जिसके अंदर you write mini essays, you can have like a blog website, a social blog, you can write tweet Twitter के threads, you can write Instagram carousels. It's just a more accessible way of becoming a writer with feedback embedded. Because otherwise तो जो regular writer होता है, अगर आप newspaper में जो op-ed लिखता है, कुछ और लिखता है, even they will work with an editor, they're fine. Novelists या proper जो author होते हैं, they sort of, the success rate for that is very low. Like your fiction book working out and making you money in the future, मतलब royalties तो बहुत ही बड़ी हैं publishing industry के अंदर. So is very little. This is just a faster way of. इससे आपके ideas भी और clear हो जाते हैं, क्योंकि आइडिया का एक छोटा सा स्निपेट लिखोगे ट्विटर की ट्वीट के अंदर, राइट, तो 80 कैरेक्टर्स, एंड इफ दैट गेट्स अ लॉट ऑफ verbal feedback and comments, reshares, something is there, something about that idea is great, so you can maybe then expand on that and write 5 more points on that. तो उस तरह की ये public data driven writing is generally what I think is an internet writer is. Okay, but does it get paid? Do you get paid? Absolutely. I mean, because I've done this for so long, I taught a cohort on how to do this, and how to get a job in content creation and all of those things. I stopped there once I went to those casts, but of course it gets paid. अगर आपकी writing, आप इससे audience बनाओ, and that leads to very interesting possibilities, because then you're not at the mercy of, say, someone else putting you on their platform. You have your own audience that comes to you for your writing. वहां से you run a newsletter, and then you run a paid newsletter. आप उससे एक podcast बना लो. You go to Substack and say, यार मेरे पास इतने लोग हैं, and then they're like, why don't we become Substack exclusive? You get paid for that. Newspapers are more likely to give you something to write about when they know कि तुम्हारे पास 20,000 लोग की audience है जो तुम्हारी writing पढ़ते हैं, and even if it does not meet their editorial standards, they'll still fill you in because you have an audience for that. So a lot of things open up, because you own your distribution. Any specific publication or anything you write specific to? I write my own essays. Up to me, I just do it on the side to keep building proof of work, because I've been writing since I was a kid. And where do you give this? I mean, it's on Twitter page. There's this link. I don't think abhi Twitter pe hoga nahi. It's TypeShare. There's a social blog called typeshare.co. Okay. It allows you to write 300 words ke chote chote mini essays on topics, and it allows you to write threads. So I have like 50 or 60 on there. So people buy that? No, that's for free. But अब बहुत सारी creator economy में companies आ गई हैं. Say you are a poet or a writer, right? And there's a part of your audience that really, really enjoys that. It could be 5%, 10%, or 1% who are willing to pay for that, right? So suddenly, because of having an audience for your internet writing, you can actually make money from providing your audience with paid, good written content. जो शायद आप नहीं कर सकते अगर आप 2 साल कमरे में बैठ के किताब लिखो, and with no feedback, you're just like building a house on the wrong plane, for the lack of a better word, and कोई आपको reject कर दे फिर, then you're screwed. Oh, okay. Yeah. अच्छा, किसी ने मुझे बोला है तुमसे पूछने को, तुम श्वेताब के साथ कब पॉडकास्ट करोगे? अरे श्वेताब के साथ पॉडकास्ट, हाँ, मेरे पास भी बहुत सारे सवाल आते रहते हैं यार. उसका जॉनर जो स्टाइल है उसका वो अलग है. बिसाइड्स हमने पहले भी एक बार उसके इनके शो हुआ करता था रॉ एंड रियल में, उस पर गया था, एंड ऐसी कोई पर्टिकुलर वाइब नहीं बैठी. तो मतलब एक थोड़ा वाइब भी बैठना जरूरी है फॉर मी टू लाइक एक्चुअली हैव समवन ऑन द पॉडकास्ट. एंड आई like, it's great what he does, but it's not what I want to do. Matlab, I'm more heading toward freewheeling conversations and comedy and that sort of thing. But I done it with Prakhar, who does something similar to what he does.
but so different they are. I don't think they're similar. मतलब ये तो वो वाली बात है कि आप क्यों नहीं करते, मैंने बता दिया यार, मतलब ये तो एक मेरा अपना शो है, मेरी मर्जी है मैं किसी को लाऊं या ना लाऊं, इसमें आप तुम बताओ। लोगों ने सुन लिया, मुझे मत पूछो, इनको पूछो, मैं उनको पूछते तो रहते ही हैं, everyone keeps asking that, the answer is same. Like for example Rachna, you decide, someone comes to you and says कि यार मेरे को इसको लाना है, you're like that's just choice. Yeah, generally I get along with everyone, but like you're saying, सब friends नहीं हो सकते. हाँ, किसी के साथ एक vibe gel होती है. और I think your video got frozen again. even yours, same here. I don't know किसका stance. ये तो पता नहीं लगेगा. हाँ, तो अच्छा एक बात बताओ, ठीक है? तो ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ा और तुम सोच रहे थे कि हाँ इसने मुझे ये क्वेश्चन जरूर पूछना है? मेरे को तो टॉक थेरेपी की बात करनी है, मैं तो एक्चुअली मतलब हम ये सारी बातें कर रहे थे, मैं तो उन चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ. मुझे थेरेपी की बात ही नहीं करनी. ये but I just have one question. would be the right person to actually talk about therapy. No, about everything else. He's my best friend from school, तो मतलब मैं उसको वैसे भी जानता हूँ. You know him from school? हाँ, अभी मेरे घर से 5 मिनट दूर ही रहता था. Yeah. Oh, अच्छा, okay. Because he's like deep into psychology. मेरे को इतना टाइम हो गया. नहीं, मैं अरे मेरा सवाल तो सुनो, टॉक थेरेपी पे क्या है. मेरा सवाल ये है टॉक थेरेपी पे कि अब कोई बोले जा रहा है नॉन स्टॉप, वो आप उसे बस ये बताओ कि आप उसे गाइड कैसे करते हो कि यार like when do you decide I'm going to ask a question now. I'm also saying that as a podcaster because you speak to people for so long. Yeah. But did you find that over here, that when I was listening to you I came नहीं मैं तभी तो पूछ रहा हूँ, like when do you decide to chime in when someone is speaking to you in a session? Depends. If the person is very talkative, then you keep quiet for a very long time. Okay, you don't pitch in at all. Okay, because they don't need prompts. You see, they are linking this thought to the other thought to the other thought to the other thought. Like I was doing in the beginning, मुझे तो थोड़े टाइम के लिए लगा मैं तुम्हारे शो पे आई क्योंकि तुमने मुझे क्वेश्चंस पूछ लिए और मैं बात करती जा रही थी, right? And you were listening to me. You understood that she doesn't need to ask. Similar here, when you were talking, I kind of kept that thought कि अच्छा ये मुझे पूछना है इसको क्योंकि ये इसने सारी चीजें बता दी पर ये important मुद्दा छोड़ दिया. So similar to that, you just kind of give them a push when they are very quiet and you ask them, like I'm also a psychotherapist, right? So मैं पूछूंगी अच्छा तुम्हें क्या लगता है? I start from the childhood. First 10 years में क्या हुआ किसी को ज्यादातर याद नहीं रहता, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको याद रहता. Then you break it down and then they go. Then you ask them certain questions. Some of them you never need to tell. Sometimes you have to tell them, okay, it's 1.5 hours. I've heard you like for 1.5 hours. May I speak? There are some clients you have to actually tell them, may I speak? I think I understood the issue. Can I like tell you? Because otherwise take another appointment. So it's just I think it's a person to person. There is no particular set way that I'd say कि अच्छा अभी मुझे इसको पूछना है, अभी चुप बैठना है, अभी कितने देर बात करना है. But yes, generally एक 4-5 questions तो हमारे पास होते हैं. 1, break down your family. 2, what are your fears? 3, what's your relationship with your parents? Because that kind of lot of it comes from there, right? The learned behavior, your society. So you kind of understand. I'll also ask, कि तुम कहाँ पे, where are you from? That also matters. If you're from a city, if you're from a more a village area or something, or if you're staying in a joint family, that also matters. Many of them who come from joint families generally have lower self-esteem than ones with like where only mom and dad and sister siblings are there. So why is that? Because जब एक joint family में होता है तुम्हारी comparison ज्यादा होती है इस cousin के साथ, उस cousin के साथ. तुमको सारा टाइम एक तुम तो खुद के sibling के साथ तो तुम्हें हो रहा है, but तुमको अभी यहाँ पे दूसरों से भी competition बाहर के साथ तो हो रहा है पर अंदर भी हो. तो many a times ये भी देखना पड़ता है joint family से आ रहे हैं और तुमको उनका financial structure देखना होता है कि कौन कमा रहा है, mom कमा रही है, dad कमा रहे हैं, दोनों कमा रहे हैं कि एक ही इंसान कमा रहा है या तो financially they are not well off. That also affects your self-esteem, that affects your studies, the way you mingle with your friends. Because many a times आजकल के ज़माने में because Insta का ज़माना है ना, ये लोग देख के इतनी insecurities आ जाती है, तो उनको लगता है उनके पास इतना पैसा है हमारे पास बिल्कुल, तो वो भी एक reason होता है. तो depends, each client is, but generally यही few subjects के around rotate होता है और मैं 45 minutes में मेरा time मेरा मन में रहता है.
45 मिनट्स क्लाइंट बात करेगा, 15 मिनट मैं बात करूंगी, जनरली ऐसा होता है। इंटरेस्टिंग। तो आप कभी ऐसा नहीं करते, जैसे मैंने देखा है really good listeners, they are able to stop the urge to, जैसे अब मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ और आपको कुछ बोलना है, तो आप हल्का हल्का मुंह खोलना शुरू करोगे और मुंह ऐसे ऊपर करोगे कि अब मैं बोलने वाला हूँ बस, you right that right? I find that very good listeners don't do that, like they take a pause and then say it. Yeah. So in case you have not watched my podcast with Shweta, Shweta and I are extreme personalities, right? I'm extremely emotional. He's very practical. Okay. So it was a very interesting thing. And last session, 4 hours he was there. And uske pehle 1.5 hours. Uske pehle jab maine self-worth wali session ki thi, I think I spoke 5 minutes. I was listening, and of course at the end of the thing ये बच्चे लोग हंसने लगे कि मैम आप कब बोलने वाली, आप कब बोलने, तो मुझे हंसी आने लग जाती है क्योंकि I laugh very easily. तो yeah, I was a very good listener, and generally I can listen for hours. मुझे फर्क ही नहीं पड़ता. But I'm also the other end where I can talk non-stop. So it's a very interesting combination I have कि मैं सुन भी सकती हूँ, मैं बोल भी सकती हूँ. It's One of the not things like, I had to learn when I started podcasting is how to listen. okay. कहने का तो बहुत कुछ था, but सुनना बिना quip दिए. Sometimes it's great when people are a little inarticulate. You can help them fill, sort of make a collaborative exercise of telling a story. कि आप जब उनसे बात करते हो, उनकी कहानी सुनाते वक्त, तो आप उनको emphatically हाँ कह रहे हो कि मैं तेरी बात सुन रहा हूँ, मैं इसमें इतना इंटरेस्टेड हूँ. फिर वो उसको बनाते हैं. Sometimes you also ruin a good story or ruin a good moment by speaking up. तो मेरे को वो बड़ा मुश्किल था क्योंकि मैं इतनी बातें बाहर भी करता हूँ, हर जगह बातें ही कर रहा होता हूँ मैं. It's a different skill. Listening is very different than speaking. It's very easy to speak to each other over each other. पर सुनना, थोड़ा उसको अंदर मैरिनेट कर देना, फिर उसके बारे में कुछ बोलना, that's still something I'm learning. Yeah. See, you're still young. Even I do that sometimes, especially when I get excited, right? Yeah. Compared to me, you're very young. So I'm just saying कि it's an art which we come. But मैं तुमको क्योंकि psychoanalysis इतना अच्छा लगता है, मैं तुम्हें कुछ help करती हूँ. मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने जब अभी process group किया था, ठीक है? You're supposed to just talk. The leader of the group is a psychiatrist. Okay, he sits. And you have this process group for like say 40 weeks. So you know these people. Every weekend you're talking to each other. Now, जैसे तुम अभी बोल रहे हो ना कि बीच में बोलना एक आदत बन जाती है, right? कि हमको कुछ बोलना है, उनको असिस्ट करना है. It's something like that, right? तो मैं ये कर रही थी ग्रुप में, जो मैं पॉडकास्ट में नहीं करती. मैंने रियलाइज किया कि, और मुझे फर्स्ट या सेकंड सेशन में ही लोगों ने टोका कि रचना, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? व्हाई डू यू कीप helping us? अभी तुम देखो, तो फिर then you have to go and introspect and you start talking about yourself कि अच्छा, पहले तो तुम realize नहीं करते हो कि तुम ऐसा करते हो, right? क्योंकि पॉडकास्ट पे तो सब लोग मेरे को लिखते हैं कि मैम you are such a good listener. I'm like yeah I am, but yeah totally. पर क्लास में तो अलग बात हो रही थी. वो लोग तो मुझे बोल रहे हैं करके मैं I'm not. Then I realized it has to do something with my childhood. I was always the person who would jump to help people. And therefore, even as a counselor, if I see someone is in trouble, I jump to help. You see? So that is connection to my childhood. जब मैंने देखा था कि मेरे फैमिली में प्रॉब्लम्स हो रहे थे मेरे भाई बहन के साथ या जो भी, मैं उनको हमेशा से प्रोटेक्ट करते आई हूँ. तो फिर मुझे समझ में तो this is what I'm doing in the class. Now this is what the funny thing happened. So I realized you psychoanalyze, you understand what is going through, you process it with the group. Then what I did was next session, I kept quiet. Okay, so this is how I sat throughout the session. And I was just doing this, like मैं सुन रही थी. तो सारे मेरे classmates, Rachna, you don't look good quiet. You need to talk. We are feeling very uncomfortable when you listen. I'm like, यार, चिट भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, मैं बोलूं या चुप बैठूं, समझ में नहीं आ रहा है. So then I had to literally have like a balanced thing. जब लोग बोलते थे मैं बहुत देर वेट करती थी कि अच्छा ये इस इंसान को हेल्प चाहिए कि नहीं मेरी, क्योंकि क्या हो रहा था, some of them are Indonesians, somewhere from Britain, Australia, and because I speak more fluent English than the others, every time I would think that this Gora is not understanding what they're saying, I would come to their help. Like वो होता है ना, वो
like cat woman या जो भी आते हैं, पता नहीं कौन आते हैं. अरे जो होटल क्या कहते हैं कॉलेजेस के अंदर होता है ना, हेलो माय नेम इज, कि आप मेरे से बात कर सकते हो. समथिंग लाइक दैट. तो आई थिंक आई वुड डू अ ग्रेट जॉब एट दैट, बिकॉज मुझे तो वैसे भी बिना रीजन हेल्प करना अच्छा लगता है. तब फिर मुझे बहुत आई हैड टू बी सो केयरफुल कि देन आई वुड टेल देम यार आई एम सॉरी इफ आई थिंक आई ओवर दिस थिंग. देन दे से नहीं वी लाइक इट, that you at least trying to help. So it was a difficult balance which you will learn in time. And since you like psychoanalysis, ask yourself why you do that. I've always spoken, I think. In fact, जब मैंने deliberately अपने आप को introvert बनाने की कोशिश करी थी ना कि मैं नहीं बोलूँगा, just shit hit the fan. I didn't like it one bit. What did you try? You said you? I said I deliberately thought, मैंने ना ऐसे I had some years, but I figured, you know, because you're young and stupid, you're like ये काम करते हैं. जितने भी ये artists हैं ना, like all the rock stars and stuff, they had a lot of quiet solitude वाला time, and they sort of became antisocial for a few years in college. एक पहले 2 साल. And I didn't like it at all because मेरे को ना I would feel like ये जो चीज है it's not me. I'm most at ease around people, उनसे बात करता हुआ, हंसी मजाक करता हुआ, और वो जो deliberate, I mean I understand the need for silence. I certainly integrate silence into my life. But I fundamentally like being around people and exchanging ideas. और वो खत्म कर रहा था for the sake of यार whatever this abstract idea of art or creativity is. I'm making far less art. So I like being in the market as much as I like being at home, for the lack of a better word. Because if you're at home too much, you lose touch with what is happening outside. You don't get an idea. You don't get a chance to exchange energies. If you're in the market too much, you get drowned out by the voices of others. You become all of the opinions of your friends and associates and whatever else, right? तो वो balance तो बहुत जरूरी होता है. So you're basically an ambivert. That's what you're trying to say. नहीं, ये तो ऐसे आजकल generic words बना दिए. I'm just saying कि when you deliberately try to think कि मैं एक extrovert हूँ या एक introvert हूँ, and you act it out. My problem in my life and my blessing has been I always act out the ideas that I think. मैं सिर्फ सोचता नहीं हूँ कि मैं हूँ. मैं उसको फिर end तक जाके fanatically करने की कोशिश करता हूँ. That often leads to some very disastrous results. So I label yourself basically. If you label yourself, I actually become that. Yes. Yeah. Yes. Okay. Got it. That's been interesting. I know कि कुछ questions. Sorry, people. आपके questions. पूछ लो यार. ऐसा क्या है? I don't want to be a fanatic about not asking questions. But if they have questions for you also, that works. नहीं, मेरे तो बाद में भी चलते रहेंगे ऐसे. Ma'am, to ask my question. I don't know, मंजीत, मैं ढूंढ रही हूँ. Please give some tips for writing skills. अच्छा, ठीक है. एक तो हमारा चैनल है शातिर, उस पर जाके मैंने कम से कम 200 वीडियो बना रखी है राइटिंग के ऊपर ही, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर. इफ आई हैव टू गिव यू अ सिंपल जिस्ट, राइट, आई थिंक यू शुड नंबर 1 राइट डेली एंड देन गेट फीडबैक डेली. उससे बढ़िया तो कुछ नहीं है. राइटिंग डेली का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जर्नल लिखी, दैट्स पार्ट 1 ऑफ इट. द अदर पार्ट इज डूइंग द हार्डर थिंग व्हिच इज पोस्टिंग ऑनलाइन इन सम कैपेसिटी, एंड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ योर आइडिया यू विल स्टार्ट रिसीविंग इनपुट ग्रेजुअली. ठीक है. दूसरा तरीका क्या है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, because some people also complain about कि यार हम राइटिंग तो कर रहे हैं पर हमारी राइटिंग पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, हम सुधर नहीं पा रहे. तो अब जब और लोगों की राइटिंग्स को क्यूरेट करोगे, कंपोज करोगे, जैसे आप बोलोगे 10 quotes from Naval Ravikant that changed my life, something like that on Twitter, and you tag him, chances are he will see it, someone else on the internet will see it, and the quality of your writing will be judged based on that as well. तो वो feedback incorporate हो जाएगा. That is just like one dead giveaway. In general तो 4-5 pages daily भरना journal के, even if it's nonsensical stuff, is good because it makes you comfortable with expressing yourself in an non-judgmental manner. Okay. So, but do you think when you read so much from other people that your own original ideas कहीं ना कहीं चली जाती है कि does it help? There are no original ideas at all. सब कुछ already बोला जा चुका है, right? So अभी आप देखो भी, और if you look at Bollywood for example, हवा हवाई पुराना गाना था, शैतान पिक्चर के अंदर दोबारा से उसको डिचिक डाल के दोबारा बना दिया, right? All things are repackaging of the past essentially. And अब क्या है, because our attention spans are so small, we don't have access to primary sources. किसी को बाइबल पढ़नी है, भगवद गीता पढ़नी है, कुरान पढ़नी है, उनके पास वो टाइम नहीं है. Instead they'd be much happier if you curate 7 lessons from the Gita that will, like, I mean it sounds like मैं cliche वाली बात कर रहा हूँ, but curators they are original in the way they curate things. अब उस चीज की जरूरत है. किसी के पास टाइम नहीं है. There's a certain kind of personality type that looks to the deep core of issues. Most people just want to know कि यार क्या है, थोड़ा मेरे को पता लग जाए, कोई मेरे से पूछे तो I should know. For those people, which is majority of the world, you know, you can just curate stuff. So originality की तो बात भी नहीं होती. In that process of curating, you also find out what you like curating. That's your voice.
By the way, you said that you jump in. I didn't find it in this podcast, by the way. I think you're a good listener. Thank you. And what if you didn't notice, I noticed something about you is you know when to stop. Very rarely, some people can, if I would ask a question, they would speak half an hour, 45 minutes into it. And you did. So I think you're underestimating maybe you've learned a lot. Thank you. I think also मैं किसी और उस पे जाता हूँ, मैं कम जानबूझ के बोलता हूँ कि मैं कुछ उल्टी बात ना बोल दूँ. अरे डोंट वरी, यहाँ पे चलता है. किसी ने पूछा, आपको पूछे कि आपका विपासना का एक्सपीरियंस कैसा था? भाई 215,000 लोग बना चुके हैं विपासना का वीडियो. मैं बनाता हूँ, लोग ऑफेंड हो जाते हैं क्योंकि मैंने हंसी मजाक कर दिया उसके अंदर. Look, the website is called dhamma.org. It's free across the world. You can do it. मेरे जितने दोस्त हैं मुझे फोन करते हैं, anyone else who's done विपासना, क्या करूं, ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं. It's a bunch of optimization. Eventually क्या होगा, डे 0 पे दोपहर के शाम के 5 बजेंगे और वो बोलेंगे अब से मौन व्रत मतलब मौन शुरू है. And then you'll get to meet your head. No amount of preparation will escape you, prepare you for it कि तपस्या कर लूं या कुछ ऐसा कर लूं या 4 दिन पार्टी कर लूं. Whatever you do, you will arrive there the way you are. So I think there are more competent authorities in Vipassana. The only competent authority is Goenka, who's designed the method. You can check it out on the website. But how was your experience? Did you like being quiet for so many days? It was tough for sure. Just हर किसी को होता है. और मैंने सोचा जब वापस आते हैं फिर you're like very quiet after that also, right? ये तो I was speaking to a mentor of mine. He's like विपासना से सब लोग आते हैं बड़े ही ऐसे होते हैं, फिर कुछ दिन में बिल्कुल ही रिएक्टिव बन जाते हैं कि यार तू ऐसे क्या. मेरे घर वाले भी मेरे को कहते हैं यार तू यार मतलब ऐसे अब तेरा विपासना नहीं चल रहा. बिकॉज मैं कहते हैं कि तू जब गुस्सा होता है 10 फुट चलता है रिएक्शन करके ऐसे. सो आई वाज लाइक ओह शिट, ये लोग मेरे को शेम कर रहे हैं मैंने विपासना करा था क्योंकि. बट द थिंग इज ओवरऑल एक जनरल सेंस ऑफ, जैसे आप अगर सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन एप्स यूज करते हो, नथिंग रॉन्ग इन दैट, आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आपकी चुटकी ऑफ एहसास थोड़ा कम होता है. लेकिन जब आप 10 दिन कर लेते हो, इट्स लाइक डूइंग अ बूट कैंप फॉर एनीथिंग, राइट? लाइक यू डिड योर क्या कहते हैं साइकोथेरेपी के लिए जो करा था. तो व्हेन यू डू अ बूट कैंप इन समथिंग, इट्स जस्ट यू आर इमर्स्ड इन वन थिंग. आप कितना, हम लोग क्या करते हैं, हम करते हैं भाई 5 मिनट मेडिटेशन कर ली, 10 मिनट काम कर लिया, ये कर लिया, वो हर चीज स्केड्यूल होती है. जब आप एक ही चीज के लिए 10 दिन आए हो कि मैं और मेरा दिमाग है, तो ऑब्वियसली इट improves your baseline level of awareness about who you are. And knowing that you've done vipassana, you know कि मेरे पास हमेशा एक चीज है, I have a practice that I can reintegrate into my life at any point. So naturally other modes of relaxation and being at ease become more accessible to you because you've done this tough thing. Practice करो ना करो वो तो अलग चीज है. Okay. Somebody is saying क्या podcast with प्रखर. यार मैं जिसके साथ भी पॉडकास्ट करती हूँ, तुम लोग किसी और का नाम लेते हो. अभी विनम्र को एंजॉय करो. ये YouTube की जनता का यही है. ये सिर्फ आप इसका, ये भूख ऐसी है जिसका कोई अंत नहीं है. लाइक हमेशा कुछ किसी इसको बोला, अरे श्वेता, मोस्टली तो श्वेताब का नाम है. मे बी प्रखर इज योर फ्रेंड. अच्छा, हम विनम्र को पूछेंगे, वुड प्रखर लाइक, आई मीन आई डोंट नो, ही इज प्रखर's friend, so वुड यू लाइक टू डू अ पॉडकास्ट? आई एम श्योर वो कर लेगा. वो तो आई थिंक योर इंटरेस्ट्स अराउंड जो साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं ना, और आप you do it practically, I think that would be very interesting. Yeah, it would be interesting, but like I like to do podcast मस्ती में भी. और किसी ने by the way उस मस्ती वाले क्वेश्चन से पूछा है, he likes the way you ask questions to the guests and keep the conversation in a flow. How do you do it, Vinamre? पता नहीं यार, TBH, I'm not kidding. I don't know. मैं बैठता हूँ, बात होनी शुरू हो जाती है. मैं ऐसे कोई, मैं वो कॉकी नहीं बन रहा हूँ कि मैं को बहुत कुछ like this is come intuitively. Okay. मतलब मेरे को I think जो आप बात कर रहे थे ना कि you can turn it on like that. So I can turn on like oh my god, अब 1 घंटे बस मैं और ये बंदा, इससे सब कुछ जान लूंगा आज. मैं थोड़े उस स्टेट में चला जाता हूँ. I become very childlike. Same. Yeah. It's just natural. I don't think Yes. that is like today. I would never give a set questions per se unless a guest asks me. Some guests do ask me. Same. I hate that, but some people ask. मैं क्या पूछूंगी? अपने आप देख लेंगे ना. पॉडकास्ट का मतलब ही नेचुरल ऑर्गेनिक वे. और आज हमने कुछ डिसाइड नहीं किया था. It is so much better, right? हम एक दूसरे के साथ. But I will say, Rachna, in जिन कुछ लोग ऐसे होते हैं that are very media trained,
और उनको themes वगैरह पसंद होते हैं, so they don't, you know, they're not sorry क्या बोल रहे थे आपने? I want to हाँ say कोई बात नहीं, मैं कह रहा था कि कुछ लोग मीडिया ट्रेंड होते हैं और they're a little afraid of like saying the wrong thing, तो वो हमेशा themes मांगते हैं because they don't want to be caught off guard. I empathize with that feeling, but at the same time मैं बोल देता हूँ हाँ ये themes हैं and I almost never touch on them. So it's like कि हाँ ठीक है, आपको ये लेना ले लो, ये मैं anchors की तरह यूज करूँगा. मैं खुद भी कई बार anchors लेता हूँ when a conversation is like with an author, तो मैं वहां पे merely pedestrian हंसी मजाक नहीं कर सकता, मेरे को उनकी किताब का विश्लेषण करके उनसे पूछना पड़ेगा. That's when I write it down कि यार ये वाला point I'll raise. But हाँ, ये पुनीत सुपरस्टार कौन है मुझे नहीं पता, तुम लोग क्या कर रहे हो यार, मुझे नहीं पता, तुम ऐसे लोग, मैं बाद में गूगल करके देखूंगी ये कौन है. you like it. I think it's a legendary podcast. Who's this Puneet? Puneet was a TikTok superstar पहले TikTok पे, then he was at MX Tech superstar, now he's an Instagram superstar. His mastery is in performance of all kinds. वो मुंह पे केक फोड़ लेता है, वो मुंह पे पेप्सी डाल लेता है, वो कुछ भी कर लेता है. He's very self aware. बेड पे बैठे बैठे इससे आजकल के 18 से 24 साल के लौंडे अपने आप को विनम्र बोलते हैं ताकि लोगों को लगे वो कोठी बंगले वाला है. एक क्लास डिफरेंस पॉइंट करना होता है ना, जैसे इस तरह से. And he has immense amounts of energy कि वो दिन में 300 वीडियो बना सकता है, 400 भी बना सकता है, इस तरह से. Wow. Okay. He can perform crazy on command. Okay. Yeah. Interesting. Okay. I know you said that you want to go at 8:30 India. Yes, please. We have like 10 minutes, right? हाँ. तो एक क्वेश्चन तुमसे पूछना था कि तुम्हारा कोई bucket list है? Do you believe in bucket lists? Oh yes, all the time. Actually, I was watching Logan Paul, this famous YouTuber. His bucket list was being a part of the WWE, and he beat Rey Mysterio, who's like a big time wrestler. ऐसे bucket list तो है. I definitely want to go in Spain and you know like, मतलब मेरे को ऐसी चाहता है कि मैं कई देशों में जाके प्यार में पढ़ूं. मतलब मैं इंडिया में प्यार में पढ़ चुका हूँ और बॉस्टन में पढ़ चुका हूँ, यूएसए में, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं स्पेन में जाके प्यार में पढ़ूं, मैं स्पेनिश में प्यार करूं, और फिर मैं चाहता हूँ ऐसे मैं कहीं टर्की में इश्क में आ जाऊं. ऐसे दैट इज देयर, और उसके आसपास जिंदगी. I one image that always comes to my head when I think of not a bucket list thing but happiness is मैं केरला में एक लंबी सी बोट पे लेटा हूँ. जो वुड वाली बोट होती है ना, ओनम वगैरह में यूज करते हैं, ऐसे लेटा हूँ. मेरे सर पे एक स्ट्रॉ हैट है, पेट पे एक बियर है, सनशाइन कर रहा है और लग रहा है कि और कुछ नहीं चाहिए. It's just in an image. I don't know how to explain it, but whenever I think of happiness, it's just what comes to my mind. That's your safe place. Yeah. I guess. Okay, interesting. And tell me just a little bit, if you had setbacks in life. I know you said some in the beginning you needed therapy, but otherwise, what's your way of coping with setback? How do you? ऐसा तो हो नहीं सकता कि setbacks नहीं होते, होते. तो आपका what is your go-to thing to do? कुछ केरला every time नहीं जा सकते तो क्या करते? Overwork कर देता हूँ मैं तो अपने आप को. I overwork or I break down in private. जर्नल वगैरह कर लेना. I think it's very helpful to get off social media and content production अगर ऐसा होता है. What I've done wrong in the past is before carefully analyzing my feelings and feeling them, I've immediately spoken about them as they're arriving to others. So they don't know what I'm feeling. So what I did wrong is I preemptively sought advice where I could have consulted with myself first, had the issue calm down a little, and then approach someone. तो ये कुछ गलती करी है मैंने. Okay. But तुमने YouTube में देखा है कि followers होते हैं, लोग तुम्हें follow unfollow करने का गेम तो मैंने कभी देखा नहीं था लाइफ में. आज first like this time I've realized कि इतना short term इनकी so called loyalty होती है. And लोग last time कुछ लोग बात कर रहे थे उनके, क्योंकि the ones who make money out of the content on YouTube or whatever, for them the viewing hours are so important and it can affect the numbers game and the money. So how do you go through this, or you have like finally found the peace कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, I'm fine, it doesn't get to me, and how do you cope with that? Like what doesn't get to me? मैं थोड़ा समझा नहीं सवाल. The point, because you cannot have consistent income on YouTube, right? एक दिन तुम्हारे views
ज्यादा है, तो दे नॉट लाइक अ 9 to 5 जॉब जहां आपको इनकम आ रही है, और तुम्हारे फॉलोअर्स भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो मैं तो YouTube डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए अच्छा, मैं तो शुरुआत से ही मैंने कोर्स भी बनाई थी from the intent for that only, and I do something else on the side. Like you don't have to go on the internet to make money from the internet. It can be, मैं तो बिल्कुल नहीं सोचता कि YouTube एड रेवेन्यू से मेरा घर चल जाएगा, मेरी टीम भी है, उनको भी, it's just impossible. So see, I see it as a market. ठीक है, YouTube just is the biggest marketplace. Like वो वीडियो उसका Google है, for the lack of a better word, क्योंकि the company literally owns it, right? So I see it like that. उसके अंदर मैं अपना दिल लगाऊंगा, और मैं मतलब मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, कितनी क्रेजी ग्रोथ हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ, और उसमें मैं ज्यादा बिल्कुल, if I go too deep and like I start placing my financial risk लेना शुरू कर दूं, और मैं यही सब कुछ है, यही मेरा दाता है, I'll be screwed because I'm at the mercy of the opinions of others. अब मैं कोई पॉडकास्ट करता हूँ किसी चीज पे, किसी को पसंद ना आया, बोले यार ये आदमी बेकार है, कौन फॉलो करके चले जाएंगे? तो it has to be independent. I don't मेरे को समझ नहीं आता लोग ये चीज रियलाइज क्यों नहीं करते कि it cannot be your whole life. And I'm someone who's, मेरी तो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ मिक्स ही हो गई है, जहां जाता हूँ वहां दोस्त कास्ट की बात करते रहते, बहुत अजीब सा ही है, 1.5-2 हफ्ते में ही हुआ है। क्या लाइफ है तुमने, तो ये पर्सनल हुआ दोस्त कास्ट, ये प्रोफेशनली बन गया ना, like now I do this full time. So that's what I'm saying. Then that's on YouTube, right? So you are dependent on that YouTube channel, no? It's my largest distribution network, पर ऑडियो भी होता है, और भी चीजें होती हैं, then you can make other content around the podcast which you're working on, newsletter भी है, we're restarting, बहुत सारी चीजें हैं, you have to have like several touch points. Okay. हाँ, क्योंकि just being like at the mercy of one platform, my God, like what happens if अगर आपको कुछ हो गया, or what happens like if you're just not as funny, you know, like there's a new kid in town, ये तो होता ही है, फिर वो पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट बन जाता है, किसके ज्यादा सब्ज है, कौन ज्यादा आजकल रेलेवेंट है, कौन कम रेलेवेंट है, it's an endless game. Yeah, that's what I've seen. Like कभी-कभी लोग ना बोलते हैं, अरे जैसे जब मैं और श्वेता जाते थे, like सब लोग, Shweta is Shweta, right? Rachna is Rachna, and he's been there 5 years. I don't even know shit about YouTube. मैं तो ऐसे हो, तो but हमेशा they will pit one YouTuber against another. अरे वो वाला बेटर था, अरे आप ऐसे नहीं हो, अरे वो ऐसे ऐसे, तुम लोग को कोई लाइक रणवीर अलाहाबादिया को कंपेयर करेंगे प्रखर से, प्रखर को करेंगे श्वेता से, वेदांत को करेंगे प्रखर से, तो ये सारा टाइम वही चलता होता है। मैं इनको यही सिखा रही हूँ कि each and every person who is providing the content, it's very difficult. Let them be original. You don't, अगर से सब प्रखर जैसे हो गया, सब विनम्र जैसे हो गया, सब रचना जैसे हो गया, how boring life would be, right? But that's the point, Rachna. Life is boring. That's why this exists. You know, Yeah. It's existed since like Roman times. याद है आपको वो gladiators के बारे में बताते हैं, ये योद्धा आ रहा है ग्रीस से लड़ने के लिए, ये आ रहा है स्पार्टा से, ये भाला चलाता है, ये एरो चलाता है, अब ये लड़ेंगे, सारी ऑडियंस कहेगी fight to death. It literally becomes like that because you project all of that into people. It makes थोड़ा मसाला आ जाता है, किसको पसंद नहीं है वो चीज. Some people play into it, some people are like fuck this, I'm out. But I've tried, मुझे तो लगता है this will never go away. As long as there is the internet and internet personalities, people will have a contest between those two personalities. कुछ भी नहीं कर सकते. True, but बहुत बार ऐसे बच्चे आते हैं कि वो बोलते पहले हम इसको देखते थे, हम इसके जैसे सोचते, उसको देखते हम उसको, तो वो थोड़ी बहुत ये हो गई कि क्योंकि लोग बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, ये तो है मेंटल हेल्थ, यू नो, like even you, like imagine, हो सकता है आज कोई बैठ के आपका सारे वीडियोस देखे आपके, देखते हैं, I know. I just found somebody, every comment, I'm like, wow, I can't even sit through 1 hour of, like, even though I love listening to Shweta or any one of you, but time कहाँ होता है, पर्सनल लाइफ एक अलग होती है, पर तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ तुम्हारा इतना टाइम लेते, तुम कहाँ से यूट्यूब पे इतना टाइम निकाल लेते हो? तो आपको पता नहीं है आपका इनविजिबल इन्फ्लुएंस कितना बड़ा होता है. That's why numbers are fictitious. Like someone could have say 10K or 5K, but all of India's decision makers watch their shit. किसी के 1 मिलियन हो सकते हैं, उसका रियल इन्फ्लुएंस कुछ भी नहीं होगा. It's so hard because you're sitting at your home and sending out videos to the world. मैं किसी से जोक कर रहा था अपने दोस्त से कि हम तीनों लोग हैं, हमने कभी नहीं सोचा था स्कूल में हम लोग वीडियो बनाने वाले लड़के बनेंगे. हम सारे लड़के वीडियो बनाते हैं, ये क्या गेम है? एक तो समझ गया प्रखर, दूसरा तुम, तीसरा एक और हमारा दोस्त है अमन गर्ग, वो क्रिएटर्स को मैनेज करता है, ठीक है, वो वीडियो बनाने के धंधे में. पॉइंट ये कि मतलब मैंने कभी हम यार वीडियो बनाने लड़के हैं यार, ये 3 लड़के वीडियो, लाइक जस्ट व्हेन यू थिंक अबाउट लाइक व्हाट इज द थिंग दैट यू पुट ऑन द वर्ल्ड, इट्स अ वीडियो. सो वियर्ड, नो, हम सारे जो आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं वीडियो बनाने वाले हैं. मुझे तो समझ में नहीं आता, मुझे जब
कंटेंट बनाना था, सबसे ज्यादा हेडेक तो वही होता, और मेरी रिस्पेक्ट कंटेंट बनाने वालों की इतनी बढ़ गई है, क्योंकि जब खुद करते हैं ना तब समझ में आता है कि कितना तकलीफ होता है। बहुत छोटी एज के भी कंटेंट क्रिएटर्स बड़े मेंटली रेजिलिएंट है। मैम इज सो हैप्पी इन दिस पॉडकास्ट। यार मैं हर पॉडकास्ट में खुश रहती हूँ, तो तुमने मुझे कब दुखी देखा है पहले तो ये बताओ। यस ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी दैट विनम्र इज हियर, बट जनरली आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन। या आई हैव सीन दैट इन योर वीडियोस। I can sit and talk to these दो बच्चे इधर आ जाए, I can talk 2 hours with them, so it's fine with me. Thank you so much, Vinamre. I know you're getting a little late. Appreciate your Thank you for doing time. this. And पहले मैं आपकी तारीफ करूँ, पहले आप करोगे? पहले आप कर लो, मैं पहले करती हूँ, मैं आपकी तारीफ पहले कि it was really, मैंने तुम्हारे बारे मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी थी लोगों से, and you have lived up to that expectation that I had. You were very easy to talk with. It was so it was not uncomfortable at all. Some guess I have been uncomfortable. Thankfully nobody has noticed it, but I know in my heart, अंदर से पता है कि भाई ये पॉडकास्ट कब खत्म होगा वाला। आई एम श्योर तुमने भी कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि तुम सोच के कुछ जाते हो और होता कुछ और है, बट यहाँ पे इट वाज वेरी कंफर्टेबल। और जनरली आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, मुझे समझ में नहीं आता, आई डोंट हैव फिल्टर्स, और वो मुझे आई हैव टू स्टिल वर्क, इवन एट दिस एज आई एम वर्किंग ऑन दैट, वेयर आई डोंट हैव टू बी सो ट्रांसपेरेंट अबाउट व्हाट आई एम थिंकिंग। बट थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड होप one day अगर से दुबई आ रहे हो जरूर कांटेक्ट मी, आई विल टेक यू आउट फॉर लंच डिनर व्हाटएवर। साउंड्स गुची और मतलब गुड। एंड अब मैं ऐसी चीज पे अब आपकी तारीफ करता हूँ, जैसे आप मुझे करेंगे। ठीक है, तो मेरी सबसे पहली तारीफ ये थी कि ये कंटेंट क्रिएटर्स तो चलो एक चीज होते हैं, लाइक वो बनाना वगैरह, इतनी लंबी समय तक किसी का कॉन्वर्सेशन होल्ड करना बहुत मुश्किल चीज है। मतलब मैं इस स्किल में थोड़ा बहुत अच्छा हूँ, तो मैं समझता हूँ it takes so much from you know, and when you do conversations that are emotional in nature primarily, भाई मतलब इंसान अपना पूरा ही सब कुछ खोल के आपको बता रहा है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो ये, इट्स जस्ट अमेजिंग। यू वर लाइव ऑन इंस्टाग्राम a few nights ago. I see your इंस्टाग्राम का वो प्रोफाइल का, उसमें वो लाइव ही लिखाता रहता है हमेशा, तो सर्च में भी आता रहता है। मैंने आज गया ना देखने के लिए कि टाइम क्या है, तो उसमें लिखा रहा था रचना डरानी लाइव। फिर मैं दोबारा गया तो नहीं था, but I think Instagram likes you being live so much that it's just made a glitch like that. The point is, you know, also the free therapy part I want to say, भाई मैं कितने सारे लोग जानता हूँ जिंदगी के अंदर जिनको मतलब 15-20 साल की जैसे उम्र कैद होती है ना, ऐसे उन्हें उम्र थेरेपी चाहिए ताकि उनके अंदर की जो चीजें वो निकल के आए। सो यू डू इट फॉर फ्री। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ हो सकता है, मैं उस इंस्टिंक्ट से बहुत दूर हूँ, लेकिन मैं उसको अप्रिशिएट कर सकता हूँ बिकॉज इट्स अ सर्विस। एंड आई थिंक इंडिया के बारे में WHO ने बताया था, इट्स वन ऑफ द मोस्ट अनहैप्पी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो kudos to you for that. And numbers ke beyond, I wish you emotional satisfaction on the things you do, and a prosperous life, and then I can go into Jahan territory, but I'll stop at that. नहीं, that's what is important, right? क्योंकि तुम अगर से नंबर्स में, सब लोग मेरे को पूछते हैं, जब मेरे टीम में क्लियर इंस्ट्रक्शन है, कोई नंबर्स का कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं करोगे, चाहे कोई भी नंबर रीच करो, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू चेंज लाइव्स वन एट अ टाइम। सो इवन इफ वन पर्सन इज वाचिंग माय पॉडकास्ट, मैं तो बड़ी खुश हूँ कि ठीक है, वो एक इंसान को फर्क पड़ा है। इतनी बड़ी बात है ना, कोई बैठ के आपका कोई मतलब अपने रूम में, यार इसको देखता हूँ इस वीडियो को, और देख रहा है। इट्स अ ह्यूज थिंग। थैंक यू सो मच विनम्र, एंड तुम्हारे नाम जैसे तुम पोलाइट और हम्बल हो, तो वैसे ही रहना, ठीक है? गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। हाँ, अभी बोलो बच्चा लोग, किसी ने क्वेश्चंस मेरे लिए छोड़े हैं, मैं ट्राई करती हूँ आंसर करने के लिए। 2 मिनट पानी पी लूं। आई नो देयर वाज वन क्वेश्चन बाय अनामिका, बेटा आई कुडंट रीड योर क्वेश्चन फॉर, अरे लव यू तुम लिख दो ना उसके चैनल पे, मुझे क्यों लव यू बोल रहे हो, नहीं तो लगेगा मैंने लव यू बोल दिया। तो ठीक है, वीडियो नहीं, वीडियो क्यों डिलीट करूंगी, मुझे और कोई काम धंधा नहीं है क्या? सॉरी सौरभ, आई डिडंट रीड योर क्वेश्चन एट दैट टाइम, उनको जाना था, और ऑलरेडी हमने कितने घंटे बात किए, मेरे कितने बजे, हाँ 8:30, हाँ, तो ऑलमोस्ट लाइक 1.5 hours वी स्पोक, राइट? और बाकी सब लोग, तुम लोग ठीक हो? यहाँ पे जो भी आए हैं, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है कि आज के लिए हम लोग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतना मैराथन स्ट्रीम मंडे को किया था, तो अनलेस तुम्हारे पास कोई और क्वेश्चंस है, मैं सोच रही थी क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट मंडे रखे,
because there's already so much going on. इधर 10 बज गए हैं. 50 लोग जो तुम लोग देख रहे हैं, कुछ लिखो. हेलो बेटा, हेलो, हाउ आर यू, गुड टू हियर फ्रॉम यू. ओके, और क्या? किसी ने कुछ नहीं लिखा ना. मैंने तुम्हारे सारे क्वेश्चंस, सबके क्वेश्चंस नहीं पूछे, 2 रह गए, आई एम सॉरी, पर तुम लोग उसके चैनल पे पूछो. हेलो सुजल, just self hypnosis work like self, I'm not big on self hypnosis because I tried it myself. I think when I used somebody else's audios and I used like the trance लाइव में, जैसे हमको जब मैं पढ़ रही थी, हमको हमारे टीचर्स ट्रांस में they would get us into trance and they would help with the hypnosis. That worked so much better than when I tried my self hypnosis. हमको वो भी सिखाया, एक बार मुझसे self hypnosis नहीं हुआ, ठीक है. तो आई एम नॉट अ वेरी बिग, बट ट्राई कर लो. वो हम शायद जरूरी नहीं कि मेरे पे चला है, नहीं चला तो तुम पे नहीं चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं. मैम प्लीज फिक्स द टाइटल ऑफ दिस लाइन. मैंने क्यों, क्या लिखा है लाइव स्ट्रीम का टाइटल, क्या लिखा है? रॉन्ग लिखा है. व्हाट डू यू मीन फिक्स इट? क्या लिखा है? मैंने लिखा ना, इन कॉन्वर्सेशन विद विनम्र. और लिसनर, you have asked me for my email address rachnadarani@gmail.com. Yes, 1 second. Okay, somebody has just written a compliment. I shall take time to read that compliment. So she said, ma'am, your advice worked so well. Thank you so much. I'm having a great, having more great days. Okay, I'm very happy for you. Thank you so much. I'm glad that I could help you. Okay, तो जिनको self hypnosis try करें. सोहम ने क्या लिखा है? मैम यार एल्बस तुम लिखो ना, मैंने गड़बड़ क्या की है लाइव स्ट्रीम में, क्या टाइटल की क्या प्रॉब्लम है? नेक्स्ट पॉडकास्ट. फिर श्वेता, तुम्हारे चरण का है, मैं तुम लोग के चरण स्पर्श करती हूँ, मुझे अकेला छोड़ो, तुम श्वेताब को लिखो. अब मैंने श्वेताब को बुलाया है, अब उसका टर्न है. अगर से वो बुलाना चाहता है, तुम जाके उसको, जैसे उस दिन मैं इंस्टा लाइव पे थी, तो क्या था कि वो बोल रहे थे कि वो लोग क्या वर्ड यूज किया था, स्पैम करेंगे. जाओ स्पैम करो उसको, अब मुझे मत पूछो, ठीक है. आई एम डन. मुझे शर्म आ रही है उसको वापस से बुलाने, ठीक है. टाइटल एम कोड इंस्टेड ऑफ नेम. अच्छा, बाद में चेंज करूंगी. अब कैसे बात करते करते, आई डोंट थिंक यू कैन चेंज इट. हाउ कैन वी बी स्ट्रेट स्मार्ट एंड गुड एट बार्गेनिंग? पहले तो अगर से कोई गरीब इंसान है, प्लीज उसके साथ बार्गेन मत करो. तुम लोग जब बड़े बड़े मॉल्स वॉल्स जाते हो तब तो नहीं करते. और मैं तो सबसे मतलब द लास्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट जिसको बार्गेनिंग के बारे में पूछना चाहिए, बिकॉज माई हस्बैंड सेज आई एम लाइक, यू नो, आई थिंक यू पीपल नो हाउ ट्रांसपेरेंट एंड हाउ ऑब्वियस आई एम. तो मैं जब कभी मैं करने की भी कोशिश करती हूँ, आई एम लाइक हाफ बेक्ड दिस थिंग. पूरे दिल से नहीं निकलता मेरा बार्गेनिंग स्किल, सो आई एम नॉट रियली गुड एट इट. बट इफ समवन पुअर, दे दो यार पैसे. और इफ यू रियली बिलीव दैट यू रियली वांट समथिंग, फकिंग जस्ट स्पेंड एंड बाय इट. इफ यू थिंक इट, दे आर लाइक उल्लू बना रहे जैसे कि मोस्टली करते हैं, जस्ट गो डाउन टू परहैप्स 50%. फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा हो गया, फिर कहीं ना कहीं यू विल मीट इन मिडवे. एंड फॉर, इसको बोलते हैं नेगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाले, आई विल डू. आई नो आई कीप टेलिंग यू ऑल ना, मैं ये करूंगी वो करूंगी. टाइम कहाँ है? इंसान को टाइम मिलेगा तो इंसान करेगा ना. तो या ओके एल्बस, आई रिप्लाई. अच्छा टाइम, ये कैसे हो गया ऐसे? मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, किसी ने किया होगा, पता नहीं किसने किया. कैन यू डू इंडोनेशियन एक्सेंट? I can't do the accent. I can say something in Indonesian, in Bahasa. It's called Bahasa Indonesia. Why it's called Bahasa Indonesia? Because there is Bahasa Malay also. So there is Bahasa Malay and there's Bahasa Indonesia, right? So let's say, okay, suppose you say मुझे खाना खाना है, तो बोलने का saya mau makan. मतलब saya is I, mau is want, makan is to eat. Okay. Suppose you want to sleep, so you say saya mau tidur. मतलब I want to sleep. एंड अगर से मैं तो अराउंड फूड ही रिलेटेड हो रही हूँ, पता क्योंकि मुझे भूख लगी है शायद. लाइक सपोज आई वांट टू से मुझे भूख लगी है, तो आई विल से साया लापार मींस हंग्री. ओके, बस हो गया. और इनका सबसे फेमस डिश साटे, नासी गोरेंग, मी गोरेंग. नासी गोरेंग इज फ्राइड राइस, मी गोरेंग इज फ्राइड नूडल्स. मतलब नॉट फ्राइड यू नो, बट क्या बोलते हैं, सॉटेड, लाइक थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल के साथ, ठीक है. और क्या तुमको नंबर्स जानने हैं?
तो 1 to 10 बोलूं? ये पता नहीं किसने क्वेश्चन पूछा, मैं अपने आप रैंडमली बात कर सकती हूँ, क्या टैलेंट है मेरे में, मतलब कोई मुझे क्वेश्चन पूछे ना पूछे, बट मैं खुद ही क्वेश्चन अज्यूम करके क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ऐसे नहीं करके इंसान मेरे को पूछे कि मैम आप ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कैसे पूछते हो, कि मैम इतना देर 1.5 घंटा कैसे पॉडकास्ट करते हो, है कि नहीं? सो 10 कैसे काउंट करते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो 10 तक तुम लोग ने सीख लिया, सब लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? अच्छा, और कोई क्वेश्चंस? कि हम तो चले परदेश भैया। ओ, गाइड टू जर्नलिंग, यू नो आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट, प्लीज वेट नेक्स्ट टाइम, ठीक है? आपको मैं भेजूंगी। एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। आई हैव आज मैंने वीडियो बनाई थी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स पे। उस दिन मैंने वीडियो बनाई, किस पे बनाई? सेल्फ डेप्रिकेटिंग इस कमेंट्स पे, पर कुछ अपलोड नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे खुद उसको एडिट करना है, क्योंकि मैं ही खुद नहीं पता कौन सा वाला, क्योंकि इतने सेक्शंस में इंसान क्या करे। हाँ, ये क्या है? मैम, व्हाट इज द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन कमिंग इयर्स? आई कांट इवन थिंक ऑफ द क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट। चलो, हाँ एग्जैक्टली, सोचो कितना टैलेंट भरा है, कूट कूट के भरा है मुझे में टैलेंट। ओके, व्हाट इज द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी? डेफिनेटली मच मोर देन इट इज नाउ, बिकॉज इंडिया इज ग्रोइंग, people have started talking about mental health, more videos, more people, like even actors and actresses are starting to talk about it. So I think there is, but unfortunately it won't have like the career growth of like a regular doctor, like a GP or say a dentist or whatever. And अगर से psychology में आपको सच में like पैसा कमाना है, then I guess a psychiatrist or a psychologist as a counselor, unless you're in the top bracket and in the city, then you will make money, otherwise thoda difficult है क्या? Can we permanently forget our bad memories by hypnosis or any medical procedure? As far as I don't know, मैं doctor नहीं हूँ, but we can this thing, but no, you cannot, it can make your fade your memories a little bit. देखो, completely अगर से वाइप आउट कर सकते हैं तो अभी तक कितनी सारी चीजें हम लोग वाइप आउट कर सकते थे, राइट? अगर से इतना पॉसिबल है तो, बट नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। बट यस, इट हेल्प्स यू डील एंड कोप। और आपको बैड मेमोरीज, ऐसे भी क्या बैड मेमोरीज है यार, कि आपको भूलना है यार? सब मेमोरीज कुछ ना कुछ हमको सिखाते जाते हैं, डरो मत इससे, डोंट बी अफ्रेड ऑफ डिस्कम्फर्ट, ओके? ओ, सो हम मैम में एडिट करने में हेल्प करो, किने मास्टर, इसको किने मास्टर ही बोलते हैं कि कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कि है मेरे पास। हाँ, सो इफ यू वांट टू हेल्प माय टीम, मोस्ट वेलकम, प्लीज जॉइन अस। हम वी ऑलवेज नीड मोर पीपल, बिकॉज कॉन्स्टेंटली कंटेंट डालना ऐसा पेन इन द एस है, लेट मी टेल यू। कैन मैम, एज यू आर इन महाराष्ट्र, यस आई कैन स्पीक इन मराठी, बट ऐसी गंदी मराठी तुम लोगों ने बहुत टाइम तक नहीं सुनी होगी, तो डोंट आस्क मी टू स्पीक इन मराठी, बिकॉज क्या हो गया है, 30 साल से आई हैव लिव्ड अब्रॉड, राइट? सो मेरी प्रैक्टिस नहीं रही, बट जब मैं बॉम्बे जाती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे से, एंड व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग इन Marathi, if you people don't know, if you don't know two languages properly and you start speaking the language, you'll interchange the both. तो मैं क्या होता है, जब मैं वहां जाती हूँ तो I start speaking in Bahasa. Go figure. एक मिनट, इधर एक मैसेज आया। मैम, आई हैव एग्जाम्स इन 100 days, प्लीज कोई टिप्स दो, डर लग रहा है। बेटा मेरे, पहले तो प्रिपेयर्ड रहेगा तो डर नहीं लगेगा। और तुमको पता है, मैंने ये वीडियो भी बनाई है एग्जाम स्ट्रेस पे, पर मैंने वो अपलोड भी नहीं किए, भगवान मुझे बचाए। मैम, थैंक यू मैम, इट वाज अ ग्रेट पॉडकास्ट, 1.5 hours कब गया पता ही नहीं चला। थैंक यू, माय प्लेजर, अभिषेक। अच्छा रोहित, पहले तो पढ़ाई करना स्टार्ट करो, सेकंड मुझे व्हाट्सएप करो, नहीं इंस्टा करो, आई विल गिव यू समथिंग टू रिलीव योर स्ट्रेस, हिप्नोसिस ऑडियो फॉर योर स्ट्रेस बिफोर योर एग्जाम्स, हाउ टू इंक्रीज फोकस, कंसंट्रेशन। एंड 10th को 100 days में आ रहा है ना, 10th को वी आर डूइंग स्टडी टॉपिक, वो जो अपने डिस्कॉर्ड पे जो अजय है उसके साथ पॉडकास्ट है। आपको जो भी क्वेश्चंस पूछना है स्केड्यूलिंग रिलेटेड, डर लग रहा है तो मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज जरूर करना, डोंट जस्ट डू
क्वांटिटी पढ़ाई. किसी का कल मेरे को मैसेज आया था कि मैम I have failed, I promise I will study 22 hours. तुम्हारा दिमाग खाली हो जाएगा 22 hours पढ़ाई करोगे, चलेगा ही नहीं. सब कुछ जितना पढ़ा होगा सब कुछ कचरा में गया. मेक श्योर यू आर स्लीपिंग ऑन टाइम, मेक श्योर यू आर ईटिंग वेल, ड्रिंकिंग वाटर, एक्सरसाइजिंग, डूइंग सम मेडिटेशन, डूइंग सम फन एक्टिविटीज, एंड देन पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे ना, ये डर नहीं लगेगा आपको. और वर्स्ट केस सिनेरियो जो भी होगा, जस्ट इफ यू हैव लिटिल फेथ इन मी, ट्रस्ट मी, यू विल फाइंड योर ओन. ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है. हम सब एग्जाम में फालतू मार्क्स लेकर आके भी लाइफ में कहीं ना कहीं पहुंचे जाते. तुम भी पहुंच जाओ. बच्चा तुम डरो मत, मैं हूं ना. ठीक है. थैंक यू सुजल, माय प्लेजर. मैम तुम्ही सुंदर दिसते. एक मिनट, ये मराठी में क्या बोलते रे थैंक यू को? धन्यवाद ही बोलते हैं क्या? ओके. ओके पर्सन, नहीं, आई वाज रिप्लाइंग टू रोहित. ही इज स्टिल हियर बाय द वे. ओके. एंड क्या था? हाँ, बाय द वे जिनको समझ में नहीं आया मैं बता दूं, मेरे को मराठी समझ में आया कि उसने लिखा कि आई एम लुकिंग वेरी प्रिटी. ठीक है. और सुंदर दिसते मीन्स यू आर लुकिंग प्रिटी. ठीक है. एंड मैम श्वेता गिव ऑसम स्टडी टिप्स ओनली ऑन योर स्ट्रीम, सो प्लीज छोटा मत फील करो सब अपने, प्लीज ब्रिंग हिम. अरे लास्ट पॉडकास्ट जो 4 घंटे की चली ना, सब साला स्टडी रिलेटेड स्केड्यूल प्रोक्रेस्टिनेशन इसी पे था. प्लीज उसको फिर से हम लोग एक सेम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. इट हैज बीन कवर्ड ओवर एंड ओवर एंड ओवर. इट्स सो मच सो कि मेरा भेजा फ्राई हो गया कि आई स्विच्ड ऑफ फ्रॉम दैट दिस थिंग, बिकॉज इतना कैसे सेम, और बोलने के बावजूद कि सेम क्वेश्चन मत पूछो, सेम क्वेश्चन आ रहे थे. तो प्लीज सोम, ऑलरेडी इट हैज बीन एड्रेस मिलियन टाइम्स. ऐसा कुछ हम नया आपको नहीं बोलेंगे. ठीक है. मैं क्या उनकी सेक्रेटरी हूँ क्या शताब? और उनका पॉडकास्ट कैसे हो, कब होगा? अभी तो उसने बोला ना कि उनका वाइब, एक बार वो गए थे, वाइब मैच नहीं हुआ. मुझे क्या है पूछ रहे हो? उनको पूछो. और सब देखो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. हर टाइम सेम गेस्ट को नहीं लेके आ सकता इंसान. यू हैव टू हैव लाइक थोड़ा सा क्या बोलते हैं, डिफरेंट गेस्ट होते हैं. तो जैसे आपने भी देखा रॉ एंड रियल कितना होता था पहले, राइट? अब थोड़ा कम हो गया है. क्यों? आई डोंट नो कब उनका लास्ट हुआ था, मैं फॉलो नहीं करती, बट आई हैव हर्ड कि इतना ज्यादा नहीं होता जितना, क्योंकि ऑब्वियसली मोनोटनी विल सेट इन ना, वो हो जाएगा कि सेम 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 सेम. तो लेट देम डू देयर थिंग. अगर से नहीं करना चाहते, मैं क्या करूं? मुझे हाँ बोल दिया, हाँ, पर पता नहीं, वो तो बोल रहे प्लीज. अच्छा, यहाँ भी प्लीज ब्रिंग प्रखर. हे देवा. ओके ओके, हम कोशिश करेंगे उसको लिखने की. ठीक है. तुम लोग मत लिखना उसको. ठीक है. मुझे ही सब लोग बोलो करके, इनको बुलाओ, उसको बुलाओ. ठीक है. दिल मांगे मोर. हाँ, तुम जाओ. शताब तो सारा टाइम आजकल, शताब आई थिंक इज बिकम क्वाइट कंसिस्टेंट विद हिज व्हाटएवर हिज लाइव स्ट्रीम एंड हिज रिएक्शन वीडियोस एंड ऑल. जाओ देखो वहां पे. Yes, I will talk, Sujal. I have found two people to talk on LGBTQ. We were supposed to actually do it on 17th, पर unfortunately उनमें से एक है जिनका एग्जाम आ रहे हैं, तो अभी तक हमने डेट फिक्स नहीं किया. मे बी आई जस्ट टेल देम 18th को भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑन द बीम सेशन है. मे बी 20th को करने की कोशिश करती हूँ. ठीक है. सो आई रियली वांट टू एड्रेस बाइसेक्सुअलिटी, गे, लेस्बियन एंड ऑल दैट. आई बीन लाइक फकिंग लुकिंग. और मैं तुमको बोलूँ, इतना डिफिकल्ट है ना. लोग, यू डोंट नो हाउ मच योर मैम ट्राइज. आई मीन, मैं अपने आप को मैम क्यों बुला रही हूँ? तुम लोग इतने बार बुलाते हो कि आदत बढ़ गई. आई कांट टेल यू हाउ फकिंग टफ इट इज टू फॉलो अप. एंड ऐसे ऐसे कभी कभी लोग जब तुमको सीन पे छोड़ते ना, इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है. लाइक यू आर नॉट गुड इनफ, राइट? कि यू फक एटलीस्ट टेल ना कि ओ सॉरी वी कांट मेक इट और समथिंग. मतलब मैं तो लोगों के कभी कभी तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं हो रहे, ठीक है, वो पॉडकास्ट के लिए बुलाते हैं, और फिर भी मैं उनको पोलाइटली रिप्लाई करती हूँ कि मुझे माफ करो. अगर से मैं कर सकती हूँ ऑफकोर्स मैं करती हूँ, बट नहीं कर सकती तो मैं उन्हें बताती. तो ऐसे उनको आई डोंट कीप देम वंडरिंग, राइट? एटिकेट होनी चाहिए यार, मैनर्स होना चाहिए. तुम लोग सब कभी लाइफ में यूट्यूब चैनल चलाओ और किसी ने तुम्हें इनवाइट किया है, उनको प्लीज हाँ या ना बोल देना. ना भी बोलोगे तो भी इट्स ओके, बट एटलीस्ट डोंट डू दिस यार. डोंट लाइक लीव पीपल ऑन सीन. मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे एटिकेट में ये नहीं आता. ठीक है. आप भी रिएक्शन है, मुझे लगता है एंड में रिएक्शन वीडियोस ही बनने वाले. मेरा बेटा 6th या 7th एपिसोड दिखा रहा था इसका
एक सेकंड, कौन है? एक सेकंड, मेरा बेटा, उसको गुड नाइट बोल रहा है। What was the stream yesterday? Attack on Titan. Which episode? Yeah, which one was that? 9. Okay, I just was telling them about that. Okay. तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो उसने मुझे एपिसोड 9 पे थे, और वो था ना जिसमें एरन वो बॉडी से निकलता है, जिससे नहीं देखा कान बंद करो, अगर से मैं आई एम गिविंग लाइक क्या बोलते हैं इसको, स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट। ओके, तो वो जब निकलता है तो मैं अपने बेटे को बोल रही थी, अच्छा तो ये ऐसा हो रहा, तो मेरी तरफ देख रहा था, बिकॉज आई वाज आस्किंग सच रिडिकुलस, आई सेड बट इस, अच्छा तो वो चाबी वाज फॉर दैट, अच्छा तो ही कैन बाइट हिमसेल्फ एंड व्हेन ही ब्लीड्स, सो ही वाज एक्सप्लेनिंग द होल थिंग। तो कैन यू इमेजिन मेरा रिएक्शन वीडियो ऐसा होगा कि मैं एक्चुअली क्वेश्चन अपने बेटे को पूछ रही हूँ, किसी को भी पूछ रही हूँ, हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैन यू इमेजिन हाउ फकिंग बोरिंग इट वुड बी माय रिएक्शन वीडियोस। सो कहाँ, तुम क्या मांग रहे हो मुझसे, मुझे नहीं पता। हाँ, यस आई नो। ब्रिंग प्यूडीफाई आएगा क्या? ब्रिंग ब्रिंग क्या कोई सुपरमार्केट है क्या ये लोगों का, कि इंसान जाके उनको लेकर आएगा अपने पॉडकास्ट चैनल पे? ब्रिंग नरेंद्र मोदी। एक तो पीएम जी का नाम थोड़ा रिस्पेक्टफुली, मोदी जी मुझे नहीं लगता मेरे पॉडकास्ट पे आएंगे। डू यू लाइक, या एक्चुअली आई एम नॉट, इट्स नॉट बैड। ओनली प्रॉब्लम पता है क्या है, तुमको सारा फकिंग फोकस उस पर लगना होता है। जनरली मैं कैसे तुमको बताऊं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं ऐसा करती हूँ, मेरा आईपैड पड़ा रहता है, मैं फोन पे अपना काम करते रहती हूँ एंड ऑल, तो एटलीस्ट सुनाई दे रहा है, राइट? पर अटैक ऑन टाइटन्स का क्या है कि सारा यू लाइक, because there is no translation, you have to read that subtitles. I don't think there a translation. I've never thought सब है क्या इंग्लिश में, बट एनीवे मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं किया। तो दैट इज लिटिल अनोइंग कि तुमको अगर से देखना है तो पूरा फोकस सब कुछ हटा के उसको देखो। तो या दैट इज ब्रिंग, यार स्टॉप इट यार, ब्रिंग दिस वन ब्रिंग दैट वन, तुम्हारे तुम लोग जाके लेकर आओ और उनको मेरे से मुलाकात कराओ, ठीक है? मैम आपके नीचे के वीडियोस पे रिएक्ट करो क्या? आप आपके नीचे के वीडियोस पे रिएक्ट, मेरे नीचे के क्या मतलब, क्या मुझे, अच्छा नीश, ओके ओके मेरे नीश, ओके मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर दिया है तुमने। ओ ओके, आई डोंट नो व्हाट्स माय नीश, आई हैव नो क्लू, आई एम लाइक ऑल ओवर द प्लेस। या ओ बाय द वे मैंने आरआर देखी, तो आई डोंट नो उस पे मुझे रिएक्शन करना है। ये बात बताओ, मुझे कुछ सिखाओ कि मुझे पता है कि YouTube के कॉपीराइट वाली स्ट्राइक्स होती है एंड ऑल दैट, तो कोई भी गाना बजाओगे और ये लोग जो YouTube रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं उनको कॉपी स्ट्राइक, वो स्ट्राइक नहीं मिलता क्या उनको, लाइक उनको पैसा मिलता है इस बात का? मुझे नहीं पता, आई एम लाइक वंडरिंग कि इनको, आई हैव सीन कि समटाइम्स वो लोग म्यूट करते हैं या फॉरवर्ड करते हैं। आई थिंक देयर इज अ ट्रिक टू दिस, राइट? या ब्रिंग थैनोस, थैनोस को मैं डिफीट कर चुकी हूँ, वो वापस नहीं आने वाला, ठीक है? सो yeah, okay, there is English dubbing. Okay, okay. Ma'am, guys, ma'am is getting, नहीं, I'm not getting mad, but I'm like, fuck, what the hell? तुम लोगों ने इधर ना सुपरमार्केट खोल दिया है, सारे वो पर्सनालिटीज यूट्यूब पर, वो अभी बोल रहे थे ना विनम्र कि खत्म ही नहीं होता तुम लोगों का। ओके, इंग्लिश डब है, आई थिंक मे बी देन आई शुड वॉच दैट। तो ये क्या था? ओके, ऑल ओवर सडन मुझे ऐसा लगा लाइक मेंशन करना होता तो मैम उन्हें डिस्क्रिप्शन, क्या 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 मेंशन करना, क्या? ओ अच्छा 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 अच्छा, ओके, मेंशन करोगे तो कॉपी स्ट्राइक नहीं होगा? अच्छा, ये नहीं पता था मुझे, ठीक है। ओके, मैंने कोई क्वेश्चंस मिस किया? मेरे 42 लोग मैम मैम मैम, अच्छा कितने बार मैम लिखा है रे सोहम के बच्चे। मैम एक दिन आपका चैनल इतना आगे जाएगा कि लोग सामने से पॉडकास्ट के लिए पूछेंगे तुम्हारे मुंह में लिंट चॉकलेट, क्योंकि मुझे घी नहीं अच्छा लगता, तो मैं शक्कर और घी नहीं। पर चल छोड़ यार, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, हमें ना तुम लोग हो ना बस, आई एम हैप्पी। इतना अपने को ये नहीं, वी आर सेइंग टू ब्रिंग प्रखर बिकॉज इज द गाय विद very good logic, he really give real and practical solution.
हाँ, तुम लोग शताब के बारे में कोई बोलो भी, सब लोग अपने अपनी जगह पे अच्छे हैं यार, कंपेयर मत करो, ठीक है। और क्या सोल्यूशन, जाओ ना प्रखर के पॉडकास्ट पे बैठो, वो भी तो लाइव जाता है, वो तो आपके क्वेश्चन आंसर कर देंगे। मैं क्या है उसको बुलाऊं, वेदांत को भी लेके आ रहा हूँ यार। एक काम करते हैं हम लोग ना, एक तुम लोग मेरा ना एक पूरा ग्रुप बनाओ, ठीक है। तुम लोग सब एक साथ मिल जाओ, वो पेटिशन होता ना, पेटिशन, तुम लोग ना ऐसा पेटिशन बनाओ, रचना के पॉडकास्ट पे आप लोगों ने जाना है, हम सबका ये साइन है, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप लोग ये सब करना स्टार्ट करो, फिर हम देखते हैं, तुमको लगता है मजाक है ये सब करना लाइफ में। अब आगे क्या, ओके सॉरी, हाँ मैम, मैंने तो पहली बार ऑन द बीम में इतना बोला था इस बार, बट दैट सेशन वाज, थैंक यू गौरव, आई एम ग्लैड दैट इट वेंट वेल। स्कूप वूप के होमोसेक्सुअलिटी के व्हाटएवर वीडियो पे रिएक्ट करो, उससे अवेयरनेस क्रिएट होगा यंग लोगों के। ये जिसने यश, ये जो तुमने बोला, मैंने तो कभी ये वीडियोस नहीं देखे, कौन वीडियोस, कौन से वीडियोस होते हैं, हैव नो क्लू। तो भेजो, लेट्स सी। पर मेरे पास टाइम कहाँ है यार ये सब करने का, तुम लोग को मजाक लग रहा है। अच्छा, एक मिनट, हाँ। क्या इमेजिन रचना में वेरी इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्नैपिंग हाफ पॉपुलेशन। नहीं, मैं सिर्फ अच्छा काम करूंगी, अच्छा वाला काम करना है तो हम करेंगे। ब्रिंग एरन येगर, अरे एरन येगर तो मैं ही हूँ ना। मैं मजाक करूँ, वो तो मर गया, नहीं मर नहीं गया, जिंदा है, पर पता नहीं, मैंने पूरा नहीं देखा, पता नहीं एरन को क्या हुआ लास्ट। मैंने तो सुना है अटैक ऑन टाइटंस खत्म भी हो गया, और मैं अभी तक फर्स्ट इस पे क्या बोलते, फर्स्ट सीजन पे अटकी पड़ी हूँ। इंग्लिश डब्स आर प्रीटी बैड एंड यू वोंट गेट द, या दैट्स व्हाट आई थॉट। अभी तुमने सोम, तुमने तो मजाक लगा रखा है, पुतिन शुतिन को बुलाओ, छोड़ो उसको तो, आई मीन व्हाट ही इज डूइंग, बेचारे यूक्रेन पे। मुझे तो मेरा, आई विश आई हैड सो मच, आई विश मेरे पास सुपर पावर होता, मैं सारे गंदे लोगों को मार डालती, फिर लाइफ में पीस ही पीस होगा। और मुझे अगर से मेरे पास लाइक लाइक टेलीपैथी होता, या आई वुड नो इन एडवांस कि कौन क्या करने वाला है, आई वुड हैव लाइक, वो सुपर पावर चाहिए मुझे। हाँ, बट आई हैव टू बी इमॉर्टल आल्सो ना, अच्छा तो ये दो कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो, ठीक है। तो ये दो सुपर पावर्स होने चाहिए, क्योंकि फिर हम, मैं अगर से जिंदा ही नहीं रहूंगी तो फिर मारूंगी किसको। तो हमको ये करना है कि हमको ये दो पावर्स चाहिए। तुम में से जब भी कोई इतना पावरफुल बन जाए जो ऐसे सब चीजें कर सकता है, मेरे, मुझे ये शक्ति दे सकता है, तो दे देना, ठीक है। मैम नहीं, मेरी कोई फेवरेट मूवी नहीं होती, मेरा कोई फेवरेट ही नहीं है, ना फेवरेट इंसान, फेवरेट इंसान है क्या, ओके, फेवरेट कलर नहीं है, फेवरेट मूवी नहीं है, फेवरेट सॉन्ग नहीं है, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, लाइक डिपेंड्स। अभी RRR देख के उठी हूँ तो वो अच्छा लग रहा है। उसके पहले क्या देखा था, पता नहीं क्या देखा था, पुष्पा वो अच्छी लगी थी। हाँ, और वो 83 अच्छी लगी थी। फिर वो आयुष्मान खुराना की मूवी कौन सी थी, जो ट्रांसजेंडर वाले पे थी, जो वो वाली जो अभी हमने बात की थी, मैंने वो, मैम गेटिंग रिड ऑफ हाफ द पॉपुलेशन वुड बी द बेस्ट थिंग शी कैन डू फॉर, नहीं सब गंदे लोगों को वी वुड गेट रिड ऑफ, व्हाई वुड वी गेट रिड ऑफ हाफ द पॉपुलेशन। हाँ, तो स्टार्ट रॉयल रियल अगेन विद रचना मैन, प्रखर एंड श्वेता। आपको मैंने बोला ना, पिटिशन स्टार्ट करो, आप लोग सब मिलके साइन करके इन सब लोगों को भेजो, मैं करने को रेडी, ठीक है। ओ माय ब्लू आई शैडो इज लुकिंग नाइस, थैंक यू, क्योंकि मैंने आज ब्लू पहना तो मैंने बोला चलो थोड़ा तैयार हो जाते हैं, क्योंकि क्यों एक्चुअली, क्योंकि नो रीजन बस। देखो किसी ने मुझे पूछा बुक रिकमेंडेशन, प्लीज अंकुर जी वारिको को फॉलो कीजिए। हम बुक रिकमेंडेशन नहीं करते, ठीक है। हमको ना बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, ना हम, नहीं, आई डोंट हैव एनी रिकमेंडेशन, गूगल करो यार मिल जाएगा। मैं, मेरे पास बुक पढ़ने का कोई टाइम नहीं है लाइफ में, ना सीरियल देखने का टाइम है, ना कुछ करने का। हाँ, मैं आर्टिकल्स बहुत पढ़ती हूँ साइंस एंड साइकोलॉजी रिलेटेड, बट उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करती, ठीक है। मैम उसके लिए स्नैप करना जो प्रोग्रेसेस वाली क्लास में परेशान करता है, कौन यार, क्या लिखते हो यार मेरे को ना, व्हाट्स योर फेवरेट एट, मेरे को नहीं पता। आई थिंक आई लाइक उस, कौन एक है एरन, अरे वो दूसरी लड़का कौन है, क्या नाम है उसका, अरे लिखो, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे हैं। द पर्सन हु इज ऑलवेज वेरी ब्रेव, मिकासा, हाँ वो, आई लाइक दैट। मेरे को तभी प्रेसिडेंट का नाम याद नहीं था, अब मेरे को ये याद नहीं, और जब मैं कल ही उठ के, और हाँ, मिकासा इज माय फेवरेट मोर देन एरिन सो फार, या
ma'am, why you looks beautiful, join my English class, I will teach you how to say that. Why you looks beautiful, ma'am, you are looking beautiful, या why are you looking beautiful? Why क्या होता है, अभी है तो है, बस इंसान ऐसा ही है. Okay, ma'am, you should try react like healthy gamer. ये तुम लोग ऐसे ऐसे आइडियाज देते हो. एक तो रेडिट राइट, रेडिट का मैंने कभी ना, मेरे पास उसका ऐप है ना, मैंने कभी ये किया है, पर हेल्दी गेमर क्या होता है मुझे नहीं पता. देखो तुम ऐसे मेरे से इतनी हाई एक्सपेक्टेशन मत रखो, मुझे नहीं पता ये सब क्या है. मैम उसके लिए स्नैप करना जो हाँ हाँ हाँ, वो सबसे पहले तो उसको निकालूंगी मैं, नहीं मारूंगी नहीं यार, ऐसे वो बच्चा है गड़बड़ कर रहा है, बट होपफुली ये टाइम नहीं किया तो शायद फाइनली वो समझ गया है, फाइनली उसको अक्ल आ गई कि रचना मैम को तंग मत करे. ठीक है, वो यूनिवर्स इज लुकिंग आफ्टर मी. सो या पेटिशन नहीं मैम भेजो, मैम ट्विटर पे आराम से आएंगे पॉडकास्ट पे आपके सब लोग. हाँ तो तुम लोग करो ना, मुझे क्यों बोल रहे हो, तुम लोग करो, हम देखते हैं कितना तुम लोगों को मेरे लिए ये है फीलिंग. चंडीगढ़, हाँ चंडीगढ़ करे आशिकी करेक्ट. मैम कोई न्यू डिस्कोर्स सजेस्ट कीजिए, कोई न्यू थिंकर. यार आप उनको नहीं मालूम ये सब क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछो, आप ये बाकी लोगों को फॉलो करो, मेरे पास टाइम नहीं है सब करने. व्हाई आर यू स्पॉइलिंग देव व्हाट इज देवदास ब्रो, व्हाई आर यू व्हाट इज ही स्पॉइलिंग बाबा. मैम एरे रिवर की काउंसलिंग करो, पागल हो गया, जेनोसाइड करना चाहते. कौन है? अच्छा ये इधर वाला, मेरे को लगा सच्ची वाला, मतलब तुम अटैक और टाइटन्स की बात करो. छोड़ो यार, क्या कर लेगा ये सब नहीं. मैम आई एम इनसिक्योर अबाउट माय, कैन यू मेक अ वीडियो ऑन दिस. यार एवरी अदर, व्हाई विल आई मेक अ वीडियो, गो एंड वॉच माय सेल्फ वर्थ सेशन, एवरीथिंग इज देयर टू ओवरकम योर सेल्फ, योर इनसिक्योरिटी अबाउट योर लुक्स. रिमो रॉय, गो ऑन माय साइकोएडुकेशनल ग्रुप्स 3 बनाए हैं, एक है सेल्फ वर्थ पे, ओवर थिंकिंग पे, हार्ट ब्रेक पे. सेल्फ वर्थ वाला देखो एंड देन कॉन्टेक्ट मी, आई नीड टू नो मोर. और जब मेरे से तुम थोड़े बहुत सुन लोगे, अपने आप लाइन पे आ जाओगे. स्कूप वूप के वीडियो पे है यूट्यूब पर, उस पे स्ट्राइक भी नहीं आएगा, मैं आपको भेज दूंगा. ठीक है यश, ओके. आई डोंट नो मैम आप बेस्ट मूवी देखो ना, द गॉडफादर तो कितनी पुरानी, कब से देख ली यार. दिस इज द बेस्ट, या आई हैव वॉच्ड इट. आर्मिन, नहीं नॉट आर्मिन, मैंने अभी बोला ना मिकासा. या आई लाइक मिकासा वाला. आर्मिन इज ओके. अरे मैम वही की एंट्री हो गई क्या? वो कौन है? नहीं आई डोंट थिंक सो, मैंने सुना नहीं है. ओके, हेलो उत्कर्ष, हाउ आर यू? मैम 4 गर्ल्स प्रपोज मी, वाह, एंड आल्सो सेड भैया. What are you saying कि they proposed you to be a भैया, to be a brother? यार ऐसा कोई सेंटेंस लिखता है, ये सेंटेंस लिखने का मेरे को बताओ. ब्रेक करो सेंटेंस को. मैम 4 गर्ल्स proposed or you proposed them, okay? Did they propose you to be a boyfriend? How old are you? And अगर से प्रपोज करने के बाद भैया बोला तो मतलब तुम्हारा आई डोंट नो, गधे लड़कियां हैं, उनको अक्कल नहीं है, प्रपोजल का मतलब क्या होता है. अगर से वो लोग आपको सच में एक अच्छा इंसान समझ के, भाई समझ के कर रहे हैं, तो दैट इज अ, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट. डोंट अंडर एस्टिमेट दैट. बट इफ दे आर बिची गर्ल्स एंड दे आर ट्राइंग टू मेक फन ऑफ यू, देन इग्नोर देम, वॉक अवे फ्रॉम दिस ड्रामा. ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते, उन लोग का ऊपर का खाना खाली रहता है. अभी तुमने पूरे डिटेल्स नहीं दिए, पर मैंने तुमको 3-4 चीजें बोल दी. हाउ टू स्टे फिट लाइक मी, ओके. पहले तो जेनेटिक्स के बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, मॉम डैड की देन है. और अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, अच्छा पहनो, पानी पियो, नारियल पानी भी पियो. और मैं पता है, हाँ मैंने एक चेंज लाया, ठीक है. तो क्योंकि मैं कभी जिम नहीं करती थी, मुझे लाइफ में कभी जिम करना नहीं पड़ा, बिकॉज आई वाज नेचुरली my metabolism was high. So first time in my life I have gained weight since I was like 1.5 years. I've been just gaining constantly. And this Jan, I actually before my 50th birthday last year, I joined this stupid app called Fitter. Okay, why I called it stupid? Because although मेरी एक friend को काम में आया, पर मैंने 2 trainers change किए, दोनों ने मुझे सिर्फ मोटा करके छोड़ दिया. जितनी मोटी थी और मोटा कर दिया. अभी मोटा होना गलत बात नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एम नॉट फैट शेमिंग, आई एम सेइंग एज इन फॉर मी इट वाज नॉट हेल्दी.
बिकॉज नीज पे इफेक्ट पड़ता है, जिन जिनको नहीं पता मुझे नेक और बैक की प्रॉब्लम है, सो इट वाज अफेक्टिंग माय एंटायर हेल्थ बिफोर. ऑफ कोर्स यू डोंट लुक सो, like if you're got a particular style of face, not everybody looks good very chubby, right? और मेरे को तो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था, बिकॉज वो लोग क्या कर रहे थे 3 बार दिन में. आई मीन आई मस्ट गिव माई सेल्फ सो मच फकिंग क्रेडिट. कोई नहीं है ये जूम में, सब जूम छोड़ के चले गए. तुम लोग यूट्यूब पे बैठे हो, मैं तुम लोग से बात कर रही हूँ और अपने आप को देख के बात कर रही हूँ. मेरे को पता भी नहीं मैं क्या, पर ठीक है तुम लोग वॉच कर रहे हो ना, है ना. अभी 48 लोग मुझे देख रहे हैं, तो ठीक है. अभी आप लोगों से हम लोग बात करते हैं, ठीक है. तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो मुझे क्या किया उन्होंने, एक तो एक सेट रेजिम दिया, एक ऐप होता है, एंड दे मेड मी लाइक डू वेट्स, वो क्या, वो भगवान जाने, वो जो पुशअप्स, पुलअप्स, बेंच प्रेस, व्हाटएवर शिट, ठीक है, वो सब कराया. इतना मेरा वेट गेन हुआ उससे, इतना बल्क हुआ, लाइक लिटरली माय हैंड्स वे लाइक, अभी पतले इतने मोटे नहीं लग रहे, पर इट हैड रियली माय होल शोल्डर एंड आई बिकम वेरी ब्रॉड लास्ट ईयर. देन आई डिड इट फॉर मे बी 2 months. ओके, मैं बेजार हो गई, क्योंकि वेट लॉस तो दूर दूर तक नहीं हुआ, वेट गेन पक्का हो गया. क्योंकि आई थिंक उनका, आई शुड नॉट लाइक बैड माउंट देम, बिकॉज सम पीपल इट हैज हेल्प, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स लोगों का वेट लॉस हुआ है. बट वहां पे वो लोग बोल रहे थे उसको तो उसने 15,000 स्टेप्स कराए, मुझे नहीं कराए, मुझे सिर्फ जिम कराया, क्योंकि मुझे सिर्फ 5 किलो लूज करना था. 5 किलो कहीं से भी लूज नहीं हो, 5 किलो गेन हो गया, क्योंकि 3 बार दिन में तुमको खिलाया जा रहा है अच्छे से, और फिर वो तुम आधा घंटा 45 मिनट्स तुम काम एक्सरसाइज कर रहे हो. मेरा वेट लॉस नहीं हुआ, मैंने ट्रेनर चेंज किया, ट्रेनर ने थोड़ा सा खाना कम किया और एक्सरसाइज और भी कम किया, पर खाना खास कम नहीं हुआ और एक्सरसाइज काफी कम हुआ. जो पहले 45 मिनट्स लगता था, 15-20 मिनट में एक्सरसाइज हो जाता था. कुछ फर्क नहीं पड़ा, मैंने छोड़ दिया एक्सरसाइज करना, सारा 2 महीना ट्राई करने का आई जस्ट गिव अप. But this year, when in Jan we were recording one of my friends' birthday videos, and I saw myself, I'm like, oh Lord, I have really let myself go. तुम लोग को शायद YouTube पे realize नहीं होगा, पर मुझे personal life में realize हुआ कि I had, as it is with men, I'm like perimenopausal, so वैसे ही हमारा मेटाबॉलिज्म पूरा स्लो हो जाता है. वेट गेन इज वेरी नेचुरल, खाना देखो तो वेट गेन हो जाता है. देन दिस टाइम आई हैव मेड अ स्लाइट चेंज. सो जिसने ये क्वेश्चन पूछा है, मैंने एक चीज नोटिस की है कि हमको इतना खाने की जरूरत नहीं है जितना हम इमेजिन करते हैं. आई थिंक as long as you don't starve yourself, which is really bad, then you will gain a lot of weight, your metabolism will slow down. Start with your breakfast, don't skip breakfast. अगर से intermittent fasting आपसे होती है, start with 12, then 14, then 16 hours. 18 तो आज तक मैं नहीं कर पाई, मैं generally 14 to 16 hours intermittent fasting करती हूँ. I eat only like 2 toasts in the morning before. I don't gym every day, maybe 4 times a week आजकल. और तुम लोगों को पता है मैंने kickboxing start की. Then you come back from the gym. What I've started doing just last 3-4 days, and it's really helped me fucking lot. क्या? I've started having soup, क्योंकि सूप में प्रोटीन भी होता है. कभी फिश सूप, अभी नॉन वेजिटेरियंस की बात हो रही है, प्लीज मुझे वेजिटेरियन लोगों का मत पूछना, मुझे नहीं पता तुम लोग क्या खाते हो. तो आई एट ऑल नॉन वेज, बचपन से आदत है, क्योंकि मॉम क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियन है, और डैड सिंधी थे. हमारे घर में हमेशा नॉन वेज खाया जाता था, नॉट हमेशा, वीकेंड पे खाते थे, बट एज आई ग्रू आई ईट मोर नॉन वेज. तो सूप, फिश सूप, मटन सूप, चिकन सूप, क्या होता है कि वो प्रोटीन भी हो जाता है, तुम्हारा पेट भी भरता है, तुम कार्ब्स भी नहीं खाते, तुमको अच्छा लगता है. फिर अभी पॉडकास्ट के पहले मैंने सामन सैंडविच खाया, कभी चिकन करी राइस खा लिया. कल साई भाजी बनी थी. आई डोंट नो तुम लोग सिंधी जो लोग नहीं है, साई भाजी इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट डिशेस टू ईट इफ यू वांट टू ईट हेल्दी. उसमें पालक भी पड़ता है, चना दाल एंड आलू एंड ऑल दैट. इट्स लाइक अ मैश थिंग, इट्स सुपर हेल्दी. तो कल मैंने चपाती और साई भाजी खाई थी. और या सो कीप ईटिंग हेल्दी, टेक अ मल्टीविटामिन. मैंने इसके पहले नारियल पानी और नारियल खाया था. नट्स, जब मुझे बहुत भूख लगती है, लाइक अभी बैठते बैठते आई कुड हैव ईटन नट्स. या दैट्स इट. और एक्सरसाइज करो 4-5 बार हफ्ते में. या दैट्स इट. पता नहीं कितने दे प्रपोज में. अच्छा, दे प्रपोज. ओके, ठीक है. किसी ने एल्बस को म्यूट कर दिया. तनिष, मैसेज डिलीटेड बाय एल्बस. आई डोंट नो, तनिष का नाम भी चेंज हो गया. अच्छा, जस्ट गिव मी 1 सेकंड बच्चा लोग.
सार्थक पूछते हैं, मैं विनम्र कहाँ है, मैं अभी आया, तो तेरे लिए हम लोग उसको वेट कराएंगे क्या? मुझे तो समझ में नहीं आता है क्या लॉजिक है। पॉडकास्ट कितने टाइम चल सकता है? आप लोग बाद में रिकॉर्डिंग देख लेते। भाई सेव में बीएफ भैया, अरे मतलब घटिया लड़कियां है यार। संजय, फॉरगेट इट, डोंट पे अटेंशन टू सच। व्हाट इज दिस तनिष्क के इतने सारे मैसेजेस काहे डिलीट हुए हैं? ये क्या हो रहा है? ओसीडी प्रखर, आई कैन नॉट टॉक अबाउट, आई एम नॉट डोंट स्पैम। व्हाट इज ही स्पैमिंग बाय द वे? भाई आराम से, क्या हो गया है? क्या लिखा है उसने? मुझे पता भी नहीं, मैं इतनी बिजी हूँ बात करने में, मेरे को पता ही नहीं किसने क्या लिखा है। तो फक इट, आई डोंट केयर। ओके, क्या है मैम, क्रिमिनल साइकोलॉजी में करियर कैसे बनाए? कैन आई डोंट नो मच अबाउट क्रिमिनल साइकोलॉजी बिकॉज ये इंडिया में कैसे यूज होगा आई एम नॉट वेरी श्योर। तो या हाउ टू become a best version of yourself, constantly trying not to pity yourself, make sure that you learn how to handle your stress. I think a person who is a good version of themselves is kind, is caring, is hardworking, knows how to be resilient, मतलब गिरना और खड़े रहना, अपने लाइफ में अच्छी चीजें करना दूसरों के लिए, अपने लिए। से हमेशा हम बेस्ट वर्जन हमारा नहीं होगा। और मैंने एक चीज अपने लाइफ में सीखा है, कुछ चीजें अपने बारे में बहुत इनग्रेन्ड होती हैं, ठीक है। मैं नहीं बता सकती क्या, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि है ऐसी कुछ चीजें हैं जो इनग्रेन्ड होती है, और बहुत बार हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो करना जरूरी नहीं है। हर चीज चेंज करना जरूरी नहीं है। सो लर्न टू एक्सेप्ट इट and live with it if it is not harming anybody, of course. So yeah, so that इतना डिफिकल्ट नहीं। और आपको अपने आप बेस्ट वर्जन करना है, मैं तुमको दो चीज कहूंगी। एक तो मेरा ओवर थिंकिंग का फर्स्ट हाफ सीखिए, और सेकंड हाफ में टिप्स एंड टेक्निक से नहीं करना है वो मत करो, बट फर्स्ट हाफ बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ ओवर थिंकिंग वाले सेशन में विच विल हेल्प यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सेल्फ वर्थ वाली पूरी सेशन देख के अपने सेल्फ वर्थ पे काम करो, अपने आप सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक सेकंड, किसी का क्वेश्चन आया है जूम पे। क्या लिखा है? मैम ये सेशन यूट्यूब पे लाइव नहीं है? टॉप चैट तो दिखा रहा है, क्या बोल रहे हो प्रवीण? ए बाय द वे, जो भी मुझे अभी देख रहा है, कैन यू ऑल टेल मी, कैन यू ऑल सी? मुझे तो टॉप चैट नजर आ रहा है। क्या बोल रहे हो प्रवीण? डरा मत देना यार। शुभम, यश, संजय, जो भी पढ़ रहा है, जैसे यस और नो। एम आई नॉट लाइव? इज देयर राइट? हम का टेंशन काहे दे रहा है प्रवीण? तेरे को नहीं आ रहा है, डजंट मीन मुझे तो फॉर अ मिनट आई एम लाइक आई एम टॉकिंग टू हु एग्जैक्टली, देन टॉकिंग टू माय सेल्फ एंड रीडिंग क्वेश्चंस। ओके, सो आई होप गौरव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। जूम लिंक भेज दो। अरे जूम लिंक कम्युनिटी में तुम लोग की तो ऐसी की तैसी, ये इंस्टा पे लगा हुआ है, कम्युनिटी पे लगा हुआ है, डिस्कॉर्ड पे लगा है, फिर भी जूम लिंक। You're developing muscles and that is good for strength. Yes, exactly. और मैंने आज पता है मैंने मुझे क्या एक्सरसाइज करा है, लास्ट टाइम भी कराया था पर आज फिर से उसने करा है वो वाला। वो मैंने सिर्फ लोगों को देखा है करते हुए, वो जो रोप होता है ना, ऐसे मतलब ऐसे हिलाते हो, fuck it's so hard वाला। और फिर आज उसने मेरे को बोला करके एक हाथ से प्लैंक करो। सोचो मैं प्लैंक कर रही हूँ, ठीक है, प्लैंक एक हाथ से पूरा, नॉट ऑन योर एल्बो। मुझे एल्बो से, मैं एल्बो प्लैंक नहीं करती बिकॉज आई हैव अ नेक प्रॉब्लम, बट आई कैन स्टिल डू माय हैंड प्लैंक। उससे वो उसको डैम चीज को मूव द रोप, ओह फक, वो सिर्फ 10 तक काउंट करता है, तब तक मैं गिर जाती हूँ। तो इट्स रियली हार्ड। सो ट्राई ऑल दिस। आई लाइक डूइंग। मैंने एक चीज अपने बारे में सीखी है, मुझे मोनोटोनस एक्सरसाइज अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ऐसा ट्रेनर ढूंढा है जो हर टाइम, कल उसने वो लेकर आया था, कल नहीं सॉरी मंडे, सो ही कम्स मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। फ्राइडे को किक बॉक्सिंग होती है, मंडे और वेडनेसडे को कोर होता है। तो वो स्लैम बॉल होता है ना, वो ऐसे उठा के ऐसे फेंकते हैं, ऐसे उठा के। तो वो लाइक तुम्हारे, बाय द वे मेरे को, मुझे इधर थोड़ा सा लाइन आ रहा है, अभी तक काफी पहुंच है, वो अपने को निकालना है। आई एम थिंकिंग कि मैंने अभी उसके साथ कितने सेशंस किए, 27 किए। आई थिंक मैं और 30 करूंगी, देन आई विल बी इवन फिटर। फिर देखना तुम लोग, ठीक है। अभी तो वैसे भी मेरा जॉ लाइन काफी डिफाइंड हो गया है, तो हम बहुत प्राउड है। इंस्टाग्राम पे भेजा है, अच्छा ठीक है यश, बाद में देखेंगे, बहुत ज्यादा डीएम्स आए हैं, मेरे पास पेशेंस नहीं अभी देखने का। व्हेन इज माय नेक्स्ट सेशन? मंडे। इट विल बी इंग्लिश के बाद वी आर गोइंग टू हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन। आइए सब लोग देखिए, ठीक है। वेट गेन कैसे करते हैं? अरे तुम लोग ना, मुझे तो समझ में नहीं, मैं क्या तुमको किस एंगल से गे लग रही हूँ?
फिटनेस इंस्ट्रक्टर, तुमको पता है हमारे डिस्कॉर्ड में फ्री हेल्प मिल रहा है फिटनेस इंस्ट्रक्टर, अनलेस वो जवाब नहीं दे रहे, मुझे देखना पड़ेगा मंजीत जवाब दे रहे हैं क्या वो. तो प्रॉब्लम वाज डाइट, इट वाज नॉट वर्कआउट. एग्जैक्टली, डाइट वाज आल्सो रॉन्ग एंड वर्कआउट वाज आल्सो रॉन्ग, because I don't think I'm cut out for machines. It was bulking me too much. Yash, I didn't enjoy it at all. It was just weights उठाए जा रहे पर उसका actually कुछ हो नहीं रहा है. Okay, and I'll do lemon down session जो अभी जैसे ऐसे कर रहे हैं. मेरे टीम ने मुझे बोला था कि जब भी कोई पॉडकास्ट खत्म हो उसके बाद स्टॉप बटन दबा के फिर से लाइव जाओ. मैंने किया नहीं किया, फिर भूल गई. उफ, अब ये पॉडकास्ट ऐसा लगता है कि इतना लंबा पॉडकास्ट है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है. ओके, हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप? आई स्लीप मिनिमम 6-7 hours. Of course, I have to take a medicine because with perimenopause हमारा sleep बहुत डिस्टर्ब होता है, इतने hot flashes होते हैं ना. So yeah, I have to either take that or I have to take melatonin. I cannot sleep otherwise. Okay, ma'am, how to overcome addictions? किस चीज की addiction है पहले तो वो बताओ, और क्यों एडिक्शन है वो बताओ, तुम कर क्या रहे हो वो बताओ, तुमने क्या ट्राई किया वो बताओ. ये ऐसे रैंडम क्वेश्चंस काहे पूछते हो हमें? मैम, सिंस द वर्ल्ड इज एडवांसिंग एंड यूजिंग नेचुरल जेंडर न्यूट्रल वर्ड, शुड अब्यूजिव वर्ड्स चेंज टू? हाँ, तुमको पता है, एक तो मेरे को ये दिस दे देम अभी तक नहीं आता. आई एम वेटिंग फॉर दैट LGBTQ वाला सेशन. आई एम क्वाइट बैकवर्ड विद ऑल दिस, तो मुझे वो सीखना है. मैंने उनको बोला भी था कि एक तो वो, एंड पता नहीं यार, यू नो, माँ बहन की जो गालियां होती, पहले मैं बहुत सेंसिटिव होती थी. मैं बोलती थी साले माँ बहन पे ही तुम लोग क्यों गाली देते? तो मैंने एक फ्रेंड से पूछा था कि क्यों, कभी सुना है फादर पे गाली, भाई पे गाली? नहीं, माँ और बहन पे गाली होता. तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि तुम लोग मेन कांट फाइट अमंग योरसेल्व्स विदाउट इन्वॉल्विंग एज विमेन, राइट? तुम लोगों को इंसल्ट करना है तो तुम हम पे जाते हो, बी विमेन एंड योर सिस्टर्स एंड योर मदर्स, राइट? तुम में यू डोंट हैव द फकिंग गट्स to come up with something else, but you have to drag us into the controversy or into the fight to make yourselves feel better so that you can insult that person's mother or that person's sister. So I find that like really terrible. Yes, I will, Sanika, I will reply to you. So I really felt ki I don't know whether there should be gender neutral galis also. फिर मुझे, हाँ, मैं तुम्हें बता रही थी, फिर मेरे फ्रेंड ने बोला इतना सीरियसली गाली को इतना सीरियसली मत ले, इतना भी उसको डाइसेक्ट मत कर. तो तब से मैं थोड़ा कम डाइसेक्ट करने लगी हूँ और इतना बुरा नहीं फील करती. बट आई स्टिल फील कि कुछ होना चाहिए हम लोगों को, दूसरी गालियां जो इतना लाइक फकिंग रिलेटेड नहीं है. यू नो व्हाट आई मीन? कि बट आई स्टिल नाउ आई स्टार्टेड अब्यूजिंग. तुम लोगों ने मुझे गाली देते हुए सुना नहीं, पर मैं काफी गाली देती हूँ. जब से मेरे फ्रेंड ने वो मेरे दिमाग में डाल दिया ना कि इट्स ओके, गलत नहीं बोल रही हो, एज लॉन्ग एज यू डोंट लिटरली मीन इट. तो वेदांत, आई डोंट नो, एज लॉन्ग एज यू डोंट लिटरली मीन इट. इतना अगर से हम सेंसिटिव हो गए तो फिर गाली देना ही पूरा बंद कर देंगे, हर चीज करना बंद कर देंगे लाइफ में, यू नो. सो इतना, लेट्स, हाउ टू फोकस फॉर लॉन्ग आवर्स. वॉच मी हाउ आई फोकस फॉर आवर्स आफ्टर आवर्स. आई एम विथ यू ऑल, राइट? सो क्या, हाउ टू फोकस क्या है? लॉन्ग आवर्स नहीं करना है आपको, शॉर्ट करना है, क्वालिटी पढ़ाई करनी, क्वांटिटी पढ़ाई नहीं करनी. एक्चुअली यहाँ पे जूम में क्वेश्चन आए हैं हमारे लिए. मैम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एंट्रेंस एग्जाम. आई स्लीप फॉर 10 to 11 hours. इवन स्लीप, okay, you could be sleeping for many reasons. Mostly it is your escapism, you're escaping the thing, so your brain is shutting down. तो क्वालिटी पढ़ाई करो, क्वांटिटी पढ़ाई मत करो. पूरा पोर्शन कंप्लीट करना स्टुपिडिटी है. नोट्स लिखना स्टार्ट करो, पिक्चर्स बना के पढ़ाई करना स्टार्ट करो, रिकॉर्डिंग करके पढ़ाई करो, अपनी खुद की आवाज सुन के, या तो स्पीक को, आजकल कॉलम्स जो पैराग्राफ्स को ये करके आप सुन सकते हो, वो करो. Try different tariqas. Go to the park and study. Go to a library and study. You are very tensed. That's why you're sleeping. See, I knew it. I am very tensed. I haven't studied so much. So that's your brain's way of escaping. Some procrastinate, some sleep, some watch YouTube for hours and hours. Contact me. See, I cannot help you with. I just told you the 10th को एक podcast है. आइए please.
आप प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है, तो क्यों लेते हो फिर? तुम लोग, मेरे को समझ में नहीं आता तुम बच्चों को हो क्या गया? Why the hell do you all take something which you cannot chew? Why do you take more than you can digest? Why? जब नहीं हो रहा समझ जाओ ना, कोई बात नहीं, नहीं कर पाए कुछ और कर लोगे यार। तो अभी तुमने ले लिया है, चलो कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम कब है पहले वो बताओ, क्या लिखा था तुमने? एग्जाम कब है तुम्हारा? कॉन्टेक्ट मी, आई कैन जस्ट हेल्प यू विथ हाउ टू स्केड्यूल। एंड 10th को पॉडकास्ट जरूर आना आफ्टर 15 डेज। कितने दिन बचे? 4 दिन में पॉडकास्ट होने वाला, प्लीज कम एंड अटेंड दैट। बट बिफोर दैट कॉन्टेक्ट मी, आई होप द hypnosis audio that I give you better, but there is no stop running away. If you run in the opposite direction, वो गोल और भी दूर हो जाएगा। चाहे थोड़ा पढ़ाई करो, डोंट ट्राई टू फिनिश योर 100% ऑफ योर पोर्शन, इट इज टू, 15 दिन के अंदर वैसे ही नहीं होगा। तो वो करो जो आपको लगता है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या है, स्टार्ट स्टडिंग ऑन दैट, लिख के पढ़ो। किसी को बड़ी बनाओ, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो होता है हमारा, डिस्कॉर्ड में आओ, उनके साथ बैठ के पढ़ाई करो, पर प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद करो और डरो मत। तुमको ये समझना है, जब तक तुम्हारे में ये डर रहेगा ना, तुम सोते जाओगे, तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते जाओगे, क्या होगा? आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज द वर्स्ट फकिंग केस सिनेरियो? नहीं होगा पास, या नहीं होगा वो जो गोल तुमने सेट किया, मे बी यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स। You have to understand that maybe sometimes we do things which we are not cut out. Okay, I'm good, but after corona came, I did not study much. So ठीक है, whatever the reason you didn't study, you're good in studying, so already you're blessed with the genetic IQ. What is missing is the hard work. अब तुम हार्ड वर्क ही नहीं करोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि तुमको ये चाहिए, ठीक है? एनीथिंग इन लाइफ ऑटोमेटिकली आपको नहीं मिल सकता, राइट? आपको काम तो करना पड़ेगा उसके लिए। तो अब लेट्स नॉट लाइक वरी कि क्या कर चुके हो, अब क्या करोगे, आज क्या करोगे। ये पॉडकास्ट काहे देख रहे हो? 15 दिन में आपके अगर से ठीक है, मैं आपको थोड़ा मोटिवेट कर सकती हूँ, बट डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, contact me, just tell me, write the word urgent. Generally I don't look at any DMs unless it's like really urgent, because मैं भी थक जाती हूँ, कितने DMs एक इंसान आंसर करेगा। Contact me, I'll give you something for focus, for concentration, but you will have to schedule your studies. 15 दिन बचे हैं, डिसाइड करो आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, कितना टाइम पढ़ोगे। डोंट, एंड जब नींद आ रही है जाके वॉश योर फेस, ड्रिंक कॉफी, बट मेक श्योर कि आप इतना, ऑलरेडी यू आर स्लीपिंग 10 hours, दैट्स more than you should be sleeping. Obviously you're taken something and you have waited till last minute, इसलिए तुम्हें इतना स्ट्रेस हुआ है। तुम लोग को क्या लगता है कोई मिरेकल क्योर है क्या मेरे पास? मैम मैं भी स्टडीज में बहुत अच्छा हूँ, बट मेरी गर्लफ्रेंड मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है। अच्छा ओके, गर्लफ्रेंड की फॉल्ट नहीं, आपकी फॉल्ट है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों आपके पढ़ाई के बीच में आने देते हो, ठीक है? सो पढ़ाई भी करो, बैलेंस करो अपने लाइफ को, क्या बोलते हैं उसको, पढ़ाई एंड रिलेशनशिप दोनों को बैलेंस करना सीखो, नहीं तो गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। मैम प्लीज bring a sexologist, someone like doctor. Yes, I have written to actually I can call Dr. Trish again. We were supposed to collaborate. Would you want me to do that? But what more questions I had asked you all कि और क्या क्वेश्चन पूछना है, उससे मैं क्या छोड़ दिया था उसके बारे में पूछना। तो but I have tried to write to an ADHD person, but doctor, but they have not written because I got so many DMs on ADHD, पर कोई आता ही नहीं यार। तुम्हारी मैम को तुम लोग ना और सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ तो हालत शायद समझ में नहीं आता। द वर्ल्ड इज बिकम लाइक दिस कि नंबर्स का गेम चल रहा है यहाँ पे। मैं करने जा रही हूँ कुछ अच्छा, तुम 2 लोग भी हो यहाँ पे जिनको ADHD है, और अगर से कोई डॉक्टर आके मदद करे, क्योंकि मैं तो आई एम नॉट अ ADHD काउंसलर, राइट? तो आई वांटेड हेल्प, बट क्या करूँ, मेरा हैंड्स आर लाइक समटाइम्स आई फील सो हेल्पलेस। बट ठीक है, ओके हम कहाँ थे? हाँ, हाउ टू फोकस फॉर लॉन्गर लिसनर। मैंने कब गुस्सा किया यार, मुझे तो पता नहीं। मैं तो, मेरा तो चलता रहता है, ठीक है? माय इमोशंस फ्लक्चुएट लाइक दिस। मैं 1 सेकंड में हंसती हूँ, तुमने कुछ लिखा तो मैं अपसेट हो जाऊंगी, और रियल अपसेट नहीं यार, ये सुपरफिशियल है, डोंट वरी। तुमने मेरा रियल अपसेट नहीं देखा है। जो मुझे एक्चुअल जानते हैं ना, उनको पूछो मैं कितनी गाली दे सकती जब मैं गुस्सा होती हूँ, ठीक है? तो क्या, ओके मैम, शुड आई मैसेज सो दैट यू कैन, हाँ, what, just text me now on my Insta, so I will know कि it's you. Just write the word urgent. Okay, कहाँ थे हम लोग? Okay, who's asking how to deal with rejection?
Oh, sorry. Who asked me this? Oh, that guy who, अरे रिजेक्शन थोड़ी है, उन्होंने तुम्हें प्रपोज किया है, तुमने उनको रिजेक्ट करना। एक तो रिजेक्टेड, तुमको मालूम है मेरे को ये वर्ड से कितना सख्त नफरत है। तुम लोग अपने आप को क्या इतना 30 मार्क का समझ, थैंक गॉड हमें गाली नहीं मिलेगी। तो कहाँ थे हम लोग? स्टॉप डिस्ट्रैक्टिंग मी। ओके, कहाँ थे हम लोग? They annoy you every day, Sanjay. Then it is your fault if they annoy you every day. Why the fuck are you talking to them? It is your fault if you don't know how to draw your boundaries, if you don't know not to be in touch, and if they are making fun of you, contact me, मैं उनको थोड़ा सुना दूंगी, ठीक हो जाएगा। या तो फोन निकालो, रिकॉर्ड करो, या किसी को कंप्लेन करो, कॉलेज स्कूल में, पता नहीं तुम्हारी उम्र क्या है। See, you have to learn to deal with these kind of things. Okay, how to deal, I just explained to you how to deal. It is your fault if you're how, what do you mean tomorrow they annoy you every day? Why do you get annoyed by these stupid idiots? Who's smarter, you or them? Doesn't look like they are smart, but then you are no better if you're going to fall for this shit. Ignore these idiots. Any thoughts on red pill? अरे हम लोग लास्ट टाइम रेड पिल ब्लू पिल के बारे में बात किया था, मेरे को नहीं मालूम, तुमको जो सोचना है सोचिए। बेचारे फिश मस्त पानी में घूम रहे थे थोड़ी देर, किसी ए चुप कर यश, तेरे को, तुझे नहीं खाना मत खा, मेरे खाने पे नजर मत डाल। ओके, यस यस यस, सब लोग लाइव बोल रहे। हैव यू रेड समवन्स माइंड, नॉट स्वेटिंग बट टू वेरी क्लोजली? या ये एको गेमिंग, पहले भी मैंने तेरा पढ़ा था क्या, मैंने सिर्फ टॉप पहना है, क्या देखना है तुमको, भगवान ही जाने। चुप करो, फोकस फोकस। ये पॉडकास्ट हमारे कपड़ों के बारे में नहीं है, ये हम लोगों की दुख दर्द दूर करने आए हैं, ठीक है? क्या है? How to read someone's mind, not accurately but very closely. There is no way you can read anybody's mind. Okay. हमारे इधर 11 बज रहे हैं। हाँ, करेक्ट। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट। हमें रियलाइज नहीं हुआ है। मुझे भी भूख लगने लगी है। हाँ, करेक्ट। ओके, तो एक मिनट यार, मैं क्या बोल रही थी, मैं खुद ही क्वेश्चन बोल रही थी क्या। ओके, देखो, यू कैन नॉट रीड एनीबॉडीज माइंड बिकॉज वी आर, यार तुम अपने आप को नहीं समझ सकते, तुम सामने वाले को क्या समझोगे? पूरी जिंदगी निकल जाती खुद को समझने में। तो मैक्सिमम यू कैन, if you know them well enough, you can predict a little bit of their behavior, what will annoy them, what they like, whatever, but you can't really read people's minds. Okay, ऐसा होता तो क्या बात थी। वो रोप वाली एक्सरसाइज किस लिए होती है? स्टेमिना के लिए होती है, और ये पार्ट और ये पार्ट, और ऑफ कोर्स कोर के लिए, बिकॉज अचानक रियलाइज हुआ कि कितना दुख रहा है। ये जो कोर अपना इधर होता है ना, उसके लिए होता है कि you have to bend your knee and chest out, and you have to, like, you're not supposed to move your arms like that, you're supposed to like do this, so you तुम्हारा entire core उसमें use होता है। It's really मैं बोलूं, अभी बहुत दुख रहा है, अभी तुम लोगों को दिखाते दिखाते मेरा अचानक रियलाइज हो कि कितना दर्द हो रहा है। ओके, एको गेमिंग ये सब क्यों पूछ रहे हो? आई नो इट्स रियली स्टूपिड, बेचारी मुर्गी मस्त के इसमें। ए यश, पहले साला मच्छी थी, अब तूने मेरे मुर्गी पे नजर डाली है। Hey, yeah, intro. Stop labeling yourself. My plank is like 1 minute 30 from last year ago. I stopped doing planks because it caused. So I don't do that kind of plank. I do only like 10 seconds or something. क्योंकि इतना भी नहीं अच्छा। हाँ, he mixes up my exercise. I never do only plank. वो बहुत old school है, बहुत सारे different चीजें वो TRX यूज करता है, slam ball यूज करता है, ये ropes यूज करता है, core exercises, फिर वो बड़ा वाला बॉल, भगवान जाने उसको क्या बोलते हैं यार, वो बड़ा वाला बॉल क्या होता है? Anyway, जो भी, उसके साथ भी एक्सरसाइज करा था। मेरा तो ट्रेनर, मतलब मैंने लाइफ में 4-6 बार एक्सरसाइज किया होगा, एक महीना, ठीक है, पर ये मेरा सबसे फेवरेट ट्रेनर है क्योंकि वो हमेशा कुछ नया करने देता है, मुझे बहुत मजा आता है। ओके, मैम जोकर की साइकोलॉजी के बारे में मैं एक मिनी सीरीज मैं बनाऊं आपके चैनल पे, बिकॉज इज अ फिक्शनल। मुझसे ना हो पाएगा यार, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एक्सीडेंटल यूट्यूबर हूँ, मुझे नहीं आता ये सब करना। ओके, ओके, मेरा 12 मिनट का प्लैंक का रिकॉर्ड है। रियली? 12 मिनट तुझे कौन देखे? 12 मिनट मुझे तो ना देखा, मुझे नहीं देखा 12 मिनट, मेरे पास टाइम नहीं है। हम लोग ये करेंगे, ठीक है? माई माइंड इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ थिंकिंग अबाउट entering into a relationship as I've seen negative, but when I think about relationship,
As I've seen negative things when I think about it. हाँ, तो ट्राई नहीं करोगे तब तक तो नेगेटिव ही रहेगा, और वैसे भी हर रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होगा आपको देखकर। वो तो फिर हम तो बहुत बार देखते हैं करके, कार चलाने से एक्सीडेंट होता तो कार चलाना बंद कर देंगे, साइकिल चलाने से नीज पे लग गए तो साइकिल चलाना बंद कर देंगे, कभी कभी खाना खा के फूड पॉइजनिंग होता तो खाना खाना छोड़ देंगे। क्या है, एक्सरसाइज करते हैं तो दर्द होता है तो क्या एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे? कुछ अच्छा कुछ बुरा साथ में, हर चीज लाइफ में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव लेकर आएगा, उससे डरो मत, उससे आप सीखोगे, स्ट्रॉन्गर होंगे। हाँ, पर ये माइंडसेट के साथ जरूर जाना कि मैं ये, इफ दिस डजंट लास्ट, इट इज नॉट मेंट टू लास्ट, इट इज ओके इफ इट डजंट लास्ट। And Kushal, I would recommend watching the heartbreak session, not because your heart is already broken, but because it will make you understand why the psychology behind two people's when they combine together. Why do we stay in bad relationships and all of it? Once you understand that and once you fix your self-worth, you will not be worried about कि अगर से वो इंसान आपको छोड़ के चला गया। हाँ, थोड़ा तकलीफ होता है जब किसी को आप चाहने लग जाते हो, बट उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। ठीक है। किसी ने मुझे कुछ लिखा है, मैम 50 years woman आप is fitter than a 19 years boy like me, such miserable life of a JEE aspirant competition ने बजा डाली, I need to work on my fitness. I'm sorry to say 24 hours in a day you have, Praveen, but it is your choice if you are not going to even use 30 minutes to 45 minutes to exercise. I do not believe कि एक जेई एस्पिरेंट या नीट या जो भी फकिंग शिट तुम लोग कर रहे हो कि तुम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। उल्टा ये आपके ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट एक्सरसाइजिंग टुडे, इवन इफ इट इज अ 30-minute वॉक। फॉरगेट वेदर यू आर फिट और नॉट, इट विल फाइनली विल बिकम फिट, बट आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मेमोरी भी इंप्रूव होती है एक्सरसाइज करने से। सो प्लीज डू नॉट इग्नोर दिस, ठीक है। और डोंट टेल मी कि 24 घंटे में यू कैन नॉट टेक आउट 45 मिनट्स। आई रिफ्यूज टू बिलीव दिस। तो स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है। एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो। व्हाट्स मैंने जॉर्डन पीटरसन का पहले तो जिंदगी में नाम नहीं सुना था। जिसने मेरा पॉडकास्ट देखा था श्वेताब के साथ, जब उसने मुझे पूछा, मैं आई वेंट लाइक दिस, एंड वो दिन थे जब मैं एक्चुअली कमेंट्स भी पढ़ती थी दूसरों के पॉडकास्ट पे। मैं अपने पॉडकास्ट के तो वैसे ही रिप्लाई करती, जो बुरे होते डिलीट कर देती हूँ, जो मुझे क्रीपी कमेंट्स लिखते। बट अदर देन दैट मैं सारे कमेंट्स रखती हूँ, इंक्लूडिंग जो लेटली मुझे मैं किसी बात से इरिटेट हुई थी और मैंने उसको। और बाय द वे जो भी कमेंट्स लिखेगा हमेशा याद रखना, मेरा तरीका है, मैं एक पैराग्राफ के बिना नीचे नहीं लिख सकती, ठीक है। तो डील विथ माय पैराग्राफ्स। अच्छा, तो हाँ, तो पहले तो मुझे जिंदगी में पता नहीं था जॉर्डन पीटरसन कौन है, ठीक है। क्यों नहीं पता? मुझे पढ़ाई करके 30 साल हो चुके, ठीक है। मैं जब 20 साल की थी तब हम लोगों के टाइम पे साइकोलॉजी वो 4 बुक्स में से आती थी जो स्कूल में। हमारा ना गूगल था, शूगल फूगल कुछ नहीं था। हमने फ्रॉइड पढ़ा था, कार्ल यंग पढ़ा था, और कार्ल यंग ज्यादा मैंने हिप्नोथेरेपी में पढ़ा था। और फिर जब मैंने काउंसलिंग जब डिप्लोमास के, तब थोड़ा बहुत हम लोगों को सीबीटी, आरईबीटी और क्या सिखा था, साइको एनालिसिस, ये हमको थोड़ा बहुत सिखाया, ठीक है। मैं झूठ मेरे को बोलना अच्छा नहीं लगता, फेक करना मुझे बनना ही नहीं, फेक इंसान मुझे प्रिटेंड नहीं करना, मुझे किसी को आइडियलाइज करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है, जैसे किसी ने लिखा कि एक दिन जॉर्डन पीटरसन आपके, अरे आएंगे तो अच्छा ही बात है, मुझे नहीं पता मैं उससे क्या बात करूंगी, क्योंकि पर चलो ठीक है। मुझे पता है कि लोगों ने मुझे पता है प्रखर का फेवरेट जॉर्डन, उसका नाम बराबर, हाँ जॉर्डन पीटरसन है। आपका क्या था? अरे यार वो उसका फेवरेट होगा, जरूरी है कि मेरा भी फेवरेट कोई हो? मैं सबके, मुझे तो लगता है तुम लोग भी मुझे कुछ सिखाते हो। क्यों हम लोग हमेशा लोगों को इतना, ठीक है अच्छे है अपने अपने जगह पर, मुझे नहीं पता। मैंने उसका वो क्या क्या था, उसने मुझे पढ़ना पड़ेगा, उसको कुछ 12 रूल्स उसी ने लिखे थे ना, उसी का था ना। हाँ, तो वो मैंने पढ़ लिया था, पर मैंने वो समरी वर्जन पढ़ा था, अच्छा था। बट पर मैंने सुना है कि वो काफी क्रिश्चियनिटी के टुवर्ड्स या समथिंग लाइक दैट है ना, ही इज प्रो समथिंग। और मैं हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करती, मेरा एक रिलीजन को कभी ये नहीं होता। और मुझे लगता है साइकोलॉजी और रिलीजन को तो वैसे ही बीच में नहीं डालना चाहिए, रिलीजन और साइकोलॉजी अपने अपने जगह है, ठीक है। ओके, लाइक आई सुनो, even though he is not okay, so I'm very afraid। हाँ तो यार हो जाएगा, तो तुम छोटे बच्चे थोड़ी हो, दूध पीते बच्चे थोड़ी हो। तुमने जब बचपन में चलना सीखा, गिरे फिर खड़े रहे, फिर गिरे फिर खड़े रहे, फाइनली चलना सीखा ना, ऐसे ही तुम रिलेशनशिप में गिरोगे,
खड़े हो जाओगे, गिरोगे, फिर खड़े हो जाओगे, फाइनली तुमको समझ में अक्ल आ जाएगी। अक्ल बादाम खाने से नहीं, धोखे से ही आती है। आपको भी ऐसा कुछ होगा, आ जाएगी। बहुत कुछ सीख के आता है रिलेशनशिप। इससे डरो मत। एंड देयर आर सम ब्यूटीफुल मोमेंट्स, हु नोस, फॉर ऑल यू नो यू माइट हैव अ गुड रिलेशनशिप। व्हाई डू यू थिंक कि जस्ट बिकॉज एक के साथ हुआ तो ये, दिस इज सच अ स्टूपिड जनरलाइजेशन यू आर मेकिंग कि एवरी रिलेशनशिप इज फक्ड अप, एवरी रिलेशनशिप इज बैड। अगर से ऐसा होता तो हम में से सब लोग, कोई भी रिलेशनशिप में नहीं होता, हम सारे सिंगल ही बैठे पड़ रहे, कोई बच्चे ही पैदा नहीं होते, ठीक है, एट दिस रेट। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे कोको कोला पीने का एडिक्शन है मैम, क्या करूं? ओ आई एम सो क्यूट, थैंक यू। पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूं, फिर आपका क्वेश्चन आंसर करूं। मैं तो सबसे पहले बोलूंगी तुम्हारे माँ बाप को मुझे तो उनका नंबर दो, मैं उनको कॉल करने वाली हूँ। और ये यश पलांडे, आपके पेरेंट्स से मुझे बात करनी है, वो घर पे कोक अलाउ क्यों कर रहे हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकंड, आपका पॉकेट मनी में पूरी तरीके से ले लूंगी, तो आप पी नहीं सको, ठीक है। और कॉन्टैक्ट मी, आई फर्स्ट, देखो कोक का कुछ नहीं जाएगा, कोई ये नहीं कहता कि कोक मत पियो, पियो, बट moderation. Do you know the amount of chemicals that they go into your body? Your body is a beautiful uh, home. It's your home, right? आप अपने घर को सजाते हो, ये भी अपने अंदर का जो जिस्म है उसके अंदर अच्छा खाना पीना। कोई ये नहीं, मैं भी डाइट कोक पीती हूँ, मैं ये नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि मैं नहीं पीती हूँ, बट आई एम, इफ you take it away from me, I'll be fine. And that shows that you're not supposed to be addicted to anything. And all these substances, they have way too many chemicals, too much sugar, which is very bad for you. Moderation में करो, अपने आप को बोलो करके, अगर से आप रोज पीते हो, start doing it alternate day, then every 2 days, every 3 days. If you have one coke, I think it should be fine. It's not, unless you're having like 4 or 5 cokes in a day, तेरा तो अस्पताल में नंबर तो आने ही वाला है। मैं तो अभी बता रही हूँ, फिर बोलना मत मैंने तुम्हें बताया नहीं। और ये सब एक्सपेक्ट मत करो कि मैजिक पिलो आपके मुंह में डाल दिया तो आपको कोक पसंद करना आप भूल जाओगे। यस, देयर आर सम हिप्नोसिस ऑडियोज व्हिच कैन हेल्प यू लूज वेट, व्हिच कैन, if you have read, hypnosis is very good for to get rid of addictions, but अपने तरफ से भी मेहनत करना पड़ता है, अपने आप सब कुछ, like it's not like a magic thing, ठीक है। तो you can look up addictions, if not contact me and tell me your addiction, I'll give you the audio, but you'll have to do something about it yourself also, ठीक है। मैम आपको देखने की एडिक्शन है, क्या करूं? लाइक अभी भी जाकर पढ़ने में मन नहीं कर रहा। नहीं बेटा प्लीज पढ़ो, तुमको पढ़ाई लिखाई करके मैम को बाद में लाइफ में मदद करना है। जैसे मैम सबकी मदद कर रहे हैं, आप भी लोगों की मदद करना, पढ़ाई लिखाई करके किसी की जिंदगी संवारना, ठीक है। ओके, हम दोनों की तरह पढ़ाई करने को देंगे। ओके, कॉन्फिडेंस भाई, जब मन करे तब पढ़ो। कंपटीशन, जब मैम 15 दिन नहीं 1 साल है बैठा भी हूँ मैं लॉन्ग आवर्स, अभी 100% एफिशिएंसी। यार 100% ये स्टूपिडिटी बंद करो। दे डोंट ट्राई टू एम फॉर परफेक्शनिज्म, यू विल ऑलवेज फॉल शॉर्ट। डोंट लुक फॉर दैट कि हमेशा इतना ही होना चाहिए, इतना नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ये एक्सट्रीम मेंटालिटी आपको कभी हेल्प नहीं करेगी। स्केड्यूल बनाओ, फिक्स, सिट विद योर स्केड्यूल। अगर से थोड़ा इधर उधर हो गया कोई बात नहीं, आप ह्यूमन हो, बट कम बैक टू इट, स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, ठीक है। Ma'am, I'm not being able to connect with my dad because he's really adamant to his attitude and way of thinking and considers at top of, I really respect him, want to connect with him. देखो ऋषि, प्रॉब्लम ये काफी हद तक का ये जनरेशन, मेरे जनरेशन और उसके पहले की जनरेशन की है, क्योंकि आपके फादर के फादर भी उनके साथ शायद ऐसा बिहेव कर रहे हैं, या तो अगर से ही वॉज द ओनली सन, और सन्स को इतनी इंपॉर्टेंस दिए जाते थे प्रीवियस। हमारे घर में ऐसा नहीं होता। अब हमारे दोनों बच्चों को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलता, नहीं कि वो बेटा है तो उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, बेटा में रहेगा तो उसको हम मना नहीं करेंगे, बेटा है तो उसको सर पे चढ़ा के कथक कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे घर में। बट प्रीवियस जनरेशन में ऐसा होता है, इसलिए उन लोगों को ये लगता है कि बच्चों को we are like this and the bachas are there, we are like supposed to. So to connect you will have to be more subtle about it. If you're like right in his face, he might not like it. He'll like, what the fuck is wrong with you? तेरा दिमाग खराब हो गया, right? तो धीरे धीरे उनके साथ कभी ऑफिस चले जाओ, कभी उनके लिए कुछ लेकर आओ जो उनको खाने में पसंद है। अगर से उनके लिए उनका बर्थडे आ रहा है, उनके फ्रेंड्स को बुला के सरप्राइज पार्टी करो।
If he likes a particular movie, buy the tickets and take your mother also. Don't forget, like, to bond, have that relationship there also. Go out as a family. If he likes ice cream, if he's not well, spend time with him, sit and watch what he enjoys watching, whether it is cricket or stock market or whatever it is. So धीरे धीरे करके उनको उनके साथ engagement start करो, but don't expect it to be like 100%. Okay, it's never going to be, because तुम अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हो पर सामने वाला नहीं करेगा तो हाउ विल इट वर्क? इट हैज टू बी अ रेसिप्रोकेशन. ठीक है. अरे मैं पता है कब से यहाँ बैठी हूँ, साले तुम लोग मेरे को जाने देवोगे कि नहीं? आप ओके, पढ़ते टाइम ब्रेन पूरा रिलैक्स होना चाहिए. ओके यार, एक तो रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन मत पूछो, दिल से बुरा लगे. चुप कर गौरव, तुम लोग ना, ये दिल से बुरा क्यों लगता है? क्या तुमको किडनी मिलने वाली है रिलेशनशिप में होंगे या नहीं होंगे? तो है ना 2 किडनी. स्टॉप एक्टिंग सच अ बिग फकिंग डील यार. दिस इज द प्रॉब्लम विथ यू ऑल. दूसरे के पास कुछ भी है तो अपने को भी चाहिए होता है. ऐसा थोड़ी होता है. मुझे भी कुछ चाहिए, मुझे फरारी चाहिए, मुझे नहीं मिलती तो व्हाट द फक शुड आई डू? मैं बोलूं अरे फरारी के बारे में बात करना बंद कर दो? नॉनसेंस. हाँ, आपने शरद के साथ पॉडकास्ट किया था ना? हाँ किया था, देख लो जाके, वहां पे है. उसके बाद 5 घंटा चला वो स्ट्रीम पर. शरद पूरे 5 घंटे के लिए नहीं थे. आई एम नॉट मिस्टेकन, 1.5 hours. पर उसके बाद यही चल रहा था, ये जो अब चल रहा है ना, क्वेश्चन आंसर. पता नहीं कैसे खत्म नहीं होते तुम लोग के क्वेश्चंस, बट इट्स वेरी क्यूट. आई एम वेरी हैप्पी दैट यू पीपल. Hello ma'am, I like a girl, but even after knowing that she doesn't show any affection from her side, we are very close friends. Should I tell her about my feelings or not? Yeah, I like a girl, but even after knowing that she doesn't show any, the answer is in this question. Look, that's, you read that part, put it in like brackets and read this. She doesn't show any affection. Does it mean that you need to show her your affection? No. Why? Because it's fucking clear. If a person cannot even show you affection as a friend, as like more than a friend, why the fuck would you do that? What will change? Because जो इंसान आप में interested है वो मे बी आईज से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, उनके एफर्ट से आपको पता चलेगा कि वो आपसे, आपके साथ इंटरेस्टेड है कि नहीं. आप अगर से उन लड़कों में से है जो बोल के मन को शांति देना चाहिए, मैंने इसको बता दिया, क्योंकि बहुत लोग हैं जो नहीं करते, वो बोलते हैं यार काश हमने बता दिया होता. अगर से वन ऑफ दोस, बता दो, देखा जाएगा. नहीं, इफ यू आर रेडी टू फॉर हर टू से नो completely, okay, then do it. But after this, if your friendship suffers because she might get awkward, you might say hey उसने मेरा मन नहीं कर रहा उससे बात करने का, फिर वो एक अलग complication start होगी. Be prepared for it. If you're prepared for it, go ahead, do it. If not, don't do it. Okay. मैम अच्छा, आपको अभी पता चला मैम आई सीम टायर्ड. तुझे क्या लगता है इजी है क्या इतने घंटे बैठना? यस मैम, कैन यू मेक अ वीडियो और इंस्टाग्राम पोस्ट एक्सप्लेनिंग? नहीं, जय अनिरुद्ध, we are going to have a podcast on LGBTQ, and then I don't want to say something which I don't. Man, I have messaged you on Instagram. Okay, I will reply later. Abhi it's already 11:30. Please, I'll reply to you tomorrow. ओके. क्या है मैम, बहुत लेट लाइव चैट मैसेजेस पहुंच रहे हैं आप तक, क्या करूं मैं अब मैं इंटरनेट को तो कुछ नहीं कर सकती ना. अरे पर मैं बाय द टाइम मैं आंसर करती हूँ तब तक तो 10,000 और क्वेश्चंस आ जाते हैं. 10,000 नहीं आते, बट यू नो आई एम एक्सैजरेटिंग, इसलिए बोल रहा हूँ रिएक्शन वीडियोस करो. नंबर्स अपने अपने, नहीं मुझे यार ये नंबर्स पे नहीं जाते, वो बात नहीं. मैं सिर्फ बोल रही हूँ लोगों को, लोग हाँ नहीं बोलते हैं जस्ट बिकॉज मेरे इतने नंबर्स नहीं है. फक इट, जितने आते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, बाढ़ में जाए. मैं आपको आइडियाज दूंगा आपके नीचे. हाँ ठीक, नीश, तुम जब भी नीश लिखते हो मैं नीचे पढ़ती हूँ, सॉरी. तो ठीक है यश, कॉन्टेक्ट मी, देन यू कैन बी पार्ट ऑफ द टीम ऑल्सो इफ यू वांट टू हेल्प, दैट्स फाइन. स्वानिशा तो रीड कर लेती है, माइंड रीड. पता नहीं सच में करती है, मुझे नहीं पता. आई डोंट बिलीव इट. आई थिंक दे मस्ट बी गिविंग यू जेनरिक. मैं बेट लगाने को तैयार हूँ, अनलेस वो मेरे सारे फकिंग पॉडकास्ट देखे, वो मेरा माइंड नहीं रीड कर सकते. ठीक है, आई डोंट बिलीव इट. हाँ, मेडिसिन बॉल करेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन बॉडी वेट, आर्म्स एंड ऑल्सो ऑन लेंथ ऑल्सो. लाइक ओके उत्कर्ष, तुमने तो बहुत ज्यादा मेरे को दे दिया, ठीक है, बट स्किनी 40 है. ओके ओके, हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पर्सन इज रियल टॉकिंग? है रियल टॉकिंग क्या होता है?
मतलब इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। अभी तो मैंने समझा है 2 सेकंड पहले जो बोला सेम चीज अप्लाई होती है उस पर, ठीक है। टेलीग्राम से आए हो क्या? जो बाइडन, फिर इधर तो आ गया। हाँ, जो बाइडन। मैम, आई डोंट फील एनी मोटिवेशन टू डू प्रोडक्टिव, आई यूज्ड टू बी प्रोडक्टिव अर्लियर बट इन ऑनलाइन टाइम नथिंग। Contact me, Krishna. This is a long stream. Plus, this is not so easy. I need to understand and ask you more question. जाओ मैम, जी लो अपनी जिंदगी। Thank you. Finally, last thing comment was, I'm recently seeing more of Sigma mentality videos on YouTube and should not be watched. Are you asking me or you're telling me? I have no clue what that means. I need to watch the video to tell you. Send me the link, let me watch it, then I'll tell you. Unless it's a fucking 1 hour video, do not ask me to read 10 मिनट 15 मिनट का मैक्सिमम मेरा टाइम होता है। मेरे पास बहुत काम है, मैं खुद को एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस नहीं दिखा सकती। ये क्या देखूं? How to handle exam pressure and fears. Come on 10th, we are discussing, entire topic is going to be on studies, exam pressure and all of it. 10th को podcast, please all students please attend. फिर बोलना मत हमने आप लोगों को मदद करने की कोशिश नहीं की, ठीक है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं asking. अच्छा, asking, I don't know, Abhishek, send me what that video is. I have no clue. I don't watch YouTube. I don't have time. If I wish I could show you all my Instagram. इंसान हर टाइम हर 3 दिन में क्लियर करती हूँ और 15 मैसेजेस क्लियर करती हूँ और 20 मैसेजेस। ट्रस्ट मी, इट्स फकिंग एग्जॉस्टिंग व्हाट आई डू। सो यू all you बच्चास appreciate what I'm doing. I'm really trying very hard to help all of you all. And कुछ लोगों में तो पेशेंस ही नहीं होता, 4 बार तो टिंग टिंग पिंग पिंग करते रहते। आई एम लाइक, समझा करो, बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं। कैसे एक इंसान इतना, कैसे should I forgive the person partner if she cheated? Okay, last question. Okay. अरे यार, last question तो reply करने दो। Ma'am, I can't study. Tomorrow is my board exam. My mind gives me excuse that marks are nothing. What can I do? Okay. अभी कल एग्जाम है, मत करो। अब क्या मैं क्या बोल सकती हूँ तुमको? अगर से तुमने अपने आप को कन्विंस कर ही दिया है तो फिर काहे लिख रहे हो? एक तो तुमने इतना लेट मेरे को क्यों कांटेक्ट किया लास्ट दिन पे? पहले करते तो थोड़ा, पता नहीं, अब तुम्हारा नाम मैंने यहाँ देखा है, मुझे नहीं पता तुम अगर से मेरे इंस्टा पे हो। अगर से मैंने तुम्हें सारे रिसोर्सेज दे दिए और तुम अभी भी, तुमको मार्क्स आर नॉट इम्पोर्टेंट तो नहीं इम्पोर्टेंट है। जिनको मार्क्स इंपॉर्टेंट है वो भी डरते हैं, जिनको नहीं भी इम्पोर्टेंट है वो भी डरते हैं। मुझे यू कांट स्टडी, डोंट स्टडी, इट्स ओके। आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, आपको स्ट्रीम नहीं मिलेगा, तो आप कुछ और कर लोगे, तो कहीं ना कहीं बाद में अक्ल आ जाएगी। Don't worry. Abhi, it's a bit too late to thank you, Prashant, for your compliment that I'm a good soul. Thank you, Albus. I'm an athlete. I'm overthinking my injuries. Aryan, please contact me. I cannot resolve a issue like this, like एक line में. I need to understand क्या तुमको हुआ है, कब ठीक होगा कि नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक होगा तो हम क्या करेंगे, तुम क्या ओवरथिंक कर रहे हो? समझो, एक लाइन में कोई प्रॉब्लम डिस्क्राइब नहीं करते, ठीक है। हाँ, I will answer your question. I got your point. आपने सीधे शुरू, हाँ शौविक, I was answering your question. उसके बीच में ये एग्जाम का क्वेश्चन आ गया। कंट्रोल आशुतोष कौन है? आशुतोष कौन है? Oh, ma'am. Okay, I love you. Okay, it's okay. He just loves me as not like a romantic love, I'm sure. He wrote ma'am also. Manjeet, it's okay. शताब को भी लोग I love you लिखते हैं और मेरे सामने भी बोला I love you sir, I love you भैया, और शताब ने उसको I love you, so that is okay. हाँ, अभी हम लास्ट क्वेश्चन शौविक का आंसर करेंगे चीटिंग पार्टनर्स के बारे में। ओके, ये थोड़ा सीरियस क्वेश्चन है, तो आपको मैं थोड़ा डीप, इतना नहीं बट मेरा आदत इतना डीप जाने का नहीं, मैं आधा घंटा नहीं बात करेंगे इस पे आपको एक सिंपल चीज बता दें। फर्स्ट, इट मैटर्स हु दिस पर्सन इज, एज इन इज इट अ पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस चीटिंग हुई है कि रियल लाइफ चीटिंग हुई है, ठीक है। Are you going to meet that person often? Second, how long were you in the relationship? Third, I will not blame you for the cheating, but is generally when a person cheats, is generally the क्या होता है कि वो relationship के dynamics में issue होता है कि शायद they are looking for something which they are not getting in this relationship and therefore they cheated. Unless the person is polyamorous and then you knew about it, that's a different kind of thing, or if you're in an open relationship. But forgiveness matters if the person is genuinely sorry, if the person is promising that they will not do it again.
but it is going to take hell of a lot for you to develop trust in that person, because एक बार trust टूट जाता है, उसको forgive करना, उसको forget करना, बार बार फिर आप suspicious होंगे, आप possessive हो जाओगे, आप control freak हो जाओगे. इसलिए it's not an easy question to answer, because it's not my life. You have to decide, do you think this person is worthy of a second chance? Do you think the person is telling you the truth? And under what circumstances? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक जैसे वो याद है फ्रेंड्स वाली सीरियल थी जहाँ पे वो रेचल और रॉस के बीच में उन लोगों ने ब्रेक पे थे और वो आर्ग्यूमेंट हो रही थी, तो इफ दे वर ऑन अ ब्रेक, did you all decide to like date other people? Is that because you've not given me all of the क्या बोलते हैं details, but I'm just telling you what caused this cheating. Is the person is a serial cheater, then obviously you don't need to forgive. But I mean not obviously, फिर भी लोग forgive करते. क्यों मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि वो इंसान की आदत पड़ जाती है. आप you're so desperate. I'll tell you, this actually happened. Okay, there was this, not a young person, a married person, married for 10 years, and he started actually I wanted to talk about this case. I'll try not to divulge too many details. I don't think anybody will know who that person is, but I'm just saying that, the mistake he made is, I'll tell you why I brought this up, because he brought in swinging. He discussed with the wife to exchange partners. Initially the wife was against it, okay? And she said, पागल हो क्या, क्या बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो, and this is in India, right? तो और इंडियन कपल, तो पहले तो उसने ना बोला. फिर एक दिन वाइफ को उसने बोला, अच्छा हाउ अबाउट इफ नॉट, like if you don't want to, how about we just try? So first 2 years of the marriage she denied it, okay? Then their sex life got little, as usual, every marriage or every relationship will go through it, but every marriage goes through it, but they don't start doing this, right? So this is what I want you all to be very careful, because जिन्होंने मेरा श्वेताब के साथ स्ट्रीम देखा था हमने, और एक बार आपको ककोल्डिंग की बात की थी हमने, और आपको समझाया था कि it is very dangerous because all these fantasies can fuck up your life. So this person told the wife it's okay, right? And they exchanged partners and she got hooked to it. That's so much so कि when he used to travel, she used to sleep around with someone else. And then he forgave her one time because he said, ठीक है, मैंने भी किया था तो तुमने भी किया, चलो ठीक है. But then it ruined their relationship, because then it became so complicated, because first it almost like 2 years he allowed it to happen. The swinging partners, threesomes, they tried all this shit, right? And then the wife started not appreciating their sex life. This is the problem. You people do not understand. आप लोग ये shit porn देखकर आप लोगों को लगता है this is so cool, let's do all this crap, but it is going to affect your life. It will affect your relationships. So इसलिए मैंने अभी ये टाइम पे ये बोला, क्योंकि is it कि तुमने भी, I hope तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जहाँ पे तुमने लड़की को बोला करके चलो हम लोग swinging करेंगे या cuckolding करेंगे या थ्रीसम्स करेंगे, और फिर वो इंसान आप पे चीट करता है बाद में, फिर आप बोलते हैं अरे तुमने मेरे पे क्यों किया, तुम तो मेरे साथ करने वाली थी. फिर आई एम सॉरी बट यू ओपन द डोर फॉर द डेविल, एंड देन तुम्हारे घर रिलेशनशिप में और घर में आग लग गई रिलेशनशिप वाले, तो वो तुम्हारी गलती है. जैसे इस इंसान की उसमें गलती थी. हाँ, ऐसे ये नहीं कि बीवी इतनी क्लूलेस थी, 5 साल की बच्ची की उसको नहीं मालूम वो गलत कर रही है उसके पीठ पीछे. तो मैंने उसको वही बोला, and now of course they have divorced that couple because she wanted a divorce and he lost his job in COVID and all that stuff, and she was like, what do you have to give me? Sex life is shit, money is not there, and she was I think she was working or whatever, she also had her own thing, her own business and all that, so she was completely okay with it. So be careful when you grow up. Don't just watch ये fiction को fact में बदली करोगे, वो तो वहीं पे फिक्शन में वो सब कचरा चलता है, बिकॉज रियल उसका आपको रेपरकशंस नहीं झेलने होते, ये रियल लाइफ में ऐसे करने से होता है. तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. इफ यू थिंक द पर्सन इज ऑनेस्ट एंड इट जस्ट हैपेंड वंस एंड इट हैपेंड बिकॉज द रिलेशनशिप वाज गोइंग थ्रू शिट, something like what I just said, something like that happened, and but if you're going to find it really tough,
and that person cannot earn your trust, and still you can like all the time sense something is off, then if you're the kind of person who doesn't want to, it is completely okay not to. Then dheere dheere wean off this person. Most of the time we forgive the people who cheat on us, and because we are addicted to them, because we cannot imagine our life without them. And but yes, sometimes honestly kabhi kabhi galti hoti hai, but I don't know what caused the galti. So could be something else, right? Ma'am, I request you to upload important clips from live. Yes, we always do. Don't you watch, listener? And why don't you help me like do the editing of the important clips? What you people think is important? Do it and give it to us. We'll post it. Okay? Prashant, okay, that I ordered. Thank you, thank you. Thank you, ma'am, for such a wonderful live stream. My pleasure, Alpus. Okay. ये सबसे बेकार क्वेश्चन रिलेशनशिप वाले होते, चुप कर, मैंने ऑलरेडी बोल दिया था. अब मैं जाऊं? मैम आपने मेरे वाला क्वेश्चन पूछा था क्या? हाँ पूछा था, राइटिंग स्किल्स वाला, क्योंकि तुमने लिखा था मंजीत इसलिए रिप्लाई भी किया. मतलब क्योंकि तुम ऑब्वियसली मॉड हो, डिस्कॉर्ड के एडमिन हो, तो not at all, can't even think about it. Thank you for the answer. My pleasure, Shovik, and all the best. God bless you. If you're having trouble moving on, मैं और वीगन दूर दूर तक मेरा और वीगन का नाता नहीं है, मैं पूरी नॉन वेजिटेरियन. ठीक है, तो ठीक है. ओके, आई थिंक आई हैव आंसर्ड एवरीथिंग. एंड मैम देयर विल बी डे आई विल मीट, आई एम लुकिंग फॉर है. यार हिंदी में लिखा करो ना यार, ऐसा अगर तुम ऐसा लिखोगे, मैम will there be a day I will meet I am looking for, है? कोई ट्रांसलेट करना चाहेगा? ये जुप मुझसे मीट करना है कि अपने पार्टनर को मीट करोगे? किसको मीट करने की कोशिश कर रहे हो कि नॉनवेज मीट की बात हो रही? मैम विल देयर बी अ डे आई विल मीट आई एम लुकिंग फॉर, मीट होगा, आई विल मीट नहीं. I don't know. Okay, I don't know, Rajesh. I'm baffled by your हिंदी में लिखो बेटा, हिंदी में लिखो. Doesn't question doesn't make sense. Will कौन will? मुझसे मिलना है कि अपने पार्टनर से मिलना है? क्या लिखा है बेटा तुमने? someone, हाँ, मुझे क्या पता मैं कौन सा दूरदृष्टि कर सकती हूँ. अपने लाइफ पे फोकस करो, और वर्स्ट के सिनेरियो अरेंज मैरिज जिंदाबाद, कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा. तुम लोग की लड़कों की क्या प्रॉब्लम है पता है आप लोगों को सबको? माधुरी दीक्षित, कतरीना कैफ, दीपिका पादुकोण जैसे लड़कियां चाहिए जो अच्छी, सुलझी, मे बी नॉट सो सोसाइटी के टर्म्स वाइज ग्रेट टू लुक एट, यू नो, हाइट में अगर से इशू, अगर से कलर में इशू. मैं वो सारे गाली देने को मन कर रहा है, वो मैट्रिमोनियल साइट्स पे होता है ना. ऑफकोर्स लड़कियां भी ऐसी करती है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट वो फेयर, टॉल, टाटू, beautiful, look for a good human being, you will find them. They are not very difficult to find, and you will be happier. Okay, I know Gaurav, मैंने 4 बार तो मैंने बोला कि 4 नहीं, I think 15 बार बोलूं, there will be a day you will finally meet the person. Yeah, I got it. You will meet somebody, don't worry, relax. इतना लाइफ में और भी चीजें यार, अपने फिटनेस गोल्स बनाओ, स्किल्स सीखो, म्यूजिक सीखो, गिटार बजाना सीखो, मेरे सेशंस पे आके गिटार बजाओ, वायलिन बजाओ, फ्लूट बजाओ. मस्त कुछ लाइफ में और भी अचीवमेंट होना चाहिए, सिर्फ पार्टनर ही अचीवमेंट नहीं हो सकता. मिल जाएगा, डोंट वरी. 7 बिलियन की पॉपुलेशन है, ऐसा कैसे हो सकता नहीं मिलेगा? वक्त लगेगा कभी कभी, और जो मैंने बोला उस पर ध्यान दो. बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, लुक फॉर अ गुड ह्यूमन बीइंग. इट डोंट लुक जस्ट फॉर लाइक फीचर्स at all. Okay, so true. Even useful. Yeah, exactly. JEE 300. और JEE मैंने तुझे डांट लगाई थी, ठीक है, वो पोस्ट में इतना क्लियरली 7 बजे लिखा है, बोलता है व्हाट टाइम. मतलब थैंक गॉड कि मेरे जैसा यूट्यूब पर्सन है जो आंसर भी कर देता है ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस का. ठीक है, रहते हैं अभी भी खत्म है, रहते हैं अभी भी कि खत्म है. ठीक है, कोई इसको 145 डिसलाइक्स आजकल यूट्यूब में होते ही नहीं है. बाय द वे, डिसलाइक कब से निकाल दिया? ओके, चलो मैम आप जाओगे, अब मुझे जाना है. कब से नहीं, हंसते हुए जाऊंगी, रोते हुए नहीं जाऊंगी. लव यू ऑल, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड सी यू ऑल. स्टूडेंट्स 10th को आना, मंडे को क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तब मैं आराम से 2-3 घंटे आप लोगों का क्वेश्चन आंसर करूंगी. ठीक है, और
लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन, पता नहीं क्या क्या सब कुछ कर लो, ठीक है? सब कुछ नहीं, यू नो व्हाट आई मीन. सो अच्छा, अब मैं सच्ची जा रही हूँ बिफोर आई गेट लाइक गालीज फ्रॉम माय फैमिली एंड आई गॉट टू गो. मैं नहीं देख रही हूँ यूट्यूब चैट, मैंने देखना बंद कर दिया. आई सी ऑल्सो, ठीक है?